कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बट इट गिव्स मी ऐसे नर्व्स जस्ट लुकिंग एट द प्लेयर्स, बिकॉज इन दोनों की राइवलरी एपिक है। चैट, अगर तुम्हें याद होगा, ड्यूरिंग द ओलंपियाड second last round, if Gukesh had won the game, we would have gotten gold, most likely 99%. But I mean, Gukesh was winning. Gives me ऐसे nerve. But Nodirbek पूरा comeback कर लिया था and then he won. And you can see that confidence on Nodirbek's face. मतलब बिल्कुल भी कहीं पे भी hesitation नहीं दिख रही मुझे. And Gukesh वहां पे calm and composed right पे. बहुत क्रेजी मैच होने वाला है। चैट, क्या हाल है? मैं इतना zoomed in क्यों हूं मुझे पता नहीं है। मुझे थोड़ा जूम आउट कर दीजिए हल्का सा अगर पॉसिबल हो, बट रिगार्डलेस मेरे बाल चंपू लग रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे विद टाइम। भाई क्या हाल है चैट? आज बहुत मजा आने वाला है बिकॉज गुकेश इज प्लेइंग नोदिरबेक। दिस विल बी अ राइवलरी जो हमें बहुत बार देखने को मिलेगी, नॉट ओनली राइट नाउ बट ऑल्सो इन द ओलंपियाड, ऑल्सो इन फ्यूचर कैंडिडेट्स एंड सो ऑन। ये राइवलरी चलती रहेगी। हंस क्यों रहा है नोदिरबेक वहां पे? व्हाट हैपेंड? व्हाई इज ही लाफिंग? He's like giggling like a, ऐसे I don't know, ये क्या हुआ? What happened? अच्छा okay, they're अच्छा, बेस्ट गेम प्राइज मिला है नोदिरबेक को कल के लिए। नाइस नाइस नाइस। एंड अपेरेंटली he has braces as well. और गुकेश showing no impression at all यार। ठीक है भाई, बेस्ट। बट बाय द वे, डोंट यू थिंक कि गलती से अगर your opponent gets a best game prize, that will put a bit of pressure on you भाई राउंड के जस्ट पहले? That will be a bit ऐसे, no, oh my god, my opponent got the best game prize for yesterday, so that should put some psychological pressure on you. But regardless, we can see Nodirbek laughing there. Let's have the board and look at all the three games. The pairings first. First of all, chat, clearly Gukesh against Nodirbek, that will be a crazy match. Gukesh will have the black pieces, so will not be easy here. Second match है हमारा Vidit against Mateusz Bartel. As somebody who has defeated Bartel, I am very confident Vidit भाई भी हराएंगे. Full confidence है मुझे. VD will win today and he will have his first win after 3 draws. It has been an extremely solid start for Vidit, but we have not seen that, मतलब वो conversion नहीं दिखा है. He has had slightly better positions. अब conversion देखने की बारी आ चुकी है. And finally we have हमारे प्रज्ञानंदा अगेंस्ट थाई दाई वैन नेगुएन. Pragg has the black pieces. Pragg के 2 गेम, पिछले पहला गेम वो जीते, सेकेंड एंड थर्ड गेम बिल्कुल सिमेट्रिकल लगे मुझे इन टर्म्स ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द गेम. ही वाज कंप्लीटली विनिंग, मेड अ ब्लंडर, द गेम वाज ड्रॉन, मेड अ ब्लंडर एंड लॉस्ट. और दोनों गेम में ब्लंडर हुए टाइम प्रेशर में. सो क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग एंड देन लूजिंग इन टाइम प्रेशर. सो लेट्स नॉट फॉल इनटू टाइम प्रेशर भाई. इट्स वेरी ऑब्वियस. Think for maybe 2 minutes less. I know he's used to finding all the best moves. Let's decrease the accuracy by 1%, in the first 30 moves, 20 moves, but let's, improve our time management for now. That should be the strategy here. पोल लगाने वाले हैं नोदिरबेक और गुकेश में जल्दी से. लेट्स सी चैट क्या होता है. एंड आज चैट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? जल्दी से बताओ. First of all, Thai Dai Van Nguyen versus Pragg. Who do you think will win, chat? I honestly feel that, Pragg should be the clear favorite and it should not be difficult here. Let me put up a poll. Gukesh versus Nodirbek. Who wins, chat? Bhai, yaar, kash Gukesh jeet jaye, yaar. Will be a crazy game if he wins. So Nodirbek wins and third option will be a draw. By draw to yaar हमेशा क्लासिकल में रहता ही है. पोल लगा दी है. Pragg का कल हार्ट ब्रेकिंग लॉस था. I agree, man. I absolutely agree. But the thing is, this is the test of his temperament, right? यही असली टेस्ट है कि can he actually come back? So first of all, Pragg here clearly thinking. So we have 1d4. You can see Pragg, yeah? So he's a bit, not playing his first move and finally touches the knight on f6 and plays it to f6. Crazy, crazy, crazy. So, and as usual, Nagimeka hairstyle is top notch. I wish I could have a tutorial from him at some point, but probably we can start with the chess tutorial at some point. So yeah, c4 played and Pragg is now thinking what to do. So going to the game of Vidit against Bartel, we again have e4, e5, knight f3, knight c6. And yeah, we'll see if Vidit repeats his opening choice of bishop b5 that he played against. I think it was, I forget. Oh, he goes for the scotch. Interesting opening choice, d4. Wow, so not that oftenly played nowadays, in top level chess, but there seems to be some preparation here. So Vidit clearly, playing very fast as of now. Puri prep lag rahi hai. My expectation is Gukesh superpower by next month. Pragg comeback karega aaj. Yo hame bhai. Chat, by the way, pata hai,
Arjun was India number 1 and he lost today. So kahin na kahin se Vishy is again India number 1. Gukesh is like 0.6 rating points behind. So it's like इंडिया नंबर 1 पे ही कुछ कर से भाई, जो भी इंडिया नंबर बनता है ना बेचारा हार जाता है. So we'll have to see how it goes. And by the way, look at this knight d4, queen f6 played, and quickly Vidit drops back the knight to f3. So बहुत fast खेलते हुए, and the queen is now was putting pressure on the knight, but Vidit ने कहा मैं वापस खेलूंगा knight, and now your queen is a bit loose. कल को knight c3, bishop g5, you know the queen can be harassed a lot, and now comes bishop b4, tempting the move c3 ताकि knight cannot come to c3 here. तो काफी logical move. Let's see how it goes. आज प्रग गुस्से में है थोड़ा, तो यार गुस्सा ना यूजुअली बंदे को दो तरफ लेके जा सकता है. इट कैन इंप्रूव योर प्ले और इट कैन मेक यू मोर इमोशनल एंड मोर प्रोन टू ब्लंडर्स. लेट्स सी प्रग किस तरफ जाते हैं. विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड फाइनली द क्रेजी गेम, द स्टार गेम फॉर टुडे. चैट विदित और प्रग के लिए दिस शुड बी रिलेटिवली easy in quotes game, but for Gukesh it will not be easy. And we have Catalan on the board. e6, knight f3, d5, g3, bishop b4 check, bishop d2. We'll see if he drops pick back to e7 to d6. Does he play a5? बहुत सारे options possible. Let's see how it goes, chat. Man, this is going to be crazy. विशी नजर लगाते नहीं यार. विशी सर से ज्यादा प्राउड कोई नहीं होगा if you know some Indian becomes Indian on permanently, because he has a hand in improving all these players. So there's no doubt about that. आज परसों जिंक्स भाई यार, तुम्हें लगता है ऑनेस्टली एक बंदा दो धरती के दूसरे कोने में बैठकर जिंक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है? मैं अपने दुश्मनों को जिंक्स नहीं करता, फिर मतलब क्या लगता है तुम्हें है? By the way, castles played by Gukesh. बहुत फास्ट खेलते हुए दोनों प्लेयर्स. यहाँ पे बहुत ना मतलब they're trying to. भाई कैमरा कहाँ गया रंजन भाई? हाँ मैंने कहा कैमरा कहाँ गया हो गया भाई? भाई ये मेरे बाल ऐसे उड़ क्यों रहे हवा में? एनीवेज, हाँ सो मेरा पॉइंट ये है कि भाई यू कैन क्लियरली सी कि दोनों प्लेयर क्लॉक पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कैन वी हैव द कैमरा बिट अप निरंजन भाई, ताकि हम बोर्ड और क्लॉक देख पाए प्लेयर्स के साथ. गुकेश तो हमें दिख ही नहीं रहे. हम गुकेश सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी से उनको सेंटर में ले आए, मतलब हमें दिखने चाहिए गुकेश. What's your expectation for candidates? One Indian player winning. Thank you. Perfect था वो निरंजन भाई दूसरा वाला. Yes, perfect. And now we can see the players. भाई कितना टेंस माहौल है. Chat, I have a question for you. Do you think गुकेश जब अभी यहां खेल रहे हैं उनको ओलंपियाड का वो फ्लैशबैक हो रहा होगा? Would he be feeling that, you know, emotion कि यार इसी प्लेयर के सामने मैंने गलती करी थी? Do you think he's feeling that, or do you think he has control over his nerves and that's not happening right now? कैमरा फिक्स किया जाए बिग बॉस जी जल्दी से. अरे निंजा भाई को बिग बॉस बनाना चाहिए यार. That would be awesome. क्या बोलते हो निंजा भाई, बिग बॉस बुलाया जाए आपको? तो फिर आवाज भी ऐसी आनी चाहिए, बिग बॉस चाहते हैं कि टिक्कू भाई मुंह बंद करे. भाई यो भाई व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम. Of course, कह रहे कुसुम, thinking Vishy will be jealous is the ridiculous thought. Exactly. It's not really how it works. Of course, he'll be a bit nostalgic, but he will be very, very happy, of course. Queen c2, by the way, played. You kind of prevent this from being captured, so काफी logical move. कोई ऐसे साइड लाइन नहीं, मेल लाइन चल रही है यहाँ पे. आई थिंक b6 पॉसिबल है, नाइट d7 पॉसिबल है. नोदिरबेक ने गुकेश को हराया था. Exactly, भाई. So, you know, Nodirbek is definitely his arch nemesis. You know, the guy he constantly has to battle. So Gukesh clearly full pressure में होंगे इस गेम में, और black pieces is definitely not going to make it easier. Vishy now without even playing, he played a tournament just 2 weeks back. Bundesliga में 2 गेम खेले, एक जीते एक ड्रॉ किया, ऐसे कुछ था उनका रिजल्ट, and he gained 2 points and he crossed 2750. Dang, Nodirbek world number 4. क्या बात कर रहे हो? He was world number 8. Oh my god. Chat, if Nodirbek wins, he will be world number 4 today. Ahead of Ding Liren, ahead of Anish Giri, Firuzja Nepo. Oh my god. So Nodirbek is in great shape. That's a great find, Nandu bhai. Thanks for letting me know. I didn't realize कि इतना पास है रेटिंग सबकी. So huge stakes for Nodirbek here. Gukesh has to stop him. वरना उज्बेकिस्तान वाले चैट में आ जाएंगे भाई फिर रोस्ट करने हमें. जल्दी से भाई. By the way, going to the game of Vidit.
where after knight f3, check c3, bishop c5, you know, chat, किसने world rapid blitz देखा था? I remember having a very similar position that Surya had, where he played bishop d3 and his opponent played knight f5 and he took. So I don't think that will happen. Yeah, that was a great, you know, I say human moment for Surya there. So he plays bishop d2 here, and let's see what happens now. I think castles बहुत जल्दी होगा. ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था भाई. That's crazy. Exactly. Which Indian do you think formed the best? It's very hard to say, man. I was hoping, like, based on the first 1.5 rounds, it felt like Pragg hoga, but clearly Pragg blundered in both games. So we don't know yet. Kuch bhi pata nahi hai. So by the way, 97 played by Mateusz Bartel. By the way, just to remind you, flaunt तुम्हारा नाम कभी छोड़ेंगे नहीं. मैंने Mateusz Bartel को मेट इन 2 किया था लंदन सिस्टम के साथ इन टाइटल ट्यूसडे. So पूरी उम्मीद है कि भाई विदित भी करेंगे. So going to the game of कहाँ गए भाई वो? Sorry, Pragg ji कहाँ है? अरे हाँ, ये Pragg ji against Nguyen, Thai Dai Van. We have, I'm going to call him Nguyen. I think एक नाम रखते हैं. And now we have d6 on the board by Pragg. e3, castles, bishop d3, and now d5. So पहले d6 and then d5. Interesting. सूर्य भाई का याद आ गया भाई. सूर्य भाई तो मस्त है, मतलब his humor is amazing actually. We didn't know this यार. बहुत chess players का humor ना is pretty like impressive, but वो लोग like कैमरा पे आते नहीं तो पता ही लगता है. वही चीज है. Milton 2 with London. Exactly भाई, बहुत मस्त था वो गेम. I still remember that. बहुत मस्त अटैक लगाया था मैंने. Anyways, going to the game of Gukesh again. क्या चल रहा है यहाँ पे? So Rook C1 खेला है. Gukesh is still thinking. पानी का टेस्ट करते हुए नोदिरबेक भाई. Full on 4/5 view. शादी में नाचने आ जाते हैं. ये क्या है भाई? मेरे को तो नहीं दिखा anybody from Pakistan. कोई था क्या? I really did not see anybody. Pragg and Gukesh both come under pressure in time and blunders. It doesn't happen with VD. I would disagree. I think all three have been, facing this problem at some point. VD के लिए ये सबसे बड़ी problem थी भाई till last year. So VD was the biggest culprit of this problem, but he is the one who has solved it now. Like, I have not seen him fall into that problem since last Grand Swiss. So I think all three have had that problem, but VD का solve हो चुका है. Pragg का we have just seen it for the first time, honestly. भाई फिजिक्स पढ़ा दो भाई. अभी करता हूँ तुम्हारा dy/dx. रुको, तो अभी करता हूँ तुम्हारा. मॉड बना दो, मेंटेन करूंगा भाई. तुम्हें मैंने मेंबरशिप दे दिया उसमें शायद. आई थिंक तुम्हारी थी ना, शायद किसी की थी तो मैंने दे दी उनको. बाय द वे, चैट Rook C1 प्लेड. अब गुकेश सोचते हुए नोदिरबेक पूरा स्टाइल पोज में बैठे हैं. बिल्कुल परफेक्ट. कोई मतलब उनको पोज ही ऐसा है कि मतलब होता है ना, कॉन्फिडेंट बंदा लगता है, शक्ल डर लगता है देख के ही. Why VD still not married? अभी पूछते हैं उनसे. कहते हैं भाई कैंडिडेट्स. सो उनका इंटरव्यू लेता हूं मैं. उनसे पूछूंगा कि भाई आज आपका इंटरव्यू चाहिए, तो बोलेंगे कैंडिडेट्स के सवाल है क्या? नहीं भाई, शादी के. अभी पूछता हूं. इसलिए VD मेडिटेशन करता है. Who knows? Maybe that's the trick. I don't know what worked for VD, but we have not seen him fall into that trap, and that's amazing news. अच्छा, आयुष्मान की नहीं थी, किसी और की थी भाई. फिर आपकी नहीं थी. किसी और का आई थिंक कोई ए से नाम था भाई. आपकी नहीं थी भाई. एनीवेज, गोइंग टू द गेम ऑफ Pragg. जहां पे कुछ हुआ नहीं है. सो लेट्स गो टू VD's गेम जहां पे भी कुछ हुआ नहीं है. सो फाइनली प्लेयर्स उस मौके पे आ चुके हैं जहां पे सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या भाई, आगे कहां जाना है हमने. एंड बिकॉज आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा थ्योरी लग रही है मुझे कैटलान की. लेट्स स्टिक टू दिस गेम फॉर नाउ, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी शार्प गेम. आई 100% हैव फेथ, एटलीस्ट फेथ है मुझे कि आज Pragg और विदित दोनों जीतेंगे. That's my faith here. The toughest game will be this one. This is going to be the crucial game here. And Vaishali's game will also open. By the way, Vaishali had a spectacular win yesterday. Congrats to her for the comeback. उनकी गेम भी हम देखेंगे 100% बीच में. या Pragg को स्ट्रीक ही तोड़वानी थी तो गुकेश टीम में क्यों ड्रॉ क्लेम किया? अरे भाई, ऐसे नहीं होता यार. वो they are going to try their best, no? Like ऐसा थोड़ी होता है कि यार मतलब वो they are going to put their results first. Yeah, that's pretty obvious. By the way, Vaishali game नजर मारते हैं. Pawn sack. Okay, Vaishali has the black pieces. So usually ना ये black से setup जो ऐसे तरह के होते हैं ना, जहां पे black is playing b5 to save this pawn, it doesn't turn out so well.
and the bar kind of agrees, but we'll see. This is a very very sharp line. Let's see क्या होता है. रिचर्ड स्टैलमैक के साथ मैच है उनका. कोई आईएम है फ्रॉम चेक रिपब्लिक. ठीक है, इंटरेस्टिंग. नोदिर्बेक को सिर्फ गुकेश ही. अरे आज तो उज्बेकिस्तान वाले पक्का आएंगे यार, है ना? वही याद है लास्ट टाइम मैच था गुकेश उज्बेकिस्तान का, तो वो आए थे. तो आज भी पक्का आएंगे भाई. सो चैट प्लीज ध्यान रखना, आज जैसे वो लोग आएंगे तो भाई गुकेश को भी चलना चाहिए. वीडी भाई उनो रिवर्स देंगे भाई, टिक्को मैनेज करके. भाई ये बात तो सही, जिनके शीशे घर शीशे के होते हैं दूसरे पत्थर नहीं फेंकते, क्यों? टुडे अर्जुन इज प्लेइंग इस अनीश गिरी इन चाइना. दैट शुड बी इंटरेस्टिंग. वो मैच कल है ना? आई थिंक दैट मैच इज टुमारो. एज फार एज आई अंडरस्टैंड दैट इज टुमारो. सो वो देखने में बहुत हाँ कल है मैच. अर्जुन के ब्लैक पीसेस हैं, विल बी डिफिकल्ट अगेंस्ट अनीश. मैन, अनीश इज प्रीटी स्ट्रांग. स्पैमर्स को ब्लॉक कर दूंगा. ब्लॉक नहीं करना है रे, ब्लॉक करना तो बड़ा आसान काम है. मुंह तोड़ जवाब देना है हमें. ऑन द बोर्ड, लेट्स गो गुकेश भाई. Niranjan bhai, what are your predictions for all the 3 games today? First game, let's assume Nodirbek against Gukesh. What do you think happens in this game? Let's see predictions. Yes, bhai. So let's first look at the position. So this position as black, I think it will be draw. Okay. And next will be chat. तुम भी spam करते चलो साथ साथ. इस गेम का रिजल्ट क्या होगा? Nodi wins, Gukesh wins, or is it a draw? Next, Niranjan bhai. This game, VD against Mateusz Bartel. तो ये अभी मुझे लग रहा है VD will win. VD will win definitely. Okay, so VD wins. And finally, Pragg against Nguyen. एक मिनट, अभी कैमरा लाते हैं. Praggnanandhaa will win this. रेटिंग बेस पे कह रहे हो कि आपको कुछ अलग हंच है? नहीं, मुझे लगता है ये ओपनिंग ऐसा है कि Praggnanandhaa will slowly outplay. There will be some tactics in the middle game and he will win. That's what I think. Might be true, might be true. तो अलग स्टोरी है, लेकिन ये तो कैटलान नहीं. हाँ. I kind of agree. काफी इम्बैलेंस पोजीशन बन सकती है ये. एंड देखेंगे कैसे गेम चलती है. गोइंग टू विदित्स गेम फॉर अ सेकंड. वहां पे वी हैव अ कपल ऑफ मूव्स. सो नाइट E7 हमने देखा था. कैसल्स एको का ध्यान रखना भाई. कैसल्स H6 प्रिवेंटिंग बिशप G5, and now comes queen C2 defending the pawn, and of course काफी logical move. There is no knight B4 knight D4 ideas, and I'm sure next will be knight somewhere. Maybe knight D2 could be the move. Then knight could move to C4 if it wants to. Bishop कहाँ जाएगा? I'm not exactly sure yet because सारे squares covered है, कोई square available नहीं है. So maybe we keep it on C1 for the time being, and then we see what to do and decide करेंगे आगे जाके. मॉड बनाओ टिक्को भाई. भाई मॉड का क्या करोगे तुम लोग? मेरी चैट फिर से अटक गई. नो वंडर मैं कहूं यार, क्या यूट्यूब भाई काहे ग्लिच करते हो यार? इतनी $1 बिलियन कंपनी, थोड़ा पैसा वैसा फेंको यार चैट पे. मतलब चैट पे नहीं, मतलब चैट के सॉफ्टवेयर पे भाई. साहिल भाई मैंने गलती से पोल में नोदिर्बेक को दबा दिया. भाई कोई बात नहीं भाई, नोदिर्बेक को दबा भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं है भाई. काफी वो जिनके चेहरे चांद जैसे. अबे यार चिराग भाई यार, कैसे ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे कैसे चलेगा भाई? आज ही आपको मैंने मेंबरशिप दी है, आप ऐसे बात ही करोगे तो कैसे चलेगा? मिनल साहिल नंदू लेट्स स्पैम गुकेश. भाई चैट को क्या हो गया आज भाई? भाई चैट को ज्यादा ही मजे नहीं ले रही. ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा है आज कुछ. चैट ज्यादा चिल है. By the way, B4 played by Vidit attacking the bishop. Bishop drops back to B6. दोनों प्लेयर बहुत फास्ट खेल रहे हैं because already black has used no time. इंक्रीमेंट पे खेले हैं और व्हाइट ने सिर्फ 5 मिनट यूज करे हैं. They've played 10 moves. So दोनों प्लेयर डीप प्रिपरेशन में लग रहे हैं विदित अगेंस्ट बाटेल में. यो बालेना जी क्या हाल चाल? I think VD might draw, and my reason for it 7-8 rounds with Tower Steel Chess 2024. Honestly, I think VD might have a draw के chances because that's what he has had for the first 3 rounds. But कहीं ना कहीं पे if he has to win the candidates, he has to strike, man. Strike तो करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना कैसे काम चलेगा? वरना फिर like you can draw a lot of games, but अगर ये candidates होता तो एक ना एक बंदा बहुत आगे निकल गया होता अभी. And then you feel that pressure to win on demand, and then you even lose, and you're knocked out. नॉकड आउट मतलब चांसेस से. सो आई वुड से कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए. विन ड्रॉ विन ड्रॉ विन ड्रॉ. कभी गलती से लॉस भी हो गई, अदरवाइज कैसे चलेगा काम यार?
Gukesh will crush Nodirbek. Exactly, that's the hope. Chat again, let me remind you, samosa challenge at 369 likes. And मेरा एक और चैलेंज है यार, तुमने कल ना लाइक्स किए नहीं, एक क्रेजी चैलेंज मेरे दिमाग में है. अगर तुम जल्दी जल्दी लाइक करते चलोगे तो मैं चैलेंज करूंगा. यू नो व्हाट, आई विल डू दिस चैलेंज एट 369 likes. ठीक है, क्रेजी चैलेंज. लेट्स लाइक द स्ट्रीम भाई. यू विल लव दिस चैलेंज, आई एम टेलिंग यू. बस तुम करो, लाइक करो भाई. Vidit is the new Anish, dude. He would love that, man. World top 10 for so long, that would not be a bad deal for VD, honestly. मॉडरेटर कह रहे हैं आयुष्मान जी, भाई मॉड बनने के लिए ना जज्बा चाहिए, जज्बा. समझ रहे हो तुम? जज्बा नहीं है भाई. तुमने लोगों को देखो किसका लगाया है भाई, लोगों में ही तुम्हारे खोट है. Okay, by the way, B6 played. Now VD again thinking, can we have VD? Achha, we have VD. He looks extremely calm, but he also looks intense. I think VD is having this look in this tournament जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लग रही है. ऐसे मतलब ना, ऐसे कोई बच्चे को बेबीसिट कर रहे हैं, ऐसे नहीं खाना चॉकलेट, ऐसे लग रहा है मुझे, फीलिंग आ रही है. And also the tilak, yeah, again the tilak. I don't remember seeing VD with a tilak before. Maybe I missed that one, but again I can see it. चलो ठीक है, लेट्स गो टू द बोर्ड बैक. पीछे एक छोटे से बच्चे खेल रहे हैं वहां पे. चेस कितनी बढ़िया गेम है यार, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे सब खेलते हैं. अनीश बिकम्स नंबर 4. बिल्कुल, वो देखो छोटा सा बच्चा है पीछे वहां पे खेल रहा है भाई. मस्त है यार, चेस मस्त गेम है. Anyway, so Bishop B6 going to the game of Pragg. क्या चल रहा है वहां पे? D5 का कुछ भी नहीं हुआ है गेम में. नगुएन जी को बहुत टाइम ट्रबल इश्यूज फेस करने पड़े थे अगेंस्ट गुकेश, एंड क्लियरली वो फिर से उसी राह पे चल दिए हैं. तो ये देखने बड़ा मजा आएगा जब Pragg जीतेंगे. उनके पास 50 मिनट होंगे, नगुएन जी के शायद 5 मिनट. गोइंग टू द गेम ऑफ गुकेश अगेन, जहां पे वी हैव अ कपल ऑफ मूव्स. Castles हमने Queen C2 देखा था, Knight D7, Rook C1, and now comes A5. And apparently, chat, Rook C1 is a move that I've personally not seen. This is in the theory, recent move होगी गई. And now A5 is the best move according to the engines and the database. So very interesting to see how White plays this. A4 is the most preferred choice that he actually plays. But यहाँ पे clearly कुछ squares काफी weak हो रहे हैं. So इसका कौन फायदा उठाएगा, we still have to see. If now whenever white takes, अगर तुम C pawn से मारते हो by chance कभी, तो Knight A3, Knight B5 would be excellent for white. So बड़े ध्यान से गेम खेलनी पड़ेगी. काफी कमिटल मूव्स हैं A4 A5. फिडे रेटेड हूं मैं. अरे बाप रे भाई, आयुष्मान भाई यार, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट सून. बस अब वेट कीजिए, अभी कॉल आ रहा है भाई. VD strict to avoid playing crazy lines. I think he is really well prepared though. वहां पे रैपोर्ट जी देखते हुए गेम कल कैसे उन्होंने हराया है यार प्रग को, मैं नहीं भूल पाऊंगा वो यार, बहुत टाइम तक. खतरनाक है यार, मतलब रैपोर्ट. डू यू रिमेंबर अनीश गिरी इन कैंडिडेट्स 116? यार अनीश गिरी का मैं काफी टाइम से फैन रहा हूं, तो मुझे याद तो होगा, बट आई रिमेंबर मेनी कैंडिडेट्स एक्चुअली. आई थिंक 16 तो वो था ना जहां पे ही हैड लाइक 14-12 ड्रॉज और समथिंग. Vidit A5 was crazy. I agree, man. मतलब पूरा सल्यूट दिया था मैंने भाई उसके लिए. तो भाई नगुएन भाई स्ट्रेस में क्यों लग रहे हैं यार? अभी से, अभी तो ओपनिंग ही स्टार्ट हुई है. ये क्या हो गया भाई? Can we have Gukesh and Nodirbek on the screen engine भाई? Let's have them. नगुएन भाई थोड़ा टाइम लेंगे लगता है मुझे. Do these players have access to bar line? Manav bhai, they would love to, but they don't. They have no clue what the current evaluation is. मतलब they understand it right now because ये अभी opening theory में ही चल रहा है सब. But जैसे जैसे theory से आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे उनको idea थोड़ा कम होने लगेगा. So they don't have access to the bar. Your favorite dish, Rama Chawal यार, बिल्कुल. How about B5 in Vidit's game? I will quickly have a look at that. B5, usually ये moves खेल सकते हो. It's not like horrific, but idea क्या है? Black can always play 95 and it's not a big problem for black, right? क्या हो गया? कोई बात नहीं, मार दोगे, वो पॉन से मार देंगे, एंड उनको C5 स्क्वायर मिल गया. तो ऐसी मूव्स खेल सकते हैं, बट कोई पर्पस होना चाहिए भाई. अगर तुम घर से मार्केट जा रहे हो तो मार्केट जाना बुरी बात नहीं है, ठीक है, जा रहे हो मार्केट बढ़िया है, बट पर्पस क्या है? क्या तुम्हें साबुन लाना है? क्या तुम्हें डोमिनोज से कुछ खाना है? कोई पर्पस होना चाहिए यूजुअली. सो दैट्स व्हाई B5 इज नॉट सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ.
गोइंग बैक टू द गेम ऑफ गुकेश अगेन, लेट्स सी क्या खेलते हैं गुकेश। थोड़ा टाइम प्रेशर में ऑलरेडी, नोदिरबेक फुल प्रेशर में प्रेशर बनाने में लगे हुए हैं, पूरे उनका एक सेकंड भी यूज नहीं किया। इनफैक्ट ही हैज गेन्ड टाइम ऑन द क्लॉक, ही हैज गेन्ड 1.5 मिनट, सो प्रेशर अभी पूरा गुकेश के ऊपर। उप्स, होपफुली शोर ज्यादा नहीं है चैट। मिलन जी प्लीज इंग्लिश में लिखें, चैट में छोटा सा हिंदी पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है माताओं के साथ। आज गुकेश ही जीतेगा, पूरी उम्मीद है मेरा भाई। वहां से वैशाली हैविंग ऑल दीज पॉन्स स्टिल नॉट कैसल्ड, काफी डेंजरस बट एक्साइटिंग पोजीशन। और नोदिरबेक उठ के चले गए हैं बोर्ड से, प्रेशर बनाते हुए और ज्यादा। ऑसम टिकू भाई, थैंक यू भाई यार। मैं पिज्जा की एनालॉजी देने में एक्सपर्ट हूं भाई, दैट्स मेरा सीवी में मैंने वही लिखा था बस। इन कैंडिडेट्स ऑफ 16 अनीश गिरी ड्रू ऑल हिज मैचेस, या दैट आई रिमेंबर, देन आई रिमेंबर दैट वन। मॉडरेटर बना दो, मॉनिटर बना दो भाई, वाह वाह वाह, क्या ही बात है भाई यार, तुम्हारे में अलग ही जादू है यार। चैट, क्या लग रहा है चैट? तुमने तुमने वोट तो किया है वैसे, पोल में परसेंटेज देखता हूं, 78% लोग कह रहे हैं गुकेश जीतेगा, 11% कह रहे हैं नोदिरबेक जीतेगा, 12% कह रहे हैं ड्रॉ। यार भाई चैट, अब ना सच बताओ भाई, अब क्या लगता है कितने परसेंट चांस है गुकेश के जीतने के? अब बताओ भाई चैट में कितने परसेंट चांस है, कम ऑन चैट, लेट्स गो, लेट्स गो। कितने प्रतिशत भारतीय समझते हैं कि गुकेश डी ये जीतेंगे? कम ऑन चैट। मैं भी कश्मीर से हूं भाई, मैं कश्मीर से, मैं अभी कश्मीर से तो मैं भी हूं, बट अभी फैजाद में हो गया। विदित विल विन, यो व्हाट्सअप मिस्टर कनुंगो जी, कैसे हैं आप? यो राघव भाई, आर कैपिटल बढ़िया। व्हाट्स द बेस्ट फॉर ब्लैक? अभी तो व्हाइट टू प्ले है भाई, सॉरी ब्लैक टू प्ले है। सो यहां पे देखो, तुम पीस प्लेसमेंट देखो, ठीक है। वी हैव सेंटर, हमारा ऐसे है, कोई भी क्लियर पॉन मूव तो मुझे दिख नहीं रही। ये खेलोगे तो ये कुछ स्क्वायर्स वीक हो जाएंगे, इमीडिएटली मार देगा वो B5, फिर नाइट A3, नाइट B5। सो यहाँ पॉन मूव तो कोई है नहीं। ये रुक हमारा E8 पे लॉजिकल है, नॉट क्वीन E8। सो रुक E8 वुड बी अ वेरी लॉजिकल मूव, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। थोड़ा सैलरी आए तो भाई कम से कम 10 से 50% की बीच थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, गाड़ी अगले साल खरीद लेना। एंड वन कुड बी 94, हमें नाइट E4 स्क्वायर मिल रहा है, सो व्हाई नॉट डू इट। एंड देन वी कुड आल्सो सपोर्ट विद F5 इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। मान लो नाइट C3 आता है तो वी कैन थिंक कि भाई बिशप मारना है, F5 खेलना है, नाइट मारना है अपने हाथ में। So and he plays rook E8. So logical move by Gukesh, played rook to E8 on the board. And अब नोदिरबेक की चाल, ये क्या आ गया भाई? नोदिरबेक की चाल है, लेट्स से क्या क्या करते हैं वो। आयुष्मान जी कह रहे गुकेश हारेगा भाई, तुम्हारे अपने मॉड के सारे चांस खो दिए भाई। 100%, 69%, 0%। ये 69 वाले यार, भाई तुम VPN डाउनलोड करो और हमें आजाद करो भाई। 67.54%, भाई ये कहां से तुमने कैलकुलेट किया है? तो लग रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है। साइन कॉस्ट थीटा भी तुमने इंक्लूड कर दिए। मंदर भाई 60-70%, 76 यो तरुण भाई। 80% विनिंग चांसेस, 55 विन, 5% ड्रॉ, 40% लूज। वाओ ब्रो, व्हाइट कैन प्ले क्वीन टेक्स H7। इफ नोदिरबेक प्लेस क्वीन टेक्स H7 तो मैं एक बंदे को चैट में लाख रुपए दूंगा भाई। चाहे मुझे किडनी ऑक्शन करनी पड़े, मैं एक बंदे को लाख रुपए दूंगा चैट में, अगर क्वीन टेक्स H7 मार दिया। देखो भाई प्लीज मारना मत भाई, पता लगे गलती से मार भी दिया क्वीन H7। ओ नो, माउस स्लिप। क्या कह रहे हो निजन भाई? अच्छा अच्छा। 5142%, ये कौन सा है ध्रुव भाई? मैथ्स थोड़ी सी कम पढ़ी है तुमने स्कूल में शायद है, मैथ्स थोड़ी सी पढ़ने का है स्कूल में। तो टीचर जब कहते हैं ना कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो भाई थोड़ा काम आएगा वो। योर स्ट्रीम कम्स लाइक हैप्पी मोमेंट, थैंक यू भाई। ये 2020 के जोक अब तक कैसे मार सकते हो नितिन भाई? थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा तुम्हें भाई। लाख ज्यादा नहीं हो गया भाई? उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो इतनी लो है ना, क्वीन H7 मार दे वो इस चाल पे, इस मुंह पे, बाय द वे पूरी गेम में नहीं। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी है भाई क्वीन H7 मारने की, जीरो। लिट निंज भाई, इज देयर एनी यूनिवर्स
कि अगर 10,000 गेम नोदिरबेक इस पोजीशन से खेले, वो एक भी गेम में ये मारेगा नहीं ना? अगर आप कह रहे हो तो शायद मार देगा। भाई नहीं यार, ऐसा थोड़ी है कि वो हमारी चैट सुन रहा है और कहेगा, चैट वाला बंदा कहेगा भाई 50-50 कर लेते हैं। ऐसा Man, होता तो I चांस था, also बट अदरवाइज think I मुश्किल है। don't think even in 7 lifetimes he will take on it. अग्रीड अग्रीड। वीडी गेम में कुछ हो रहा है क्या भाई? बिशप B2 खेला है वीडी गेम में। सो बिशप उन्होंने फाइनली एक स्क्वायर निकाल दिया। अब ये बिशप रानी की तरफ जो नजर मार के बैठा है, डाउट लग रहा है भाई रानी कहां जाएगी। क्वीन G6 आना पड़ेगा उनको लगता है। भाई लुक एट विदित बाय द वे यार, मतलब चैट आज ना, आज वीडी जीतेगा भाई, आज वीडी जीतेगा। आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग आज ही विल विन। यू नो व्हाट, आई हैव कमेंटेटेड ऑन वीडीज गेम्स द मोस्ट, and I don't know, I have a feeling today he will win this efficiently, like without any stress. Imagine जैसे जैसे pawn by mistake, भाई तो फिर मैं कल आएगा भाई वो कौन सा होता है, वो कौन सी वेबसाइट जहाँ पे वो लोग अपना बेड और ये सब चीजें बेचते हैं भाई, फर्नीचर बेचते हैं, कौन सी वेबसाइट है वो, वहां पे डालना पड़ेगा अपना किडनी के लिए। फाइनली वीडी लेंगे भाई। वीडी हैज बीन सॉलिड दो, एक चीज है ना, लाइक ही हैज मेड नो ब्लंडर्स। ही had a slightly better position, drew, but he had a slightly worse yesterday, also drew. So he has been extremely solid. And कैंडिडेट्स जीतने के लिए जो बंदे को चाहिए ना, वो सॉलिडिटी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वी हैव सीन दैट इन वीडी सो फार। सो फिलहाल के लिए या ऑफ कोर्स वी हैव नॉट सीन अ विन, बट कुछ एलिमेंट्स दिखे हैं विच इज परफेक्ट फॉर द कैंडिडेट्स। वीडी गिविंग दैट स्टे टू द बोर्ड। भाई वीडी का काम है सिर्फ पीना भाई इस टूर्नामेंट में, पानी, जूस, शेक्स, मिल्क शेक्स, क्या क्या बोला और बंदे ने जूस निकाल दिया। ओ माय गॉड, भाई वीडी ने ऐसा सोच लिया भाई, अब तो मतलब भाई ऑरेंज जूस के दाम बढ़ने वाले हैं दुनिया में, मुझे लग रहा है। चैट जितना ऑरेंज ले सकते हो ले लो भाई, ऑरेंज में इन्वेस्ट करो। मुझे लग रहा है कि ऑरेंज के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, बिकॉज वीडी बहुत पी रहा है भाई ऑरेंज जूस। वीडी विल ड्रॉ ऑल गेम्स। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, इट्स इम्पॉसिबल। अगर विदित हारा तो मैं आपके बदले स्ट्रीमिंग करूंगा। कह रहे हैं सुजल भाई। भाई मेरे बदले कैसे कर सकते हैं यार, मेरे बदले क्यों करोगे? उसमें क्या भाई, खुद स्ट्रीम करना है तो करो भाई, स्टार्ट करो भाई स्ट्रीम करना, किसने रोका है तुम्हें? आई थिंक वीडी कैन हियर मी भाई। आई डू थिंक भाई, क्या ऑरेंज का स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है निरंजन भाई? हैव यू चेक्ड? रुको, ऑरेंज स्टॉक प्राइस, बाप रे, ऑरेंज एक्चुअली कंपनी भी है, आई फॉरगॉट। एक्चुअली कोई कंपनी है, माय बैड। इतना नहीं करते भाई लोग, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे बाद में मेरे पे ही केस करेंगे, छोड़ो भाई। शो प्रग बोर्ड, बोर्ड शो करना है क्या प्रग का? अभी करता हूँ भाई शो प्रग का बोर्ड। सो वीडी डेफिनेटली यू नो थिंकिंग लेट्स गो टू प्रग्स गेम फॉर नाउ। Oh, by the way, look at this. So we Prague, after we saw it till d5, knight f3, d takes e4, bishop takes, and now b6. So trying to put the bishop on the long diagonal seems very, very logical, absolutely. And time difference, dekho chat. Time difference, dekho. Yeah, I mean, I sound like a broken record. वो Praggnanandhaa. But कहीं ना कहीं पे नगुयन जी को अपने टाइम पे, थोड़ा समय पे ध्यान देना पड़ेगा। साहिल भाई मैं आ गया, कह रहे हैं एक ऐसा इंसान जिनका नाम मिनल है और फोटो लड़की की है। सो ये क्या, ये एंजल प्रिया स्कैम है? हो सकता है। आर यू तारिज विंग पर एक्टर? यस एब्सोल्युटली। आमिर खान का मेरे चटी बड़ी है। बाय द वे, गोइंग टू द गेम ऑफ नोदिरबेक येट अगेन, कुछ हुआ है क्या? नॉट येट। सो नोदिरबेक हैज नॉट प्लेड एनीथिंग। इज ही एट द बोर्ड राइट नाउ? आई एम क्यूरियस नाउ, कैन वी हैव द कैमरा? क्योंकि पता नहीं, वैसे भी मुकेश ही जीतेगा। मुकेश कौन है भाई? या ही इज एट द बोर्ड। सो आई डोंट थिंक रुकी सच अ मूव जो उन्होंने देखी नहीं होगी घर पे, बिकॉज A4, यहां तक तो थ्योरी लिटरली मुझे ही पता है। रुक C1 तक तो। सो आई एम श्योर कि दे हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। अपनी प्रेप याद करने की बात है बस। इज योर थ्रोट बेटर नाउ? यार बेटर तो होगा नहीं, अब बस चलता रहेगा थ्रोट जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा। हेलो मिस्टर स्पंदन देव जी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? मुकेश की लड़ाई लड़ाई
रेटिंग के लिए अपने वालों से चल रही, नोदिरबेक से चल रही है भाई। लड़ाई तो हर किसी के साथ है। खोर क्या पारफो है। टिक्कू दर्शील सफारी। भाई दर्शील सफारी भाई कितना मस्त होगा ना, एक गाना स्टार्ट हो जाएगा बीच में, माँ विनोद विनोद। लास्ट टाइम आसिफ वर्ड, चलो अच्छा है भाई, लास्ट टाइम है, अब थोड़ा स्ट्रेस कम होगा मुझे। नोदिरबेक ड्रिंकिंग समथिंग, भाई नोदिरबेक जी टी टी चाय के फैन लगते हैं मुझे। बाय द वे लुक एट द you know the spectators there. So by the way there is one thing, no chat, सही सही बताना ठीक है। क्रिकेट में तुम स्पेक्टेटर हो ठीक है, यूर इन द स्टेडियम, यू कैन गो ये विराट विराट छक्का ये मतलब विराट ने छक्का मारा। एंड देन चेस में यू आर लाइक यार टाइम क्या, चेस के स्पेक्टेटर्स बेचारे एंजॉय भी नहीं कर सकते यार। 9 in my head tell me I'm crazy. I don't know. I'm not a mental health specialist. Hard to say. Is Arjun India number one? No, he's not. He lost today. Vishy is back to India number one. And it's confirmed कि आज एक और इंडिया नंबर वन आएगा। It is pretty sure हर दिन चेंज होने वाला है। निरंजन भाई आप एक पोस्ट बना लो और बस वो नाम चेंज करते चलो ब्रोस। So, या फिर इनफैक्ट वो छोड़ो, बस डाल दो वी हैव अ न्यू इंडियन नंबर वन टुडे और स्केड्यूल कर दो हर दिन के लिए। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भाई एको बंद कर लेना। एक्टिंग के बादशाह हो जी, अरे थैंक यू भाई। बादशाह मुझे रोल ऑफर किया गया था तो मैं 2 साल का बच्चा था तो कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। प्रग, अबे ये क्या है भाई। ओके नाउ नोदिबेक थिंकिंग। सो ये स्क्वायर तो गया, इसको तो हमने चढ़ा हुआ कह दिया है। एंड आई थिंक E3 नॉर्मल मूव लग रही है मुझे काफी। यू कैन ऑल्सो प्ले B3, सो द सेम आइडिया टू सपोर्ट दीज पॉन्स। नाइट C3 समथिंग यू वुड लाइक टू प्ले, बट ये DC4 का प्लान थोड़ा सा ना, थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है मुझे फ्रॉम वाइट्स पर्सपेक्टिव एटलीस्ट। सो मे बी ही विल नॉट गो फॉर इट। लेट्स सी क्या खेलते हैं वो। क्रिएटर्स आल्सो एटलीस्ट नो कि छक्का लगाया, चेसफील्ड कांट अंडरस्टैंड हु इज विनिंग, इफ दे कुड दे वुड बी प्लेइंग द गेम। प्रग हैविंग, अबे ये क्या भाई, रोज लकी बिल्कुल भाई, अभी तो 3 ही दिन है आपको भाई, अभी तो कितने भाई कितने टूर्नामेंट जब आओगे तब जाकर बन सकता है। गोइंग टू विद इट्स गेम, क्या चल रहा है। बाटेल जी अब सोचने में मजबूर, डीप सोच में जा चुके हैं। भाई ये बिशप का क्या फ्यूचर है भाई। मतलब इसने यार IIT का पेपर क्लियर कर लिया तो अब इसको मतलब लाइफ में सब मतलब सब बढ़िया होगा इसके साथ। मतलब आराम से नौकरी मिल जाएगी, शादी भी प्यार से हो जाएगी, मतलब IIM भी जाएगा लड़का, ये मतलब बस करियर सेट है इसका। व्हाट इज द प्राइस भाई, प्राइस तो अच्छा होगा यार, होगा यार कुछ कुछ 10 लाख रुपए इंटू समथिंग तो होगा। फिल देयर बी समोसा की वे, बिल्कुल होगा भाई, समोसा की वे करेंगे 369 लाइक्स पे। तो चैट तुम्हारे हाथ में है वो चैलेंज पूरा। व्हेन आर यू कमिंग टू मॉस्को, यार पता नहीं यार, रशिया आने का मेरा उतना मन नहीं है फॉर सम रीजन। मैं लेओवर वहां पे कई बार किया है, सो ठंड अलोन इज अ बिग फैक्टर। इग्नोरिंग मी टिक्कू भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार। क्या बार्टेल जी को बाहर दिख रहा है? um unless he's having regular trips to the hotel restaurant, I don't think so. I feel he's bad at handling the game under time pressure. What do you think, टिकू भाई? यार ये आई थिंक रीसेंट बायस है थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा हर किसी प्लेयर के लिए मुश्किल होता है। सो आई वुड से कि अभी देखते हैं क्या होगा लाइफ में यार, अभी तो बहुत लंबा जाना है। प्रग क्या पता 4 गेम लगातार जीत जाए। तो ये पता है मैं देखा था आज प्रग का थोड़ा हिस्ट्री देख रहा था। मतलब व्हेन ही बिकेम इंटरनेशनल मास्टर एट द एज ऑफ 10, एक टूर्नामेंट था जहां पे उनका 4 में हाफ पॉइंट था और वो अगले 4 में 3.5 पॉइंट मार के नॉर्म कर लिए। सो ही इज ऑलवेज द गाय हु हैज बीन कमिंग बैक फ्रॉम द स्टार्ट, तो कोई चक्कर नहीं है। 100 bet फॉर गुकेश विन एनीवन। भाई पिछले $100 कहाँ है? अगर इतने पैसे हैं तो भाई हमें भेज दो फिर पहले पुराने वाले बेट के, वो कहाँ है भाई? UPI कर देना भाई फिर पहले एक बार लास्ट टाइम। ये क्या है भाई?
Who is the stronger player you have defeated? Online तो I think actually online Bartel ही है, I think इसको मैंने हराया है. बेचारे Bartel जी getting roasted for no reason. I think he's the strongest player I have defeated online in terms of over the board rating. I think so. I might be wrong, but क्योंकि बुलेट का मुझे पता नहीं, बुलेट में तुक्के से कोई मैं गेम जीत गया हूं. पर इन टर्म्स ऑफ ब्लिट्स एंड सो ऑन तो बाटल जी ही है, जिनकी शक्ल यहाँ पे दिख रही है आपको. भाई द वे क्वीन जिसके लिए रानी भागते हुए, हमारे बिशप से भागते हुए, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पीछे पड़ेंगे भाई. नाइट D2 नाउ. Please say some Russian accent. You sound amazing in Russian voice. I don't know. I was a Russian, क्या बोलते हैं उसको, singer earlier, and I had top chart singing songs, but then they kind of banned me because apparently we had some other politicians who were better singers there. ये इंडिया नंबर 1 बन के हारने का कर्स कब तक खत्म होगा? आज होगा खत्म. आज सारे कर्स उतरे जाएंगे. आज हमारे कोई ना कोई प्लेयर, चाहे वो गुकेश हो, विदित हो, प्रग हो, इंडिया नंबर 1 बनेंगे और वो फिर बने रहेंगे नंबर 1 बहुत बहुत समय तक. देखते हैं भाई. बिशप D3 एक सजेशन आया है. बिशप D3 यूजुअली चाल ठीक होती, मगर यहां पे कहीं ना कहीं व्हाइट को भी ध्यान रखना है कि यहां मेट इन 1 का थ्रेट है G2 पे. अब ओनली मूव इज 91 एंड नाउ 95, तो हमें E5 खेलने का मौका मिला ही नहीं और हमारा ये G2 पॉन बहुत कमजोर. सो इसलिए ये पीस वापस नहीं खेलने, पहले हमें इसका कुछ करना पड़ेगा. सो अब 92 का खेलते हैं. मान लो बिशप यहां खेलते हैं, तो नाउ वी हैव नाइट F4 tucking the queen and the queen has not many squares because अगर queen G5, अब ये नाइट यहां आएगा F3 पे एंड बिशप हुआ हमारा. सो queen G4, king H1, bishop is trapped, bye bye. So that's why I think कि यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो वीडी भाई पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने पेटीएम नंबर नहीं देखा? अच्छा भाई, मेरी स्ट्रीम पे जाके यूपीआई आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, मेरे चैनल पे जाके. नहीं तो बहाने अच्छे हैं. शिवम ब्रो प्लीज, ही क्या है भाई, वीडी भाई थोड़े स्ट्रेस में लगते हुए. ये दुख खत्म नहीं होता है, जल्दी जीतेंगे गेम आज तो थोड़ा दुख खत्म हो जाएगा. चैट, वीडी सो गया क्या? कैन वी हैव फुल स्क्रीन? द मैग्नस कार्लसन मोमेंट फॉर विदित गुजराती, आई थिंक. वेट, इज ही whistling while sleeping? I thought he was whistling while sleeping or something. It definitely looked funny for sure. I think ये देखना पड़ेगा बाद में स्ट्रीम पे जाके. But it was like he was whistling while sleeping. Interesting strategy there. Going back to the board now. मकसूदलू भाई बैक एंड फोर्थ करते हुए वहां पे. What's your age? How old do I think I am? Guess करो भाई नितिन भाई. Yo Michelle, how are you? भाई 440 वोट है और 107 लाइक. बहुत ना इंसाफी है भाई. जल्दी से लाइक करो भाई. क्या कर रहे हो चैट? जल्दी से लाइक करो भाई. जल्दी जल्दी लाइक करने का भाई. और पता है क्या, मैं ना एक मैं ना ये पिन भी करने वाला हूं एक लिंक भाई. कुछ लोग तो देख लेंगे भाई, कम से कम 1000 व्यू तो हो जाएंगे वीडियो के. भाई शॉर्टकट टू फेम. भाई वैशाली इस बोर्ड पिन कर दिया मैंने. रुको. वैशाली गेम बाय द, ओ वैशाली's opponent has apparently made a mistake क्या? So rook a7 b3. Oh, Vaishali's opponent has apparently made a mistake because now bishop c5 and if takes then b4 and दो connected pass pawn है. तो maybe Vaishali can actually win this. White does have some compensation, but f4 अभी possible नहीं है because it's pinned and ये pawn बहुत ही pass है. Oh, Vaishali might have a chance. b3 might be a mistake. Usually इन structures में काफी अच्छी move होती है, but might be due to some tactical reasons this might not be working. 22 से 48, 33 is very close निहार. 31, 32 होने वाला हूं इस साल. 48, 16 यार. मुझे लग रहा है यार, मतलब ये नंबर से हम वी कैन नॉट गेट इट ऑफ. कहीं ना कहीं पे नंबर आएगा ही आएगा. आई एम बैक विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. वेलकम ध्रुव भाई. 80 कह रहे तरुण भाई. वाह वाह. बाय द वे 92
Vidit Gujrathi finds the best move. He continues his perfect accuracy game. कोई भी मिस्टेक करने के मूड में नहीं है विदित, परफेक्ट चेस खेलते हुए। और ये नाइट आगे जाके C4 जाके बिशप पेयर ले सकता है। It could come to F1, G3 and attack on the king side. It supports the pawn, connects the rooks, and VD clearly seems like he has the better part of the deal here. उनके पास सेंट्रल पॉन है, ब्लैक का कोई पॉन सेंटर में नहीं है। ब्लैक के पीसेस काफी सॉलिड है, काम एंड कंपोज है, बट VD does have more space, and this bishop is going to be a brilliant piece long term. मजा आएगा भाई गेम में आज। मुझे लग रहा है VD प्रग दोनों बिल्डिंग अप टुवर्ड्स अ विन। एज इज जस्ट अ नंबर कह रहे हो। थैंक यू गोकुल भाई, आई अग्री। एंड कंसिडर कि आपने कहा है तो आप भी मेरे साथ ही होंगे लगता है 30s में। मुझे याद है एक्चुअली आपने कहा था 30s में हो ना, अभी 34 समथिंग। मेरा भी नाम लो ना क्रिकेट भाई, देश में हर इंसान आपका डेली बेस पे नाम लेता है भाई, कितना नाम लोगे यार। शो गुकी गेम इज ऑन 100% एक्यूरेसी भाई, बस 10 ही मूव है ना। सो फार दे हैव बीन प्लेइंग ऑल थ्योरी मूव्स, एंड नोदिरबेक जी बहुत डीप थॉट में जाते हुए अब। पिछले पता नहीं कुछ 17 मिनट सोच चुके हैं ऑलरेडी। अच्छी बात है, थोड़ा प्रेशर फील करते हुए। प्रग की गेम अगर हम देखें, हमने B6 तक देखा था और उनके ओपोनेंट ने चुपचाप जल्दी से कैसल कर लिया है। और बिशप Q7 खेलते हैं प्रग, पुटिंग द बिशप ऑन द लॉन्ग डायगोनल, उमदा चाल। और अब आता है बिशप D3, पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स H7। फिलहाल के लिए चैट, आई थिंक प्रग की एक्यूरेसी इज 99.9। वो 0.9 कहां गया ये तो हमें मतलब आई थिंक हैंडराइटिंग ही बताएगी। और वाइल्ड की एक्यूरेसी 99.4 है, बट द प्रॉब्लम इज अगेन ऑलरेडी 30 मिनट यूज कर चुके हैं वो यहां पे। ऐसा क्यों भगवान ही जानता है। 31 एग्जैक्टली, मैं 24 का हूं। ये क्या है भाई, अभी कहते एज इज जस्ट अ नंबर, फिर ऐसे क्यों बोला भाई मेरी क्यों। इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम देन ये क्यों बोला। वीडियो देख के लास्ट वाला पार्ट एक्सपेक्ट नहीं किया भाई, वीडियो थी कैसी है तो बताओ। नोदिरबेक आउट ऑफ प्रेप, मे बी हो सकता है, और मे बी इट कुड बी अ ट्रिक। वी नो नोदिरबेक हाउ ट्रिकी ही इज। मतलब ही इज द गाय आई कैन बेट जो पूरा 25 मिनट पूरी ऑस्कर लेवल है यार, मतलब बॉलीवुड लेवल एक्टिंग तो कर ही लेंगे। हाँ तो कैमरा आप लगा दो गुकेश और नोदिरबेक का, एंड बोर्ड तो मैं शिफ्ट कर लूंगा रंजन भाई। हम्म वैशाली इज राइट नाउ better chat. She has to find bishop C5 takes and B4, and hopefully these two pawns will give her a lot of chances to win this game. F4 is not possible, and that means white का attack बहुत slow है, and double pawns भी बहुत मुश्किल करते हैं यहाँ पे, and C5 is also closed, so it's not easy for Vaishali's opponent. I think she should have a good chance here. यो सूरज भाई क्या हाल चाल। व्यू ऑन कश्मीर फाइल्स भाई, क्या व्यू दूं भाई मैं यहाँ पे अभी। डोंट वरी, प्रग ब्लंडर करेगा इन एनी पोजीशन। ए वाईटी प्रीमियम भाई, ऐसा नहीं है यार। आज जीतेगा प्रग, जीतना ही पड़ेगा आज। प्रग विदित का जीतना बहुत जरूरी है, एंड फॉर गुकेश आई एम होपिंग फॉर एटलीस्ट अ ड्रॉ, जीतना। ओ बाय द वे लुक एट दिस, उन्होंने खेला है बिशप टू E1, एंड यू नो व्हाट, ये आज तक चेस की हिस्ट्री में chess.com पे सिर्फ एक गेम में खेला गया है। सो वेरी वेरी we are already in a kind of a new position. So अब देखना पड़ेगा कि कैसे लोग ओवर द बोर्ड कैलकुलेट कर पाते हैं। चैट कम ऑन, स्ट्रीम लाइक करो, एक चैलेंज करना है मैंने, जल्दी करो भाई, 360 लाइक करो जल्दी। आपको अच्छा महसूस करवा रहा था, भलाई का जमाना भाई, ये क्या है भाई। गेस्ट को बुलाओ स्ट्रीम पे, गेस्ट आएंगे भाई, गेस्ट आएंगे। फोर्थ फोर्थ से गुकेश विल बी टॉप 5 इन द वर्ल्ड इन बिफोर कैंडिडेट्स भाई, ये तो बहुत मतलब खतरनाक बात होगी भाई अगर ऐसा होगा तो। इंडिया नंबर 1 हो जाओ फिर हार जाओ, विशी से फिर से नंबर हो गए, बस नेवर एंडिंग साइकिल भाई। ऐसा बहुत लोगों ने लिखा था कि भाई लिटरली म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं लोग, कभी कोई कभी कोई।
You are better than Levy aka Gautam. At what though? That is the question. At what? What's the purpose behind this move? This move basically एक idea है, you get out of the knight e4 move. For example, um, knight e4 here is a common tactic. ठीक है? And the idea is to take this bishop. So bishop e1 gets rid of it. Second, it's very, asking black what you will do. So for example, I can choose knight c3 or knight d2 based on how black plays this. I am not committing my knight. That is the benefit. So काफी इंटरेस्टिंग मूव्स है यहाँ पे. वाईटी प्रीमियम अपने हाँ भाई ले रखा है यार. वाईटी प्रीमियम जरूरी है, फैमिली के लिए पूरा ले रखा है. वाईटी यार एड्स अब देखे जाते नहीं यार. दैट्स द इशू. H6 खेल सकते हैं. वुड बी एन एक्सीलेंट मूव. जो वेटिंग मूव वाइट ने दी, वापस उसी के मुंह पे वापस. तू वेट कर सकता है तो हम भी करेंगे भाई. वुड बी एन एक्सीलेंट मूव. काफी लॉजिकल ट्राई. कैन यू गिव मी अ फ्री मेंबरशिप? निहाल भाई, आई विल गिव आउट फ्री मेंबरशिप्स. जब कोई चैलेंज होगा या समोसे दूंगा, मैं एक चीज दूंगा, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी. आई मीन यू हैव टू विन अ चैलेंज. इतना कंजूस से टिक्कू भाई में होता है समोसा खिलाता है भाई. समोसे जिसके पेट में जाते हैं उससे पूछो ना यार, कितना टेस्टी होता है. भाई विशी इज जस्ट प्रूविंग कि हाउ डिफिकल्ट दिस इज यार. जो तुम लोग आके आजकल के बच्चे कर रहे हो, देखो मैं कब से 20 साल से कर रहा हूं भाई. 2 दिन नहीं टिक पा रहे तुम, हम 20 साल से टिके हुए भाई. मयंक जी आपको शाउट आउट भाई. कैसे हैं मयंक जी? नेपो नहीं जीतेगा इस बार यार, बहुत कम चांस है. वेरी अनलाइकली बाय द वेरी वेरी अनलाइकली. बाय द वे चैट, ओके, गोइंग टू द गेम ऑफ विदित. हैज समथिंग हैपेंड? ओ, ब्लैक ने कैसल कर लिया है. एंड नाउ द थिंग इज, नाउ वी कैन प्ले रुक e1 एंड किंग h1 एंड देन स्लोली धीरे धीरे ना कभी कुछ ये, मतलब आई वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सच आइडियाज. मतलब थोड़ा सा क्रेजी कुछ. पहले बिशप भी अगर ले ले तो मजा आ जाए. ये बिशप मुझे बहुत तंग कर रहा है. एंड देन वी कैन डिसाइड कि भाई बिशप d3 खेलना है, किंग h1, रुक e1. वी कैन स्लोली प्रिपेयर एन अटैक हियर. एंड आई डू लाइक विद दिस पोजीशन. टाइम थोड़ा सा पीछे है, बट ठीक है, इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज दे हैव प्लेड 12 मूव्स ऑलरेडी. करण भाई क्या हाल चाल? स्पेशल चैलेंज है वो 150 नहीं 369 लाइक्स पे कहा था मैंने भाई. 369 लाइक्स पे हर दिन. इट्स अ ट्रेंड नाउ. तुम दिमाग में बिठा लो चैट. जितना जल्दी करोगे, जितने लाइक्स होंगे उतने चैलेंजेस हो पाएंगे. फर्स्ट चैलेंज विल बी एट 369 लाइक्स. सेकेंड चैलेंज विल बी एट 550/600 लाइक्स. एंड थर्ड विल बी एट 1K लाइक्स. तो तुम्हारे हाथ में सब है कितने चैलेंज होंगे. ये एक पैटर्न बन गया. अब ये याद कर लो पैटर्न. दिस विल नॉट चेंज. सो इट्स इन योर हैंड्स भाई. रेड पिल या लाइक्स. किसी का बच्चा खो गया उधर. कहां खो गया भाई? क्या था भाई? What was that? Bishop making one knight. Exactly. That was the idea. And getting out of black's knight's attack. Gukesh playing with 100% accuracy. True, but that's also like the opening moves. तो वहां पे उनको पता होता है already यार. The top 6 Indians are all former India number ones. Yeah, that's a great insight by Hare Krishna is also there actually. I agree. भैया चेस में कितने टाइप की ओपनिंग्स है भाई? बहुत सारे हैं यार, बहुत बहुत ज्यादा. जितने व्यूअर्स भाई, तो व्यूअर्स क्या होता है ना, रिसाइकल होते हैं. इट्स नॉट लाइक सेम व्यूअर्स स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं. तो वॉचिंग भी बढ़ती रहती है, व्यूअर्स चेंज भी होते रहते हैं, तो लाइक्स बढ़ सकते हैं. तो मैं एक पैटर्न बना रहा हूं कि इन 1K लाइक्स विल हैव 3 challenges यूजुअली, अनलेस कोई डिप्रेसिंग दिन हो, सारे इंडियंस हार रहे हो. दैट इज द पैटर्न वी विल फॉलो. सो इट्स अप टू यू चैट. 369 600 369 669 एंड 1000 या 999, ये 3 कर देते हैं. दिस साउंड्स फेयर. 369 669 एंड 999, ये तीनों पे चैलेंज हम करेंगे. What's the winning price of candidates? I would say कि आप प्राइस की बात कर रहे हो कि प्राइस की नहीं. प्राइस तो आई थिंक फ्लाइट टिकट्स आना जाना होगा. प्राइस आई थिंक डोंट नो, आई थिंक कुछ $40,000-50,000 है. टिक्कू के साथ लेवी की सब चैलेंज करो भाई. लेवी इतना फ्री नहीं है ना भाई, मेरे साथ क्यों करेगा वो? क्या मिलेगा उसको? एनएम कैसे बना भाई? एनएम यहाँ यार लिटरली मतलब मजे मजे मिल जाता है यार.
Really missing chess 960. I kind of agree, actually. I love that format. Freestyle chess is there to stay. I absolutely agree. I love that format. There are only 20 possibilities for move 1. कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी. But that's only for white. Black के include करो, अब count करो. अब count करो भाई. Board updated भाई. This is the current position right now. So let's do one thing. Switch to the game of Prague. Has something happened? Oh, something has happened. So we fought till bishop b7. And यहाँ white ने bishop d3 खेला था and black played c5. So Prague immediately center challenge कर रहे हैं. And as usual, Nguyen taking a lot of time here. Of course हमारे लिए best है, but I really don't understand like इतना हर गेम में क्यों इतना टाइम ले रहे हो. He should definitely kind of have faith in himself. I think ये कहीं ना कहीं यही गलती मैं करूंगा किसी 2400 के साथ, वही वो गलती कर रहे हैं प्रग के साथ. भाई आप हमेशा इतना हंसते हो या बस हमें हंसाने के लिए कर रहे हो? भाई मैंने बताया था एक स्टोरी की मेरे कॉलेज में एक लैब असिस्टेंट थी जो हमारे मार्क्स देती थी. तो लैब फाइल चेक करते करते ना मैं हमेशा हंसता रहता था. तो कहती थी आप हमेशा हंसते क्यों? मैंने कहा मैम मेरा स्माइलिंग फेस है. तो मे बी आई हैव अ स्माइलिंग फेस यूजुअली अनलेस आई एम डिप्रेस्ड. एंड डिप्रेशन होता है कई बार भाई, बहुत सीरियस होता है. Anyways, going to the game of Gukesh ji को खेला क्या उन्होंने? By the way, bishop f8 played. So logical move, putting the bishop back, opening up the rook, and कल को in some cases this bishop can be rerouted via this path as well. In some cases, and right now no player is ready to commit to anything. कोई प्लेयर मारना नहीं चाहता, वो भी नहीं मारना थे, हम भी नहीं मार रहे. And Gukesh is waiting for white to commit his knight. भाई commit कर. Are you in the relationship or are you out? I am not in. कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा फ्लिंग्स में. I want a committed relationship. So that's what I'm saying. आप डिसाइड करो कि C3 की D2. ऐसे मतलब मजे मत करो हमारे साथ. चूज कर लो कहां जाना है, या A3, whatever it is. लैब बस भाई फ्लर्टिंग कहां से हो गई भाई? भाई मैं तो ऑनेस्टली जवाब दिया था भाई. anyways chat. So फिलहाल के लिए गुकेश थोड़ा टाइम कम है उनका, थोड़ा फास्ट खेलना पड़ेगा. बाय द वे नाइट D2 खेला है नोदिरबेक ने. फाइनली कमिट कर दिया है उन्होंने इस पोजीशन में. सो अब गुकेश क्या खेलेंगे? विल ही जस्ट प्ले अ नॉर्मल मूव लाइक H6 व्हिच लुक्स वेरी लॉजिकल, बट व्हाइट माइट गो E4 नाउ. आई थिंक दे आर रीचिंग दैट स्टेज जहां पे white is ready to break through with E4, has 3 pawns in the center, takes, and now you can take with the queen, and at some point black को E5 या C5 से counter करना पड़ेगा. Which one will it be? Only time will tell. So going back to this position, the game is extremely complex. इस गेम में कोई clear answer हमें काफी टाइम तक नहीं मिलने वाला. Let's go to the game of Prague for a second. ओके नगीन भाई स्टिल सोचते हुए, टाइम प्रेशर में फंसेंगे, हमारे लिए तो अच्छा ही है ऑफ कोर्स. एंड वीडी भाई भी अभी सोचते हुए. लेट्स स्टिक टू वीडीज गेम फॉर नाउ. लैब ओके असिस्ट कर. अरे कुछ असिस्ट नहीं था भाई. ये क्या है भाई? इस टर्न प्रग का लक आरसीबी जैसा है भाई. लक क्या है भाई? हाथ का मैल है. आज नहीं तो कल है भाई. आज आ जाएगा प्रग का लक वापस. इक्कू फ्लेक्सिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. भाई यार इंजीनियरिंग कौन फ्लेक्स मारता है भाई? इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मोर इंजीनियर्स देन आई डोंट नो पीपल इन अदर कंट्रीज. वैसे शादी की उम्र हो गई है आपकी, उनका नंबर अभी ये क्या है भाई? क्वेश्चन फॉर योर टीम फ्रीस्टाइल चेस इंडिया में किस स्टेट में होने के चांसेस है? एक्चुअली आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेसिंग कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टूर्नामेंट्स हैपन इन लाइक चेन्नई एंड सो ऑन. सो आई एम गेसिंग वहां पे होगा, बट आई हैव नो क्लू अबाउट दिस. जीरो. एंड ऑल्सो आई थिंक कोई वीडियो में देखा भी था, आई थिंक ही मेंशन कि लाइक चेन्नई कर सकते हैं. आई कुड बी रॉन्ग दो. लैब असिस्ट. चैट स्ट्रीम लाइक करो ना प्लीज. नेपोजी टुक होम 9,000. तो कैंडिडेट जीतने में भी कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा भाई. ये तो है यार, प्राइज मनी बहुत है. ये बात तुमने बिल्कुल सही बोला. तो जो भी कैंडिडेट जीतेगा कम से कम रफली ही टेक्स होम लाइक करोड़ों रुपया साथ में मिलेगा भाई. दैट इज क्रेजी. वी काइंड ऑफ डोंट रियलाइज दैट कि जो जीतेगा कैंडिडेट कितना प्राइज फंड उसको मिलने वाला है. ये क्या कर रहे हो एसएस भाई? कौन से इंजीनियर भाई? भाई वो मुझे भी नहीं पता. सिविल की पढ़ाई करी थी और नौकरी आईटी में. एनीवेज बाय द वे विदित का टाइम 60 मिनट से कम होते हुए. पीकेएल क्या है भाई? व्हाट इज पीकेएल?
Come on, Vidi bhai, come on, come on. How can I improve at chess? भाई हमारी कमेंट्री सुन के भाई थोड़ा बहुत तो improve करोगे for sure. Okay, chat. So, if you look at the game, I think we have developed all our minor pieces. Queen is developed. I think rook का मौका आ चुका है. The only piece not developed, I think, are the rooks. So, and also, we want to get rid of this threat. So, King H1 is one move that comes to mind. And as I mentioned, Rook E1 feels very, very logical as well. And एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो पिन है ना, black can sometimes use this. For example, knight d5 is actually a move here, followed up by knight f4 with queen g2 mate. So हमें काफी ध्यान रखना है यहाँ पे. It's not that easy. Game, even though white is better, optically, black is also extremely solid. Pro कबड्डी लीग, अच्छा, nice. मॉनिटर बना दो भाई. मॉड बनने के लिए बहुत बहुत टंटे पहनने पड़ेंगे तुम्हें. सो राइट नाउ वीडी स्टिल थिंकिंग, पता नहीं क्या चल रहा है भाई. गोइंग टू द गेम गुकेश नाउ. लेट्स हैव अ लुक क्या चल रहा है. 9d2 के बाद अभी भी डीप सोच में. हे जानवी, हाउ आर यू? कमान 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 गुकेश, थोड़ा फास्ट है, इतना सोच नहीं सकते यार. यू कैन इनवाइट मी फॉर कमेंट्री. थैंक यू करवा भाई. बड़ा आप बच्चों को बहुत बुरी तरह हराते हैं. बच्चों को हराने वाले हमें कमेंटेटर नहीं चाहिए अभी. फिलोडो डिफेंस क्या होता है टिक भाई? फिलोडो डिफेंस होता है e4 e5 d4 d6. So it's a very bad opening. e4 e5, knight f3 d4 बोला मैं. knight f3 d6 ये होता है ना फिलोडोर. आई थिंक ये होता है, जहां तक मुझे आइडिया. आई कुड बी रॉन्ग दो. टिक्कू भाई, मॉड बनने के लिए कौन से नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं? भाई मॉड बनने के लिए जो नॉर्म्स चाहिए वो तुम नहीं बना सकते यार. वो तुम्हारी ईएलओ तो पता नहीं, बट तुम्हारे स्किल लेवल के बाहर है भाई. बाय द वे गुकेश, कितना कंसंट्रेशन चाहिए होता है यार मैन. वीडी आज जीत जाए, फिंगर्स क्रॉस. रियली होपिंग फॉर इट मैन. आई डू थिंक कि आज अच्छा चांस है दो. मतलब ओपोनेंट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. व्हाइट पीसेस है विदित के पास, शुड बी अ पॉसिबिलिटी. एंड सेम फॉर प्रग. ब्लैक है मगर व्हाइट ऑफरिंग अ फ्यू पीस ट्रेड्स. क्या व्हाइट ड्रॉ की तरफ भाग रहे हैं? ऑल्दो मूव भी अच्छी लग रही है ओवरऑल. knight e4 seems like a good move, exchanging the active pieces black has, and also kind of keeping this bishop stupid on b4 now. कि भाई तुम यहां बैठे आए थे मारने के लिए, मैंने घोड़ा ही हिला दिया, अब क्या कर रहा है यहाँ पे. सो या एंड राइट नाउ थ्रेट इज, मान लो तुम खेलते हो a6, then I take and take on h7. So this is a big problem. So that will not work. So that's why I think यहाँ पे you have to probably just take. Bishop takes, queen takes. Now rook is hanging. So if queen d5, ed5, a3, bishop a5. Honestly, this does feel a bit better for white, man. Black is not developed. The bishop on a5 is, well, stupid is a strong word, but yeah, it's not doing much. So is there anything else? Can we play knight d7 instead? So knight takes, but again, a3 is a big problem. Bishop a5, and can I just take? But there is takes, queen c5, there is queen d3, so it doesn't work exactly. So what is the move here? e4. Wow. And if I take, then e5, I guess. Oh, b4, bishop trap ho raha hai bhai. e5 is also strong. e5 is also strong, but I think b4 is just trapping the bishop. So bhai ye to bada mushkil lag raha hai. It's not that easy then. Knight e4, very good move by Thai Dai Van Nguyen. विदित कैमरा भाई, हमारे कैमरामैन ना कैमरामैन खाना खाने बिजी है भाई. सो कैमरा वो छोड़ के चले गए स्टेडियम में, अभी 5 मिनट में आएंगे. तब तक के लिए कैमरा अटका हुआ है भाई. विदित बिकम वर्ल्ड चैंपियन बाय डिफीटिंग डिंग लेन. उसकी पूरी आशा है कि कोई इंडियन जीतेगा भाई. अपने स्कूल का नाम बताओ, पता लगाते हैं. लैब एसोसिएशन कौन है भाई? ये कॉलेज की बात है भाई. और कॉलेज था थापर यूनिवर्सिटी, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो लैब एसोसिएशन अभी वहां नहीं होगी. विदित ने आज स्कॉच खेला. कहीं प्रेप तो लीक नहीं हो गई? हो सकता है, या फिर ये स्कॉच एक तरीका हो सकता है प्रेप छुपाने का. एक्चुअल प्रेप शायद कुछ और हो. Dear Sahil bro, Karim, you're such an energetic and very cheerful person. I really admire every single game. Although I don't understand what you say, keep it up, bro.
Thank you, man. Really appreciate it. Hopefully, hopefully I'll have some English there, ताकि you can understand as well. Thanks a lot, man. Nguyen is pronounced as Nuviun. What? No way. How can it be Nuviun? That makes no sense. Why is the G there then? Predictions for today: Vidit wins, Guki and Pragg lose. क्या बात कर रहे हो राघव भाई? बिल्कुल भी नहीं. Pragg will not lose today. Don't base yourself on this evaluation. हमें पूरा भाई है नगुएन भाई पे कि वो ब्लंडर करेंगे भाई. टाइम पे पूरा भरोसा है उनके. निरंजन भाई was lab assistant. लोल्स. नहीं भाई, निरंजन भाई नहीं थे. निरंजन भाई तो उन्होंने तो यार इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी अनफॉर्चुनेटली. आपकी क्रश है क्या? नहीं नहीं भाई, मैंने अपने क्रश के सारे सपने क्रश कर दिए, मतलब खुद के. गोइंग टू द गेम ऑफ, ओ बाय द वे चलते हैं विदित की गेम पे. कुछ हुआ है क्या भाई? वीडी भाई इतना क्या सोच रहे हैं यार? भाई चल दो यार, टाइम प्रेशर आ रहा है. इतना बढ़िया खेल रहे थे फास्ट फास्ट, सडनली फिर से स्लो स्लो हो गए. जब सब फास्ट चल रहा है तो फास्ट चलने दे, स्लो नहीं होना चाहिए यार. नाउ सडनली यूज ऑन टाइम प्रेशर, एंड नाउ स्पेशली 20 मिनट्स का डिफरेंस है. डोंट लाइक दैट. उनके ओपोनेंट का 0.5 स्कोर है आउट ऑफ 3. ही इज नॉट इन गुड फॉर्म, इज द लो रेटेड प्लेयर. लेट्स पुट प्रेशर ऑन हिम. भाई तुम प्रेडिक्शन मत ही दो भाई. प्रेडिक्शन कहां, हम तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहे हैं यार. भावना बाय द वे मेरी लाइफ की फर्स्ट क्रश भी थी, तो वो भी इंक्लूड हो गया. अरे ऐसा भी कोई बंदा है जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी? भाई कोई तो होगा यार, कहीं ना कहीं वाले तो होंगे ना जो अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की, इंजीनियरिंग पढ़ गए. नेवर सॉ 1K लाइक्स भाई. शैल वी लाइक मोर देन वंस? नहीं नहीं भाई, इट्स ओके. एक बार इज इनफ. टिकू भाई एक चेस मैच हो जाए. अभी हम तीन तीन चेस मैच देख रहे हैं भाई, एक ही क्यों? Vidit, by the way, falling even lower on the clock. Come on, VD, play. Niranjan bhai is back from his dinner and we can see VD on screen now. Come on, VD bhai, खेल दो यार. ऐसे मत करो यार, फीलिंग्स से मत खेलो यार, पीसेस से मत खेलो प्लीज. Play with the pieces, not the feelings. What's your Chesscom ID? My Chesscom ID is Crazy Martian because I'm from Mars. I mean, what I mean is, I love Mars. That's what I mean. भाई 2 दिन से लॉस चल रहा है भाई. दैट्स नॉट द केस भाई. अब तक तो भावना की शादी भी होगी. गो टिक्कू, विदित ने आपका मूव चूज कर लिया. अरे ही प्लेड किंग H1. नाइस नाइस नाइस, वेरी वेरी सॉलिड चॉइस गेटिंग आउट ऑफ दिस थ्रेट. एंड या आई मीन नाउ द बॉल इज इन ब्लैक कोर्ट. कि भाई अब वो यहाँ फुटबॉल खेलेंगे या टेनिस या बैडमिंटन या बास्केटबॉल, देखना पड़ेगा. Do you think there'll be a time when everything will be theory in first 10 to 15 moves? That's already the case now. I think theory extends way past 15 moves now for top players. That's why freestyle chess is a breath of fresh air. Yo, Naitik bhai, what's up? Not a weird move, chat. यहाँ पे एक threat था. Let's say you play A3. Bishop H3 is a constant threat for white to face. I know it says white is better and you can play knight H4, but हर move पे calculate करना पड़ता है bishop H3. With king H1, what you do is you get rid of this threat. Now if bishop H3, I can just take. There is no pin on the G pawn. पहले pin था chat, very important. This was pinned. You can't take because the pawn is pinned. And that's why king H1, logical move. Maybe not the best, but a logical move nonetheless. In the labs, quiet growth. अबे ये क्या है भाई? बाय द वे वीडी भाई बोर्ड से उठते हुए ऑरेंज जूस लाने गए होंगे 100%. कोई चक्कर नहीं है. समोसा ले आओ भाई, समोसे लाएंगे. चैट 369 लाइक्स पे समोसे लाएंगे, तुम्हारे हाथ में. ऑफिस का काम कर रहा हूं, गिटहब इज डाउन, अब मस्त मैच देखूंगा. वेलकम मिस्टर एस्ट्रो गाय. क्या आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं? I enjoyed freestyle because there is no theory, no opening. I absolutely agree. I loved it. Who is against with it? It is Mateusz Bartel. And flaunting again, मैंने इनको हराया था टैरल ट्यूसडे में, so definitely not that strong a player. By the way, बार्टल जी का और नगुएन जी का हेयर स्टाइल काफी सिमिलर है. लगता है उनका हेयर स्टाइल एक ही है. गुकेश गेम देखते हैं एक बार भाई. पहले प्रग गेम देखते हैं एक बार. एक्चुअली कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. प्रग पे थोड़ा प्रेशर पहली बार.
नेगुएन भाई थोड़ा प्रेशर डालते हुए बढ़िया चाल निकाली है, 90 जो हमने देखी एनालाइज करी, अभी उस पे आएंगे दोबारा। लेट्स गो टू गुकेश गेम। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। लुक एट गुकेश चैट, 53 मिनट्स हो क्या रहा है? बोथ विदित एंड गुकेश टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। आई नो दे आर अंडर प्रेशर, बट कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा उनको। भाई 2 साल से चेस की कोचिंग लेके मैग्नस को हरा सकता हूं क्या? भाई अगर पोकर की बात कर रहे हो तो पॉसिबल है, चेस में मुश्किल। साइंस के बोर्ड्स हैं भाई, साइंस के बोर्ड्स में तुम्हें पता है ना बोर्ड एग्जाम कैसे होते हैं। भाई मेरे स्कूल में तो लिटरली जब वो प्रैक्टिकल फाइल भरनी थी तो क्लास में बिठा के उन्होंने कहा था भाई खोल के चेप लो। तो ऐसे होते हैं भाई बोर्ड एग्जाम्स। यूजुअली जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, प्रैक्टिकल्स। इज ही नॉट स्ट्रांग? आर यू मोर स्ट्रांग? नहीं नहीं भाई, आई एम एक्सट्रीमली वीक। माई हार्ट इज वीक भाई। आई हैव बीन हार्ट ब्रोकन मल्टीपल टाइम्स बाय ब्लंडर्स। हैशटैग समोसा हमें करना चाहिए ट्रेंड यार, हैशटैग समोसा स्टार्ट करना चाहिए नहीं? नोवी यून इज रियली द राइट प्रोनाउंसिएशन। आई हैव अ फ्रेंड द सेम नेम। अच्छा, नोवी यून, यार ये मुझे याद नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल है याद करना यार। मेरे को जी, आई सी जी, आई स्पेस, आई स्पीक जी। यार पार्ले जी से हमें आदत हो चुकी है यार, मैं वो पार्ले जी है बोलूं पार्ले ई, इट डजंट मेक सेंस। हम भी कॉपी के थे प्रैक्टिकल्स, ये हुई ना बात मिस्टर जेन। गोइंग टू द गेम ऑफ विदित, कुछ हुआ क्या वाइकिंग हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है। सोचते हुए बाटेल जी। गोइंग टू गुकेश अगेन, नहीं हुआ है। गोइंग टू प्रग अगेन, नहीं हुआ है। सारे तीनों इंडियन प्लेयर्स डीप सोच में, समय कम होता हुआ उनका। Gukesh will win, but Abdus is also beast. I know, man. It's going to be complex to win this one. And yahan pe na, for example, c5 is one move which usually you do want to play, but this also opens the bishop here to some extent. So it's a double-edged sword. Let's say he takes on c5, you take on c5, and let's say he takes on d5. अब किससे मारे ये भी एक सवाल है, पॉन से मारे, नाइट से मारे। Usually I would take with the knight, but yeah, pawn takes is also tempting because rook is attacking the pawn now. And if e3, for example, then there is also, ये bishop g4 अच्छा लग रहा है, घुमा फिरा के the bishop can come to g6, then knight can come to d3, तो काफी interesting. Rook coming to c8, so pawn से मारने की भी अपने advantages है. And ये b3 square weak है, e4 square weak है, d3 square weak है. So yeah, there are many options possible. c5 definitely one possibility. Because I think c5 pe e4 might not be that great because now I can take on d4. So that's why c5 might be a good try, and especially because the knight is on d2 now. अगर knight b1 पे होता तो c5 खेलते ही knight a3, knight b5. अब knight d2 पे आ चुका है, no knight b5 possible, hence c5 becomes more stronger now. स्टार्टिंग से भाई टिपिकल कैटलान थी भाई, टिपिकल कैटलान, बिशप b4 चेक एंड नाउ बिशप e7 बैक. वी ब्रिंग द बिशप टू d2 ताकि नाइट d2, क्वीन c2, e4 जल्दी ना खेल पाए. द बिशप इज ऑकवर्ड ऑन d2 एंड देन या वी कैसल कैसल c6, क्वीन c2, सारे डेवलपिंग मूव्स हैं. a4, a5, a4, rook e8 and bishop e1, bishop f8, and this is the current position right now. टिक्कू भाई समोसा चाहिए, हैशटैग Vidit doesn't look 29 at all. भाई बस एक बार जीत जाए कैंडिडेट्स और प्राग मास्टर्स के बाद तो भाई उसकी उम्र भी फेमस हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है. You also calculate quite fast, then why is the rating so low? भाई commentators के पास बहुत सपोर्ट होते हैं भाई, including the bar, which is a clear sign. Then you can also take help of the chat, the engines. You can literally just look at opening theory that has been played on chess.com forever. The players don't have that luxury, bhai. Why don't you stream often when tournaments are going on? भाई और भी वीडियो स्टूडियो भी डालनी होती है यार, तो थोड़ा काम धंधा भी होता है, बट या करेंगे भाई, और भी स्ट्रीम करेंगे, डोंट वरी. इस साल तो बहुत ही टूर्नामेंट है भाई, थक जाएंगे भाई स्ट्रीम करते करते. फिर टाइम प्रेशर में खराब करेंगे टाइम भाई. व्हाट आई रियली वांट इज प्रग ना पड़े टाइम प्रेशर में, बिकॉज प्रग हैज, ओ बाय द वे, प्रग हैज एक्सचेंज्ड. He has taken on e4. We have bishop takes e4 and bishop takes e4, queen takes e4 played. So now we will see if he will play queen d5 or will he play knight d7. Let's find out. Yeah, bishop is extremely awkward, chat.
White is slightly better. Yep, knight d7 played, but a3 will happen on the board, and then the bishop will drop back, and now white can even take, and you. Yeah, I mean, I want to take with the knight. Looks extremely strong. Chat, can you take with the knight on c5? Because you are attacking the queen, right? So can you take with the knight? Come on, chat. Yes or no, and why? What do you think? टैक्टिकली प्रूशली या फॉर श्योर निहाल का खून कब खोलेगा भाई पता नहीं है मैंने ब्लड टेम्परेचर मेजर नहीं किया है निहाल का हु इज योर फेवरेट अमंग विडी प्रग गुकेश तीनों फेवरेट है भाई व्हाट वाज द लैब असिस्टेंट नेम आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली क्या नाम था आई डोंट रिमेंबर King H was decent. It was not the best move, but it was pretty decent because it's a logical move, human move. So you cannot take on c5, not because he is move mein kuch hoga, but white can simply drop the queen back, and there is no defense to b4. There is no defense to b4. Kuch bhi kar lo, b4 aayega, and the bishop is lost. So that's why you have to take with the pawn if he takes a3, bishop a5, dc5, which is not what you want as black. This pawn is weak, although you have some counterplay for sure, but man, white is better here. So Pragg के लिए ये game जीतना will not be easy. Nguyen has found some great ideas here, and this one will be extremely difficult for Pragg to win. Going back to the current position, this is it. Pragg के लिए f5 check करो भाई. f5 पे एक second. You mean, where do you mean f5 by the way? First, that's the first question, because it's white to play. And even if f5 at some point, queen takes e6 check के साथ आएगा भाई. So be careful about what you push. I would take with the knight 10 out of 10 times. That would be a blunder 10 out of 10 times. Who will Nodirbek? That's the question by कौन जीतने वाला है? Going to Vidit's game, King h1 के बाद Mateusz Bartel still thinking. भाई काफी लंबी सोच दोनों प्लेयर्स के लिए, बहुत बहुत टाइम लेके. क्या है भाई, जल्दी खेलो यार. बाटल जी बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं. भाई बड़े काम एंड कंपोज्ड, एल्बोज लेग्स के ऊपर, चिन के ऊपर, हाथ के ऊपर चिन रेस्टेड, लुकिंग एट हिज ओपोनेंट देयर, लुकिंग एट द बोर्ड, वेरी रिलैक्स्ड. ओपोनेंट स्ट्रेस्ड. प्रग गोल्टेड बिल्कुल भी नहीं. प्रग में लूज, इट इज पॉसिबल टू लूज दैट, बट आई डू थिंक कि नगुएन भाई का थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी लो है, सो ही माइट नॉट विल कन्वर्ट, बट जीतना प्रग के लिए बड़ा मुश्किल है. वुड यू ट्राई प्लेइंग पीसी गेम्स ऑन योर चैनल एंड ग्रो इट? नो वे. E5 by गुकेश. ओ सो चैट, हमने देखा था कि हमें C5 या E5 खेलना है. उन्होंने E5 खेला. Also feels like a logical move because यहाँ पे E4 का threat है. So black should take ideally. Let's say C takes D5. Now knight takes D5, D takes C5, knight takes E5, knight takes C5, rook takes E5, and knight C4. And white still is tiny bit better. But after rook to E8, black also feels kind of solid. मतलब ठीक है, थोड़ा rook D1 के बाद थोड़ा uncomfortable तो है position, but we also have this one square on B4 gives us, some flexibility here. So ये B4 square हमें थोड़ा सांस लेने के लिए जगह दे रहा है. So it should be okay for Gukesh. Your E5 खेला है. Let's see what Nodirbek plays. कभी कभी लैब असिस्टेंट जिंदगी में यूं ही अपना लगता है, कभी कभी कोई मिल जाए तो अपना लगता है. नंदू भाई, ये वही लोग गाते हैं जिनको कभी कोई अपना मिलता नहीं है भाई. सो आई वुड से कि जिस एक्टर ने मूवी करी थी वो एक्टर भी गायब हो गया एक्टिंग वर्ल्ड से अब. सो नॉट अ गुड सॉन्ग टू सिंग. कोई अच्छा गाना गाओ, इमरान गाने गाओ यार, ताकि लाइफ में खुश रहोगे तुम. If Vidit draws or loses, this will be another confidence hit. Honestly, I don't think it will be a confidence hit though, because at the end he's not winning yet. If he's winning and then loses, that will be a confidence hit. Yeah, draw, whatever. Right now, it seems to be okay. कोई मूवी रेकमेंड कर दो यार. मैंने एक दो एपिसोड देखे थे एक टीवी सीरीज के प्राइम, उस पे प्राइम वीडियो पे. दैट वाज डोम समथिंग, क्या था उसका, समथिंग डोम समथिंग था यार, क्या था वो, पता नहीं कोई सीरीज थी. उसके एक दो एपिसोड अच्छे लग रहे थे, वो ट्राई कर सकते हो. छोटे बच्चे उठ रहे हैं भाई. आपके लिए गा रहा हूं क्योंकि लैब असिस्टेंट भी वैसे भी गायब हो गए आपकी जिंदगी से.
भाई तो एक ही लैब असिस्टेंट है क्या दुनिया में? हाँ, और नहीं है क्या? और भी है भाई। प्रग गेम आ रहे हैं उस पे, आ रहे। इज विशी प्लेइंग? विशी इज नॉट प्लेइंग दिस। डू नहीं, कोई और था यार। इट वाज समथिंग एल्स, आई कैन लेट यू नो क्या नाम था उसका को। हैव यू सीन पिक्चर्स? पिक्चर्स मैंने सुना हुआ है, कौन सा है यार? आई थिंक आई सीन। इसका नाम गायब ही हो गया भाई। गायब ही हो गया भाई, वो पूरा ही गायब हो गया। सॉरी भाई, आई कांट लेट यू नो द नेम, इट्स अ सीक्रेट नाउ। इट्स अ सीक्रेट। प्रग गेम जा रहे हैं भाई, प्रग पे जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, प्रग पे भी जा रहे हैं भाई, डोंट वरी भाई, डोंट वरी। प्रग पे कुछ ओ ए3 खेल दिया है उन्होंने। एज एज एक्सपेक्टेड ए5, बिशप ए5 नाउ, and now they take c5 extremely strong, and we will have to take with the piada. And once we take with the piada, then our piada is kamzor, and if it is kamzor, then our, yeah, we will have to constantly handle attacks on the pawn, and I am not happy about that. Our bishop really bad. If you, I've seen Alison Borderland already, देखा हुआ है मैंने पहले वो। प्रग पक्का हारेगा शिवा भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार, अच्छी बातें करो यार। Consecutive three losses can affect Prague's confidence. Dude, if Prague loses this, that will be a huge dent in his confidence for the candidates. It's one thing to lose with, a couple of games with blunders, you can brush it off. If you come back, if Prague loses this, I would reduce his chances of winning the candidates by at least 25%. Yeah, maybe even higher. So जितने थे उससे बहुत कम हो जाएंगे. So Prague cannot afford to lose this game. 3 in a row is insane. If you lose 2 in a row in the candidates, you are already out. I don't think there are any chances now. You will literally have to win like 4-5 in a row, जो बहुत मुश्किल है. So yeah, I mean, this is difficult for Prague. He has to somehow come back here. One thing is nice कि भाई उनके opponent बहुत सोच रहे हैं. So there is some chances to come back in the game later. सीरीज कॉलेज लव, अबे यार अब हम 31 साल के हो गए चैट, थोड़े बूढ़े हो गए यार। अब कहाँ हम कॉलेज लव देखे भाई? कॉलेज लव में बहुत कॉलेज में कर लिया यार। इट्स सेंटिमेंटल हो जाऊंगा मैं यार कॉलेज की यादों में। कॉलेज बड़ा मस्त था यार, लाइफ मस्त थी कॉलेज में। You should watch the series college. अबे देख लिया। You can argue that Prague had completely winning positions. Exactly, but यहाँ पे तो क्या करें? यहाँ पे तो स्ट्रेस है ना भाई, यहाँ पे तो जीतना पड़ेगा। So going to the game of Vidit again. भाई इनके ओपोनेंट भी सोचते ही जा रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं बार्टेल जी? मुझे लग रहा है ही इज थिंकिंग अबाउट द मूव नाइट टू d5 with the idea of knight to f4. I think that's why he's thinking so much, because you can't take this because queen takes c2 chat, and that would be resigns. So knight d5 might, oh, he plays the move a6 finally. a6 चाल खेलते हुए, b5 रोकते हुए, बिशप को a7 स्क्वायर देते हुए. So if knight c4 now, he can put the bishop back on a7, and it's not going to lose him the bishop pair. But it's also a slow move. It's not something which is challenging white. So white can now play a3, prepare a move like c4, and that might be a great move as well. He can also play knight h4 to harass the queen. He can bring the rook into the game. Let's see what Vidit goes for. Can we have video on the camera quickly? पूरी रात का मैं आपकी कमेंट्री देखा, और आज में गुकेश ड्रूज विदित लिख के आया हूं भाई, विद द लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आपने पेपर में कोई गलती नहीं करी है. टिक्कू का स्कूल कौन सा? डीपीएस फरीदाबाद था मेरा स्कूल भाई. आप 31 के नहीं लगते, पता है भाई, यार क्या करे भाई, सफेद बाल है हमारे, क्या करे भाई, मजबूरी है भाई. अब कर देंगे भाई, कुछ लगा देंगे बालों पे तो फिर नॉर्मल लगेंगे. बार्टेल मैथ्यूस लुक्स लाइक बार्टूस. भाई मेरा कमाल है भाई यार, तुमने मेरा सरनेम उसको दे दिया यार, सॉरी उसका सरनेम मुझे दे दिया यार. क्योंकि गेम पे जाते 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 हो जाते भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन वी हैव वीडीज फेस? ओ, वीडी इज आल्सो फोकस्ड नाउ. वहां पे बैठे हैं, वहां पे बाटल जी पीछे दिख रहे हैं, वो ऐसा सीट पे ही बैठे हैं अभी. भाई कैमरा क्वालिटी तो काफी इंप्रूव हो गई यार. एक जमाने में मुझे याद है भाई, क्या ही बेकार कैमरा क्वालिटी हुआ करती थी लाइव फीड की. नाउअडेज द कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच. ये देखो भाई, ब्यूटी कैम. भाई जो लोगों की लाइफ में पार्टनर नहीं है, वो यही ब्यूटी कैमरा ही एंजॉय कर ले भाई, ब्यूटी वाला. कोरोबोव जी एज यूजुअल चलते हुए, वो बच्चा भी एज चलते हुए भाई.
And Vidit bhai, ये angle I love more. I don't know why this angle has something different about it. Maybe it's because it's unique. Yeah, you don't see this every day. It feels more real. Yep. Okay, it's definitely stressed out. Let's go back to the board, Niranjan bhai. One look at Vaishali's game, by the way, just one look. We saw b3 and she did find the move bishop c5. Pawn takes and b4. So Vaishali right now is definitely much better against her IM opponent, and she looks on stride to basically win this match and come back with 2 wins in a row. That will be a great result for her. And going to the game of Gukesh now, जहां पे e5 के बाद we have a few captures. So Nodirbek ने without thinking too much after Gukesh's e5, we are wondering कि e5 c5 कौन सा खेलेंगे. e5 खेला, takes on e5, knight takes e5, knight takes e5, rook takes e5, c takes d5, pawn takes d5 मारा है उन्होंने. यहाँ पे knight takes भी मार सकते थे. different strategy है. And now comes knight f3 attacking the rook, and the queen defends the pawn. Very important. The rook drops back to e8, and this is the white position. Niranjan bhai, I have a question for you. Doesn't this look like slightly better for white comfortably? Like knight comes to d4 and isolated pawn, putting pressure here, open c file. We do have the b4 square, but white feels slightly better, no? निरंजन भाई है ही नहीं क्या? मैंने बोला निरंजन भाई गायब है भाई. निरंजन भाई निरंजन भाई, अच्छा यही हो. हाँ, क्या लगता है भाई? डू यू थिंक व्हाइट इज बेटर? इसका गेम है ना. ठीक है, 1 मिनट लगा देते हैं. गुकेश गेम में व्हाइट इज बेटर. निरंजन भाई यार, आप वो कोई कौन सी वो गाने गा रहे हो भाई? कौन सा है बताओ भाई. डू यू थिंक इज बेटर और नॉट? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है इट इज बेटर. मुझे लग रहा है ब्लैक इज डायनामिकली इक्वल. मतलब पीस प्ले से आप कह रहे हो कि ब्लैक इज ओके? करेक्ट. इंटरेस्टिंग. बाय द वे, एक और ध्यान रखना भाई, चैट निरंजन भाई कहते हैं कि ब्लैक इज डायनामिकली इक्वल, बट आई वुड स्लाइटली डिसएग्री विद निरंजन भाई हियर. एंड उसका कारण यही है कि मुझे बिशप c3 चाल बहुत ही मस्त लग रही है यार. आई रियली लव दिस मूव फॉर व्हाइट. ये पीस पे अटैक, ये नाइट पे अटैक, किंग साइड पे अटैक, डिफेंड्स द b2 पॉन, कनेक्ट्स. अब फर्स्ट रैंक पे कोई पीस नहीं है, एंड कंट्रोल्स द d4 स्क्वायर. So I do think white should be slightly better, but I agree, like black should be able to counter with his piece play the central pawn, but समय ही बताएगा as usual. He used to, अबे छी कारपो भाई, क्या 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 बोल रहे भाई तुम? My rating is 915 bits. How can I improve? Solve a lot of tactics. Chesscom tactics puzzle solve करो daily basis पे. Hello, ये क्या है भाई? Lab assistant in the chat, lols. b6 now. b6 is risky. You're opening this. I would not hurry with b6 here. Vidit जा रहे हैं. Who is more versatile? Vidit, Dance and Gukesh. In chess play, versatile? Probably Pragg, but it's hard to say, man. All three are very, versatile. तो पता नहीं correct word है कि नहीं. They are very flexible with their opening repertoire, their strategy. They are not like one trick ponies नहीं है. They are very, very flexible with their play. Yo, Robin Gamer, कैसे हो भाई? So far Gukesh low on the clock, 20 minutes behind. Chat update करते हैं कितने moves में, कितने minutes में कितने moves खेलने हैं सारे players को. Gukesh 20 minutes behind. He has to play 24 moves in 46 minutes. So far not critical, but definitely borderline difficult. Next we have Vidit against Nguyen. जहां Pragg against Nguyen. Pragg is slightly worse in the position, but time wise he's doing really well. उनके पास 26 moves खेलने हैं 68 minutes में, so that is the plus point. But position wise उनका bishop is not happy. ये मुझे वो बॉर्डर मूवी के जो याद है, जो वो पाकिस्तान के टैंक देखने के लिए आगे गया था, बेचारा अकेला रह गया था बाहर, लकीली बार बार बाल वापस होता था, वैसे लग रहा है. ये थोड़ा सर्वे करने गए थे और बाहर ही अटक चुके हैं अब.
So that's the issue for the bishop on a5, and I hope कि it will get a chance to come back. But white का time बहुत कम होते हुए उनको 26 मूव्स खेलने हैं 39 मिनट्स में, एंड एज वी नो नगुयन भाई कई बार 20-20 मिनट लेते हैं एक मूव पे, सो इट विल बी ऑसम. नेक्स्ट वी हैव विदित अगेंस्ट बाटेल, जहां पे वी जस्ट सॉ द मूव a6 एंड विदित ने जल्दी से खेल दिया है a3 एंड ही हैज टू प्ले 26 मूव्स in 50 minutes. So as of now, clock पे Pragg doing really well, Vidit doing okay-ish, and Gukesh slightly struggling. Yo Aditya bhai, what's up? Will you go to Prague to stream? नहीं भाई, हम घर से स्ट्रीम करेंगे भाई. Prague तो चल ही रहा है. Prague जाके क्या करना है हमें? Vidit is not an aggressive player. He's more of a defensive, reactive player in my opinion. I think he's a strategic player, not an aggressive player. That's the correct way to put it. I don't think he doesn't put pressure on the opponent. He does, but he will not necessarily, start attacking like crazy. He puts strategic positional pressure on his opponent one by one. Now he will play c4 maybe. The rook will come to e1, d1, whatever it is. Vidit को जूस पीना पसंद है भाई, ये तो है. Remember, you couldn't even make Ohm's law circuit and what? आज किसी तो टिक्कू भाई को क्रेडिट देंगे. अरे भाई थैंक यू यार, तुम तो पता है जब भी कोई इंडियन जीतता है ना तो किसी ने आज तक नहीं बोला भाई टिक्कू भाई ने खूब हाइप करी गेम तभी गुकेश जीत गया. बट जब कोई हारता है ना, भाई टिक्कू भाई की गलती है. मैं कहता हूँ भाई ये कैसी नाइंसाफी है भाई, क्रेडिट तो मिलता नहीं भाई. क्रिकेटर को भी भाई थोड़ी गालियां पड़ती हैं जब वो हारते हैं, बट उनको भाई कॉन्ट्रैक्ट भी बड़े बड़े मिलते हैं. मैं को क्या चल रहा है? डू यू थिंक यू कैन बीट नाइस इन क्लासिकल? नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो. रिवील निरंजन भाई फेस? नहीं, इट्स अ सीक्रेट. क्या पता निरंजन भाई कोई और ही हो, क्या पता निरंजन भाई है ही नहीं, इट्स एन एआई वॉइस. भाई हु नोस. क्या निरंजन भाई मेरे इमेजिनरी फ्रेंड? क्या पता निरंजन मेरे इमेजिनरी फ्रेंड हो जिनको तुम सुन पा रहे हो. वी डोंट नो चैट. ये देखो राहुल भाई को गाइस लाइक कर दो. समझ? हाँ भाई 369 लाइक्स पे पहला चैलेंज होगा भाई, तुम्हारे हाथ में है चैट. टिक्कू भाई यहाँ ऐसा ही होता है. गलत है ना? गलत है ना भाई? गलत है ना? लेकिन गलत बात है ना भाई? गलत बात तो है ना भाई? सही से बोल, गलत बात है ना? सो बाय द वे गोइंग टू द गेम ऑफ Pragg अगेन. कुछ हुआ क्या? बाय द वे क्वीन c2 प्लेड बाय व्हाइट. ही डिड नॉट टेक, एंड आई थिंक वो चालाक है because I still can't take on d4 because of b4. So he can wait for a move and give Pragg more chances to go wrong. तो यहाँ पे क्या खेले यार, कोई move clear है नहीं. Rook c8 feels very logical, but again he will take, and again I have to take with the pawn. तो rook c8 क्यों खेला भाई? ठीक है, rook behind the passed pawn or whatever, but yeah, I don't like this pawn on c5, very weak. Nesh bhai is actually lab assistant. आज भी समोसे वाला धोखा मिलने वाला है. तुम मान के चलो ये ऋषभ भाई, तुम मान के चलो मैं डेली बेस पे लोगों को मेंबरशिप, आज ही 2 लोगों को मेंबरशिप दिया हूं मैं, 2 लोगों को. अरे भाई कम्युनिटर कर्स हो जाता है कभी कभी. अरे कम्युनिटर कर्स कैसे होता है? कम्युनिटर तो प्यार चाहते हैं भाई, प्यार देते हैं कम्युनिटर भाई. यो सचिन भाई क्या हाल चाल? व्हाई नॉट क्वीन c7? सो क्वीन c7 इज अनदर मूव यू कैन प्ले, but it doesn't change much. First of all, dc5 is another move, and secondly ये queen hanging है, so now I can in fact directly play the pawn to b4 and the bishop is gone. Bye bye. You can't take because रानी गई. So that's why पूरा ध्यान से rook c8 खेल सकते थे because the rook was defended. 2 मिनट में रंजन भाई को आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया टिक्कू ने. भाई यार मेरे इमेजिनरी फ्रेंड को तुम क्या आइडेंटिटी क्राइसिस दोगे यार? गोइंग टू द गेम ऑफ विदित. क्या खेला है कुछ ओपोनेंट ने? कुछ नहीं खेला है. क्या हो गया ओपोनेंट को? चल क्यों नहीं रहे हैं? कैन ऑल 3 इंडियंस विन? यार 2 के चांसेस तो बहुत ज्यादा है. आई थिंक विदित एंड Pragg हैव गुड चांसेस. Pragg के चांसेस अब थोड़े कम हो गए हैं, बट वीडी एंड Pragg आई एम रियली होपिंग कैन विन दिस. एंड ऑफ कोर्स गुकेश का जीतना वुड बी बस द चेरी ऑन द टॉप. भाई इट विल बी क्रेजी. ठीक है भाई, कैंडिडेट्स में Pragg का सेकंड मंगेश कालीचरण है. आई डोंट थिंक ऐसा होगा. Bartel in turn on queen f5 bishop good move. So let's say कि I play a move, random move, yeah, bishop a7. ठीक है, let's assume. ठीक है, I think c4 is white's plan. You open the bishop, put pressure on g7, and let's say black अभी टाइम पास कर रहा है, उसका मन नहीं है सीरियस खेलने का, वो खेलता है bishop d7. Now what do we play? I think rook a d1 for example, still improving. It's not necessarily losing for black,
But with every move, I am becoming, more and more active. Let's say black plays rook a8, putting the rook on the half open file. Then we can see कि भाई b5 खेलना है to move this knight. Do I want to, attack the queen somehow, knight h4? Do I want to play c5, opening up the knight square for c4, opening up the rook towards the bishop? So यहाँ काफी ideas हैं. But it will not be a one move win. It will be slowly grind करना पड़ेगा वीडी को यहाँ पे, and slowly ऐसे suffocate करना पड़ेगा ब्लैक के पीसेस को. If Nodirbek wins today, he will reach world number 4, not 7, Shiva. That is the crazy part. Justice for Niranjan. Current standings में I will let you know the standings by current standings में नंबर 1 पे है नोदिरबेक एंड परम मकसूदलू विद 2.5. गुकेश है थर्ड प्लेस में विद 2, टाइड विद रिचर्ड रैपोर्ट. वीडी इन फिफ्थ प्लेस विद 1.5 एंड सिक्स्थ प्लेस पे है प्रग विद 1 पॉइंट. सो 3, 5 एंड 6 रैंक्स हमारी हैं. इसको आगे बढ़ना है भाई, आगे बढ़ते जाना है. यो मिस्टर 100 जी, कैसे हैं आप? ए गुकेश मिस्टर, क्रेडिट गोस टू यू. थैंक यू भाई. ओके, सोचते हुए यार 52 मिनट्स हैं बाटल के पास और 49 है वीडी के पास. धीरे धीरे वीडी से टाइम पे नीचे जाते हुए, विद द ब्लैक पोजीशन बीइंग अ बिट ऑकवर्ड. क्लियर मूव्स नहीं है ब्लैक के पास, जो हमने देखा कि मतलब यार ये पैसिव मूव्स आर नॉट वर्किंग फॉर ब्लैक दैट वेल. सो क्या करें ब्लैक? बिशप g4 फॉर एग्जांपल एक एक्टिव चाल तो लग रही है, बट अगेन जस्ट c4 एंड इतना कुछ तहलका नहीं मचा दिया उन्होंने. इवन h3 जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई कितने, यू कांट इवन कम टू h5 बिकॉज ये g4 आइडिया कभी ना कभी तो मतलब खाएगा भाई, कभी ना कभी तो खाएगा. आई एम नॉट श्योर इफ इट वर्क्स राइट नाउ. इट एक्चुअली इवन वर्क्स राइट नाउ. वाओ, सो दैट इज इवन बेटर. बट कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम करेगा बिशप. द क्वीन विल हैव टू मूव एंड इट हैज नो स्क्वायर्स टू मूव. सो गोइंग बैक, this is the current position chat, and yeah, I'm threatening c4 next. वीडी बैग लेकर भाग गया. अच्छा, बैग में जूस होगा भाई. भाई वीडी ने जूस का स्टॉक पूरा इकट्ठा कर लिया है भाई. प्राग में जूस ही अवेलेबल नहीं है. सारे सारे वो जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो शॉप्स होती है छोटी मोटी, सब जगह जूस खत्म है. आपकी लैब असिस्टेंट भाई ये क्या है भाई? ब्लैक नाइट एंड पॉन नॉट गुड इन प्रग गेम एज यू सेड. हाउ टू कैलकुलेट? भाई प्रग गेम में ऐसा क्या हो रहा है भाई? नजर मारते हैं क्या कह रही है चैट. प्रग गेम. सो हाँ, सो यार देखो, नाइट इज ओके, नाइट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द बिशप इज. अब बिशप को गेम में लाने का कोई तरीका है ही नहीं. व्हाइट को बस ध्यान रखना है कि बिशप d2 नहीं खेलना. इफ इमेजिन व्हाइट हैड प्लेड बिशप d2 हियर, प्रग ने जो नाचना स्टार्ट करना था, उफ, exchange and Pragg is like, oh, he's so happy. So that's why he has to just keep this threat there before ka and force black to take with the pawn. And yeah, Pragg के लिए आसान नहीं है, but luckily for Pragg, opponent time में थोड़ा तो आ चुका है. It could be like धीरे धीरे NBA चाय वाला बनता जा रहा हूं. ये क्या लॉजिक है भाई? सी गैंग क्या है भाई? प्रीवियस मैच यार मत पूछो यार. Nodirbek has definitely had the upper hand, especially because ओलंपियाड में हराया था यार. वो हार मैं कभी नहीं भूल सकता यार. अब तक चुभती है, अब तक. मैं उस टाइम कमेंट्री कर रहा था, चेसकॉम इंडिया पे ही कर रहा था, आई थिंक, है ना? आई थिंक सो. आई वाज ऑन चेसकॉम इंडिया ओनली. हाँ भाई साहब, कितना चुभा था यार वो. यू लुक लाइक करण जौहर सर. सो कितना लुक लाइक? Is it enough if I go to his bank and say कि okay, I am Karan Johar, I want to withdraw all the money? Is it like similar enough? Otherwise it has no use to me. 14 को वो 2000 कैसे करे भाई? 600 ऐड करे उसमें. भाई बढ़िया भाई, कैलकुलेटर लाए और 600 ऐड करे भाई, हो जाएगा. कम ऑन, सी मैन क्या है भाई? हैव यू विजिटेड नाइजीरिया? नहीं भाई. आप अंबानी जी की शादी पे नहीं गए यार? कब थी शादी अंबानी जी की यार? अंबानी सन वेडिंग कब है यार? शादी कब है? शादी कार तो आया होगा यार, मैं यूजली देखता नहीं हूँ. कब आया, कब है शादी, कब है?
गुकी में कुछ हो रहा है क्या? लेट्स हैव अ लुक एट गुकी गेम. क्या चल रहा है भाई? Oh, by the way, something did happen after the capture on d5, rook e8, and now knight d4. The exact move I was saying, bishop c3 and knight d4, both good moves. b6 now. So where would the bishop go? b7 or a6? Both moves tempting, and yeah, b6 played. But again, I do like white position slightly. c6 square kitna tempting hai. Knight in the center. C file pe already full control. I am free to play queen c7 when I want to. So yeah, it's definitely slightly better. Yeah. Sid wants ये क्या है भाई? अब्दू विनिंग कहां से अब्दू विनिंग भाई? ये क्या चल रहा है भाई चैट में? राहुल जी क्या 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 करके आयो भाई? विदित -5. ए उल्लू किसी और को बनाना. हैव यू मेट विदित पर्सनली? हाँ भाई, आई हैव मेट विदित. आई मेट वीडी आई थिंक जब वो इवेंट हुआ था, वो जो सीबीआई का इवेंट हुआ था यार. क्या नाम है उसका, जहाँ पे अनीश और विदित खेले थे यार? क्या क्या इवेंट का नाम था, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको. सो वहां मिला था, तो ये जो टूर्नामेंट था उसमें कुछ मेरी 3rd या 4th रैंक थी, तो वीडी के हाथ से प्राइज दिया था. एंड आई विश्ड हिम गुड लक फॉर द ओलंपियाड, एंड ही डिड प्ले वेल एक्चुअली, सो इट काइंड ऑफ वर्कड. बाय द वे चैट, लुकिंग एट द कैमरास, गुकेश भाई स्क्रीन की तरफ देखते हुए कॉफी का कप हाथ में रख के, ही हैज नॉट बीन इन परफेक्ट शेप. थोड़े बीमार तो लगे हैं हमें स्क्रीन पे. सो देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे. डेथ मैच, यस एग्जैक्टली. वीडी आपको जानता है? हाँ भाई जानता तो है यार, जानता तो है आई गेस. भाई वेग साई की स्ट्रीम पे, साथ में हम स्ट्रीम पे थे, तो उस टाइम पे खूब रोस्ट करा था वेग साई, तो उसी रोस्ट करते करते दोस्त बन जाते भाई. कर्स ऑफ इंडिया वन टाइटल इज रियल. आई एब्सोल्युटली अग्री भाई. जो नंबर 1 आता है वो अगली गेम हार जाता है. सो नंबर 2 रहे टाटा स्टील में. हैव यू मेट मैक्स आल्सो? नो आई हैवंट. कल साइंस का बोर्ड है तो भाई आई प्रॉमिस तुम फेल होगे भाई, डोंट वरी. एनी गुड मेमोरीज ऑफ योर पर्सनल फेवरेट गेम? भाई मुझे याद है भाई, वो मैंने कांस फ्रांस में खेली थी अपनी बेस्ट गेम. कैन यू डिफीट विद प्लेइंग ब्लाइंडफोल्ड? नहीं भाई. हेलो कनफ भाई, क्या हाल चाल? टिक्कू बदमाश फरीदाबाद. भाई व्हाट हैपेंड लास्ट ओलंपियाड? ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है भाई. I can't answer this question. It's too. Oh, by the way, look at this queen h5 played. So बैटल जी फाइंड करते हैं queen to h5. इसका आइडिया क्या है एग्जैक्टली अब पता लगेगा. So let's say white plays c4. So यहाँ पे क्या प्लान है? Is it knight g6 and knight f4? That might be a plan because the queen was occupying the g6 square. So that makes sense. And अगर bishop g4 भी थोड़ा strong हो गया है, because now there is more pressure on the bishop. h3 becomes less likely now because the pawn is pinned. Now even knight to g6, and black is slowly building up an attack with the bishop on b6 as well. So बड़ा ध्यान रखना है. h3 might not be the best move. थैंक यू कनव भाई. ठीक है, बता दो चॉइसेस दो. नहीं तो अबे बोला ना 600 ऐड करो ना यार, क्या मैथ्स से भाई सिंपल. हेलो शशांक भाई, क्या हाल चाल? चैट स्ट्रीम लाइक कर. चलो भाई लेट्स डू अ चैलेंज. ठीक है, 369 लाइक्स होने हैं. ठीक है, जल्दी से लाइक्स कर दो. आई वांट टू डू अ चैलेंज राइट नाउ. चैट जल्दी से करो भाई, जल्दी से करो. आई वांट टू डू अ चैलेंज फॉर समोसास. जल्दी से लाइक कर दो भाई, जल्दी से. लेट्स गो चैट. भाई ये क्या सी गैंग है भाई? आप लोग का एग्जाम कब है? मेरा एग्जाम है. मेरा एग्जाम कब है भाई? 10 साल पहले. So going to Gukesh's game. E3 played by Nodirbek now. So he cements the knight in the center. Logical. Rook पे pawn पे pressure नहीं है अब. From Gukesh's perspective, decide करना है कि where will the bishop go? I'm still not convinced, because if you move it here, then the f5 square also becomes available. Bishop c5 could be a move, very logical, blocking the c file, putting pressure on this knight, which who knows, we might even take. It's not like the end of the world. So एक वो strategy भी हो सकती है, bishop c5. Oh, by the way, he plays bishop a6. So allowing rook c8 next, not allowing knight b5. Now we have the luxury to take, and also controlling some important squares on this diagonal. So now rook c8 is coming up soon. So will white play queen to c7 now? This might be the last chance if he wants to.
सी गैंग क्या है भाई? व्हाट इज सी गैंग? आई वाज चैलेंजिंग योर वाइफ फॉर चेस, नाउ आई एम आउट ऑफ बेट। ठीक है भाई। आप मेरी कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? पढ़ रहा हूं, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं भाई। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? निरंजन भाई, ये क्या चल रहा है चैट में? समझ नहीं आ रहा है मुझे। निरंजन भाई, आर यू देयर? हाँ मैं हूँ, के बारे में बात व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस सी? ये जो गैंग की बातें चल रही है, क्या है भाई? व्हाट इज दिस? एक मिनट देख लेते हैं। सी, सी मतलब शायद सी फॉर चेकमेट होगा भाई, चेकमेट मास्टर। मुझे लगता नहीं है चैट इतनी सीधी है। पता नहीं क्या चल रहा है भाई, ये शायद ऐसा कंफ्यूज होगा। कर रहे इंग्लिश ओपनिंग खेलने वाले को सी गैंग बोलते हो, सी4 वालों हैं। को सी निरंजन गैंग। भाई को बहुत बहुत भरोसा है चैट के ऊपर भाई। ये तो ऐसा लगता पता है। नहीं भाई क्या, पता नहीं क्या है भाई। Anyways, by the way, chat, after queen to h5, Vidit finds the best move in the position, and that is knight to g1. रानी को सांस भी नहीं लेने देंगे भाई। चल वापस g6 पे। शायद चेस गैंग। निरंजन भाई भोले नंबर वन। भाई जो बंदा, एक बंदे को मैं, जो बंदा बोलेगा ना ये गैंग शैंग, उसको एक बंदे को टाइम आउट मेरी तरफ से अभी के अभी। एक बंदा गया भाई। कौन है चैतन्य? राखी सावंत कौन है? सर चैतन्य सावंत कौन है भाई? पुट यूजर इन टाइम आउट फॉर 10 सेकेंड्स। जाओ भाई, 10 सेकंड के लिए रहो अब तुम। हे रेगुलर हियर है भाई, कैसे हो भाई रेगुलर जी? एनीवेज चैट, फोकसिंग ऑन द गेम यार। चैट तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो यार मुझे, अपने फोकस नहीं करने दे रहे तुम यार। चैट क्या करते हो तुम? चैट यार फोकस करने दो भाई। Anyway, so 47 minutes remaining. Let's have a roundup of all the games भाई। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया तुम्हें, मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, चैट को इग्नोर करना पड़ेगा फॉर 1 minute। सो गोइंग टू द गेम ऑफ गुकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल बिशप ए6 के बाद नोदरबेक इज नाउ थिंकिंग। He clearly has a good knight. This bishop might not be the best, but has a good square on c3. Bishop is excellent. What a piece on g2. Rook is coming to c8. So some counterplay. We also have the b4 square still. So some counter Gukesh, but as of now, Nodirbek slightly better, especially with the time situation. 15 minutes आगे है, so थोड़ा fast खेलना पड़ेगा. Gukesh has to play 22 moves in 39 minutes, and I do like his bishop on g2. I really love that bishop. So we'll have to see how it goes. थोड़ा pressure Gukesh के ऊपर. Going to the game of Pragg against Nguyen Thai Dai Van. Rook c8 played by Pragg. So logical move. And it's very obvious that, now c takes d4, followed by b5 might be a threat. So the bishop can escape via this path. And that's why यही मौका होना चाहिए जहां पे वो d6 c5 मार देंगे. That is the moment he has to take. And I think he will take. Nguyen भाई मारेंगे इस पे पक्का. चैट टू गुड कह रहे हैं सौच किंग भाई। ऐसा क्या गुड है भाई? इज नोदिरबेक स्ट्रॉन्गेस्ट जीएम फ्रॉम ऑल यंगस्टर जीएम्स? आई डिसएग्री, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया इन चैट को? पता नहीं, भगवान जानते हैं क्या चल रहा है भाई। लगता है भाई ये मुझे वो याद आ रहा है यार, एनोलॉजी याद है तुम्हें, जहां पे वो स्कॉर्पियन को हम एक पिंजरे में डालते हैं और नहीं बंद नहीं, क्या था पता नहीं, स्कॉर्पियन था क्या था, लाइक यू पुट फूड ऑन द टॉप ऑफ द लाइक द केज, एंड देन एक जाने की कोशिश करता है तो बाकी सारों को शॉक लगता है, तो दे काइंड ऑफ पुल द गाय डाउन and then they remove the scorpions one by one, and तब भी the new ones coming in stop the other guy even though there are no shocks. तो वही चल रहा है भाई यहाँ पे। गुकेश विन कह रहे हैं भाई, गुकेश जीतना बहुत जरूरी है भाई, दिल खुश हो जाएगा जीतेंगे तो। एंड गोइंग टू वीडीज गेम फाइनली, who's playing some fantastic chess, बस थोड़ा फास्ट खेल लें। आफ्टर नाइट g1, क्वीन गोस बैक टू g6, दिस इज लेट इट अ ड्रॉ ऑफर। अगर नाइट f3 खेलते हैं तो क्वीन h5 विल बी अ ड्रॉ ऑफर। ऑफ कोर्स वीडी नहीं खेलेंगे ड्रॉ ऑफर। कैन वी हैव वीडी ऑन द स्क्रीन? वुड लव टू सी कि कहीं वो ड्रॉ का तो नहीं सोच रहे। वीडी भाई ड्रॉ नहीं लेना है, विन करना है भाई। लग तो नहीं रहा मुझे कि किसी भी एंगल से वो ड्रॉ के लिए सोच रहे हैं। थोड़ा मजे ले सकते हैं ओपोनेंट की, एक बार मूव रिपीट करके प्रेशर डाल सकते हैं, बट ड्रॉ तो नहीं लेंगे भाई। उत्तर प्रदेश की चैट लग रही है रियली। मैं भाई साहब को टिक्कू की जगह टिक्की क्यों बुला रहे हैं भाई? टिक्की इज ओके भाई, टिक्की भी टेस्टी है तो चलता है। वीडी को आज पुश करना पड़ेगा बिल्कुल भाई।
Knowing when to push is very important. Gukesh is easily the strongest. He is 17, touches 2758 as peak. I agree. Age wise, he is the best prospect. But at the end, इस candidates में कौन जीतेगा? This year, we don't know. Nodirbek is slightly better than the youngsters. We have to accept that. I disagree because Nodirbek बहुत time तक पीछे था. All these youngsters, हमारे Indian youngsters have been there at 27, 30, 40 for a long while now. नोदिबेक तो 2690 भी चले गए थे आई थिंक एक टाइम पे, 2705 पहुंच गए थे. सो ही हैज रिसेंटली गेन्ड अ टन ऑफ रेटिंग. ही माइट लूज इट अगेन. वीडियो को आज पुश करना पड़ेगा बिल्कुल. चिराग गैंग तो नहीं है भाई. गुकेश को जिता दो भाई. छू मंतर गुकेश जीत जा. हो गया भाई, काम हो गया. कारुआना इज द बेस्ट बेट फॉर श्योर. ही वुड बी अ फेवरेट बट दिल कहता है भाई साडा इंडिया जीतेगा भाई. Fabio in the candidates. Let's see, bhai. Let's see. I think he will not win this. If Vidit wins this, he will get roughly 4 points, I think. 4 मुझे लग रहा है. Come on, come on, come on. 40 minutes, man. थोड़ा fast. 25 moves खेलने बाकी हैं अभी. उज़्बेकिस्तान के लोग नहीं है, मतलब अभी उतने खुश नहीं है भाई. हो सकता है पॉसिबल है, या फिर अभी वो थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे होंगे सब लोगों का ज्वाइन करने का. यू नेवर नो. Full pressure on Vidit, slowly moving down, going to the game of Praggnanandhaa. क्या चल रहा है? D takes C5, finally played by Nguyen. Nguyen finally goes for the critical choice. Pawn से मारना पड़ेगा. किसी piece से मारोगे तो next move B4 traps the bishop. Pawn takes and now rook D1, putting the rook opposite the queen. फिलहाल के लिए भाई Thai Dai Van playing some excellent chess here. The queen will have to go to C7, get out of this pin because 95 is a huge threat. Come on, जल्दी खेलो प्रग भाई. Look at the time यार. मतलब कहां पहले नगुएन भाई के 45 मिनट से प्रग had like 68. Now it's almost equal. मतलब 10 मिनट से कम का डिफरेंस रह गया अब. आज का सीन है भाई. फिलहाल के लिए तीनों गेम चालू हैं एंड यू नो वी थॉट कि वीडी और प्रग के लिए थोड़ा आसान रहेगा आज, बट किसी भी एंगल से आसान नहीं लग रहा है. इनफैक्ट प्रग इज स्लाइटली वर्स. विद इज कंसिस्टेंट भाई. अग्रीड. आप भी बहुत कंसिस्टेंट हो भाई. टाइप करते ही रहते हो भाई. करते ही रहते हो टाइप. काफी कंसिस्टेंट हो भाई आप भी. Queen E7. So Queen E7 is also, you know, a move. Usually you prefer this square कि भाई E7 पे क्या है कि, you know, it's close to the king. You connect the rooks. You also control this diagonal. But the problem here is Queen A4. You're kind of threatening both these pieces and fork लग चुका है. So you lose the game. So otherwise Queen E7 would have been decent. And also Queen C7 से ना you have some ideas of putting pressure on the queen side also. And यहाँ पे queen side is more important than the king side. King side पे कोई attack नहीं आ रहा है यहाँ पे. It's very unlikely you will see an attack. So Queen C7 very very logical. Venice Olympiad in September. Do you agree that whosoever wins candidates will become world champion because of Ding State? यार Ding State तुम ऐसे बोल रहे हो, पता नहीं क्या हालत में है Ding. I think he's definitely थोड़ा सा not in his form. So if right now he played the world championship, शायद वो हारेंगे, मगर यार तब तक वो बहुत improve कर सकते हैं. He will get a lot of practice. Consistent तो वो अबे सागर अगेंस्ट खेले हो? नहीं, आई हैव नॉट प्लेड अगेंस्ट सागर एवर. सर आपकी कितनी गर्ल्फ. अबे ये क्या है? प्रग प्लेड समथिंग. ओके लेट्स हैव अ लुक. व्हाट डिड ही प्ले? ही प्लेड द मूव क्वीन C7 एंड व्हाइट ने खेला जल्दी से pawn to B3. He still does not want to exchange the bishop. Plays the pawn to B3. The bishop will come to B2 and he will try to play rook C1 and heavily pressure this pawn. तो ये pawn हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है. उज़्बेकिस्तान वाले नहीं है भाई. कैनिस अर्ली मॉर्निंग में कोई नहीं देखा, कह रहे पोरे जी. अरे भाई पोरे जी आप आए ना, आप देखे ना यार, कितना मजा आएगा यार. आप इमेजिन करो चैट बाय द वे, ठीक है, कैंडिडेट्स चल रहा है, ठीक है, इमेजिन एन इंडियन विंस, ठीक है, बीइंग देयर इन दैट मोमेंट. ओ हो, वो जर्नी फॉलो करना पूरी विल फील अमेजिंग. ऐसे ना खुद की जीत लगती है एक्चुअली. दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो जिसका भी पॉसिबल हो डू ज्वाइन. How about VD's game? Let's have a look at the VD game. भाई बोला है तो. Oh, VD still thinking. 37 minutes for VD. I really hope he catches up quickly. Otherwise, थोड़ा pressure तो यार. Like I'm tired of focusing on the clock भाई. But हर game में somehow time के चक्कर चल रहे हैं.
Prove your Kashmiri without saying any word. भाई दौड़ना स्टार्ट कर दो क्या? Who are favorites for Candice logically? On paper, number one favorite would be Caruana, no doubt. But overall, I think because तीन Indian है, it becomes a high probability कि one of them wins. Now, what should not happen is कि हम एक दूसरे को ही हरा दें. प्रग गुकेश को हरा दिया, गुकेश विदित को हरा दिया, विदित प्रग को हरा दिया और तीनों बाहर. So, I'm really hoping ऐसा ना हो. But overall, with three players, we should have good chances. Do you think Ding is a worthy champion? He is, yaar. Before the pandemic, he was so good. He was beating Carlson in rapid tie breaks. Literally, St. Louis Club में I think कोई हराया था. He was that good. But फिर pandemic के बाद he basically did not have any practice because he was stuck in China. So it's kind of bad luck. But now he has practice. तो November में कोई बहाना नहीं बचेगा भाई. सुल्तान खान इंडियन है पाकिस्तानी भाई. He was awarded the GM title from Pakistan. So अब क्या करे भाई? Technically तो फिर वो वही हो गया ना. How many moves for Will to play? By 25 moves in 35 minutes. कीड़ी भाई चलो. भाई मेरे गले की बैंड तो आज ही बड़ी है. Magnus is also there. Magnus is where भाई? Where is Magnus? Come on यार. Come on भाई. Can we have video on the camera एक बार? I really want to have a look. क्या कर रहा है वीडियो? कर क्या रहा है आखिर यार? चलता ही नहीं है यार. हाँ वीडी भाई चल दो यार. क्या कर रहे हो यार? कमान वीडी भाई जल्दी चलो यार. टाइम नहीं है भाई. रिलैक्स होके बैठे यार. मूवी थोड़ी देखने आए हैं यार. समय देखो यार. तुम समय को देखो. पूरा तुमने पैंडेमिक समय को देखा भाई. अब भी देखो ना यार. भाई बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा है वीडियो मुझे फॉर द टाइम सिचुएशन. लेट्स गो बैक टू द बोर्ड रंजन भाई. जीएफ रिवील नहीं कर सकते भाई. सीक्रेट है वो. कम ऑन टिल्ट कैसे हो गया? मैं टिल्ट कैसे हो गया? हाँ भाई अब बढ़िया है. सो विदित भाई स्टिल रिलैक्स्ड, नॉट मूविंग. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम. क्या चल रहा है? गोइंग टू द प्रग गेम. और बीती क्या खेला उन्होंने? कुछ नहीं खेला है. 45 मिनट्स एटलीस्ट टाइम पे तो आ गए हैं. Going to the game of Gukesh, बहुत important game. After the move Bishop A6, we see the move B4 by White. So White कहता है कि तुम्हारे पास एक ही कंट्रोल था स्क्वायर के ऊपर, वो था B4. और B4 भी मैंने ले लिया है. B4 के बाद 8x B4. I think he might play Rook B1 or Queen B2, take on B4, put pressure on B6, and कहीं ना कहीं Nodirbek seems to be slightly better. Chat will not be easy for Gukesh this. You think Nebo was more deserving champion? It's hard to say, man. Hard to say. World Championship बहुत close थी, बहुत wins थे, बहुत losses थे. Start time पर भी start pressure बनाता है भाई. Pressure तो है ही भाई. बहुत pressure है यार. Does that create mental pressure on Pragg to lose 2 games back after 47? Absolutely. In fact, अभी वो खेल रहा होगा ना, he must be doubting his every move. When you make such mistakes, then you kind of doubt your every move, and that's even worse because then you lose confidence and then you take more time for moves, and because you take more time for moves, then it's more likely कि आप end में blunder फिर से करोगे. VD can cover 10 moves ahead. By every GM can possibly do that, but the issue is कि कहीं ना कहीं आपको दोबारा सोचना पड़ता है यार. Opponent might not play what you are trying to think. He might be something new. आपका जेंडर क्या है भाई? He him भाई. सर कट. ये क्या है भाई? Nodirbek will make blunder. I hope he makes blunder भाई. Lots of blunders. But फिलहाल के लिए वो मुझे दिख नहीं रही है. फिलहाल के लिए he seems to be better though. Going to Pragg's game. क्या खेला उन्होंने? कुछ नहीं खेला है. प्रग का टाइम भी नीचे जाते हुए कहीं आज नग्युएन बाही कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ले. फिलहाल के लिए उनका बिशप भी बढ़िया लग रहा है मुझे, क्वीन भी बढ़िया लग रही है, नाइट भी बढ़िया, रुक भी बढ़िया. Maybe you should try knight to e5 here actually. Trade this, get rid of this here. Bishop b2 and then queen, oh not f5 actually, queen g5 maybe. And maybe this is like okay. I know White is still better though man. ये pawn is a big problem. White will put one of his rooks on c4 and ये pawn हमेशा weakness रहेगा. And you don't even have a live square bishop. अगर bishop b7 पे होता है, you threaten some threats here. वो भी नहीं है हमारे पास. So it will be a uphill struggle for Pragg. Chat यहाँ पे draw करना I can imagine, but जीतना बहुत 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 मुश्किल रहेगा इस गेम में. Going to Nodirbek's game, क्या किया उन्होंने? By the way, beef. What happened?
He took on b4 and queen b2 played by Nodirbek as expected, keeping an eye on the king side and threatening bishop takes b4. We cannot save this. If queen to d6 trying to save the pawn, then rook to c6, and you can see कि भाई लेने के देने पड़ गए. So yeah, exactly. This pawn is gone. I love the commentary. Thank you भाई. आज पता नहीं मुझे थोड़ा ड्राउजी लग रहा है. I feel a bit like ऐसे ऐसे पता नहीं हवा में हूं मैं. I don't know why that's the case. I don't know exactly why that's the case, but आज थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बोलते ना कौन सा गाना था यार वो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वैसी फीलिंग आ रही है मुझे फॉर सम रीजन. जी साइलेंट है तो नुयन भाई हुआ क्या फिर? नोदिर्बेक, अबे ये क्या है भाई? डज हैंड्स नहीं, अबे यार. कैन वी सेव Prague games against Instant versus Immortal? Immortal probably not, but definitely a good game. Can Ronak, Nihal, Murli, Karthikeyan have certain growth spot and reach Pragg, Gukesh? I think Nihal and Ronak ke liye it is a bit more likely. Nihal ke liye the likeliest because he's already 2700. Like, सबसे ज़्यादा chances है. Baki Ronak can do it for sure, but he will need to, increase a lot of rating. And also, I think everybody can potentially do it, but chances are different for each person. Hawaii, exactly. Come on. So going 49 minutes going to the game of Vidit. कुछ हुआ क्या? भाई विदित कितना सोच रहा है यार. भाई विदित भाई इसे शक्ल दिखाओ इसे वीडियो की. मुझे एक्शन दिखाओ यार. बात करनी है थोड़ी सी वीडियो से यार. शक्ल दिखाओ वीडियो की यार. I want to talk to him यार. बेंजन भाई please have video on the screen यार. Let's go भाई. वीडियो भाई मतलब यार, मतलब तुम सोचो यार, मतलब इतना हमने 2 साल स्ट्रगल किया भाई, इतना बड़ी मुश्किल से टाइम प्रेशर मैनेज करने पे आए हैं. वी हैव फाइनली काइंड ऑफ एस द सिचुएशन. तो भाई इतना क्या सोचना है? वी प्रीटी मच नो कि यार पोजीशन वाइट के लिए बेटर है. यू नो इट, आई नो इट, even your opponent knows it. So clearly we will not take the draw. If you're not taking the draw, then why are we thinking so much कि हम टाइम पे ही हार जाए? Especially when Pragg ने गलती करी, तो Pragg से भी सीखे. Let's not go back. जल्दी से फास्ट खेले. भाई मेरी शक्ल क्यों ले आया भाई, इतनी घटिया सी शक्ल. हटा दे कैमरा को. Let's look at the board. पीछे छोटे मोटे बच्चे भी नाच रहे हैं, उनको भी देखें. वहां पे देखो आर्बिटर भी नाच रहे हैं, उनको भी देखें. वो व्हाइट शर्ट वाले अपने बाल खुजा रहे हैं, उनको भी देखें. सबको देखें भाई, वीडियो को भी देखें एंड बोर्ड को भी देखें भाई. नाउ वी आर बैक. और मैं इतना नीचे क्यों हूं मुझे पता नहीं है. फॉर सम रीजन आई एम वेरी डाउन हियर. कैमरा का एंगल सही नहीं लग रहा है मुझे. लेट मी फिक्स इट क्विकली एंड नाउ इट शुड बी फाइन. हाँ, नाउ इट्स बेटर एक्चुअली. नोवेन भाई, मैंने 100 प्रोनाउंसिएशन देख ली भाई. आप अगर आपको ऐसे प्रोनाउंसिएशन रखनी चाहिए थी, आपको आपकी गलती है भाई, मेरी गलती नहीं भाई. आपके नाम में जी दिखा रहा है तो मैं जी बुलाऊंगा भाई आपको. Who will touch 2800 first? Pragg, Gukesh, Arjun or VD? Good question, chat. क्या लगता है? Who will touch 2800 first? Give me your answers. Let's see chat क्या बोलती है. Pragg के मैच में क्या हुआ भाई? Pragg का मैच चल रहा है. Pragg is slightly worse, surprisingly enough. And by the way, B3 के बाद Pragg ने खेला है H6. Logical move, preventing knight G5, queen H7, mate ideas. Now bishop B2, and यहाँ पे clearly दिख रहा है कि knight F6 is something I want to play, but I can't because pawn takes. So now comes queen B7. जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे queen यहाँ खेलने के ideas है. You can put pressure here, you can put pressure here. B3 pawn is a weakness for white, which is difficult to defend. So that's why, and now white is thinking. And नाम ले रहे हैं लोगों के chat. Pragg, Gukesh, Guki, for sure VD, Pragg, Guki, Gukesh, Arjun, Pragg, Magnus Carlsen आ गए हैं बीच में कहीं से मुंह उठा के. निहाल, Pragg, Vishy, Gukesh, no one. बाप रे. सो 2800 रेटिंग फर्स्ट पहुंचने के लिए मैक्सिमम नाम मुझे आई थिंक कहीं ना कहीं कार्लसन के दिख रहे हैं भाई. एंड ये मोस्ट नेम था गुकेश एंड Pragg. यार VD का नाम एक ने भी नहीं लिया. बाप रे. VD बेचारा भाई, एक बंदे ने राहुल ने अब जाके नाम लिया है. VD भाई, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू प्रूव. वोट फॉर हु विल टच 280 फर्स्ट. भाई वो तो मैं ही हूंगा. क्वीन E7 पोल नहीं भाई, आई थिंक क्लियरली दिख रहा है मुझे. ओ, निहाल के भी फैंस है भाई. अच्छा, एक ही बंदा बार बार लिख रहा है श्रेयांश. Pragg बिकॉज ही इज यंग. हिमेश शमिया भी आ रहा है चैट में. ओ माय गॉड, आई डिडंट नो ही प्लेड चेस. आई रियली हैड नो क्लू ही प्लेज चेस. हिमेश शमिया, आपके इमरान हाशमी भी आएगा.
टिकू भाई कैंडिडेट्स के चैंपियन, अरे मैं भी घुस गया हूं बीच में भाई, बाप रे भाई कितने सारे नई एंट्री है वर्ल्ड चैंपियन के लिए। हिमेश रेशमिया आ चुका है, टिक्कू आ चुका है, अर्जुन भी आ चुका है फाइनली, रवि भी आ चुका है, रवि एंटर्स द चैट। कितने सारे हमारे वर्ल्ड चैंपियन इंडिया से। वीडी विल टच 20 श्योरली नेक्स्ट। अबे ये क्या है भाई, शमी भी आ चुके हैं भाई, क्रिकेटर भी खेल रहे, चेस भी खेल रहे हैं भाई, मोदी जी भी घुस चुके हैं, वाह वाह, समय भी है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चैट तो मस्त हो। एक काम करो चैट, तुम जल्दी से एक बार 360 लाइक कर दो, मुझे एक चैलेंज करना है भाई, तब से तुम्हें बोल रहा हूं, तुम करो ना यार, जल्दी करो ना यार। ये मियाँ जी कौन है, मुझे पता नहीं, कभी सुना नहीं है। निरंजन भाई भी है, ओ माय गॉड नाइस। सचिन तेंदुलकर भी चेस शतरंज खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, अच्छा है, चेस में लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं चेस में। भाई कोई मिशन क्या सोचते हुए नगुन भाई फिर से प्रेशर में, यार मैंने इतना मेहनत किया, इतना प्रेशर डाला, आई ट्राइड सो हार्ड एंड केम सो फार, इन द एंड द B3 पॉन विल फॉल। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। विराट कोहली भी, निखिल कामत भी खेल रहा है, लॉर्ड से तो है ही भाई, तो पता ही है। बढ़िया यार चैट, मतलब यार तुम्हारा आकाश, तुम्हारी मुंह में घी शक्कर और जो डोनट सब हो जाए भाई, बिकॉज क्लियरली अगर ये सारे प्लेयर्स चेस खेलना स्टार्ट कर दे तो चेस विल बिकम वेरी पॉपुलर। आई एम द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन, एंड द डिबेट, वाओ मॉड्स जॉइनिंग द डिबेट। सुना नहीं पर देखा है भाई, ये तो इंटरेस्टिंग है। अब ये कहां से आ गया अंजनेया, ये क्या है यार, करयाकिन भी आ चुका है, वाओ जडेजा, इंटरेस्टिंग। सो बाय द वे क्वीन B7 सोचते हुए गोइंग टू वीडीज गेम, क्या वो ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं? निरंजन भाई, डू यू थिंक VD is genuinely considering a draw here? Because otherwise it makes no sense for him to like play so slow. Now he has to play 25 moves in 24 minutes, like 1 minute per move plus increment, which is extremely low. What do you think is going wrong here, Niranjan bhai? Yeah, the ambition is not meeting the reality. That's the reason why तो ऐसा लग रहा है कि ये F4 कब आएगा, मेरे पीसेस कब आएंगे अटैक में। तो इस कारण मुझे लगता है कि ये पोजीशन थोड़ा स्लाइटली बेटर है, लेकिन विदित को शायद डाउट लग रहा है कि स्लाइटली बेटर है या नहीं, कुछ कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा उनके माइंड में, उनके दिमाग में थोड़े उलझने है, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद इसी की वजह से बहुत सोच रहा है। और 24 मिनट्स है, 10 मूव खेलते खेलते 4 मिनट में पहुंच जाएंगे, ट्रिकी सिचुएशन। या एंड उलझन उनके दिमाग में भी और चैट के दिमाग में, बिकॉज अपेरेंटली राहुल गांधी से लेके स्टीफन हॉकिंग से लेके सब लोग चेस खेल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। We would definitely try to get their IDs bhai and analyze their games very soon. Going to the game of लोगों यार पहले इस पे रुकते हैं, मुझे देखना है कब खेलेगा भाई, हो क्या रहा है यार। ही इज रियली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अदरवाइज तो भाई एक बार रिपीट ही कर लो बेशक भाई, एटलीस्ट देखो तो ओपोनेंट क्या खेलता है, ऐसे करने से क्या होगा। टिक्कू सन विल क्रॉस 2801, वाओ। आई एम ब्लैक समोसे की चटनी लेने गया था, अरे अब समोसा मैं भिजवाऊंगा, बस तुम 360 लाइक करो भाई। चलो गुकेश गेम देख ही लेते भाई, नजर मार के आ ही जाते हम। By the way, knight e4 played by Gukesh, so he activates the knight. The c3 square is available, okay, temporarily unless white takes. F2 पे pressure थोड़ा, queen f6, queen f2 can be an idea sometimes. And of course, white, if he takes, then some light squares are weaknesses. By the way, chat, look at this. यहाँ पे he could have taken on b4, ठीक है? But somehow I think he was afraid of the move knight to c5, जहां पे knight d3 is a huge threat. So that's why he plays bishop takes e4. He sacrificed the bishop on g2. Pawn takes, bishop takes b4. Niranjan bhai, I have to be honest, this does look good for white, but अगर गलती से ब्लैक ने अपने पीसेस अरेंज कर लिए कि ये बिशप कहीं से घुस गया, तो फिर तो इट विल बी कर्टन्स, बट कोई तरीका नहीं है बिशप के घुसने का। सो लगता है नोदिरबेक भाई ने बहुत डीप कैलकुलेट किया है और देख लिए कोई तरीका नहीं है कि ये बिशप यहां या यहां पहुंच पाए। हाँ भाई। गुकेश कितने मूव हुए हैं? 22 मूव हो चुके हैं भाई, 18 मूव पेंडिंग है, पूरे 27 मिनट में खेलने हैं। सबसे ज्यादा टाइम प्रेशर में आई थिंक वीडी है। एक नजर मारते हैं पहले प्रग की गेम पे, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रग्स ओपोनेंट स्टिल थिंकिंग नगुएन जी वापस बैक टू हिज टाइम प्रेशर सिचुएशन। लेट्स गो टू वीडीज गेम, जहां पे
He repeats moves. He has played knight g2 f3. Question chat. Do you think, oh, and black repeats moves. Will we see repetition? Will we see repetition? Will VD draw the game? I hope not. I hope he doesn't go for the draw. And I'll tell you why. It's not about this game. It's about the intention. कि मतलब क्या कैंडिडेट्स मतलब यूजुअली वो बंदा नहीं जीतता जो ड्रॉ ले लेता है व्हाइट पीसेस से. That's just the facts. What do you think, Ranjan bhai, about this? Okay, give me a moment. निरंजन भाई भाई ज्यादा ही आज स्लो मोशन में लग रहे हैं. निरंजन भाई स्लो मोशन में चल रहे हैं भाई. हाँ, क्योंकि आज 3 गेम है भाई. मैं वही गेम देख रहा हूँ तो आप प्रश्न तीसरा गेम के पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा भाई आई वांट टू कीप यू ऑन योर टोज भाई. कैसे रिपीट, मुझे तो लगता है रिपीट होगा भाई. भाई रिपीट नहीं होना चाहिए यार. लाइफ में हम कपड़े भी रिपीट नहीं करते. हम आलिया भट्ट के फैन है तो मूव्स का है रिपीट करेंगे. कम ऑन. क्योंकि ड्रॉ नहीं करेगा. क्या कह रहे हो? समय कम है. अरे समय कम है लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वीडी ने समय का एक्स्ट्रा लोड लिया था पहले पिछले पैंडेमिक में. सो बहुत समय से इंटरेक्शन किया है. सो समय की कमी का उनको खलती नहीं क्योंकि उन्होंने रिपीट नहीं किया. उन्होंने खेल दिया है पॉन टू C4 ब्लैक के अरमानों पे पानी फेंकते हुए और ऑरेंज जूस फेंकते हुए. सो वीडी बैक प्ले C4 एक्सीलेंट मूव opens the bishop and Rani on H5. Will we see bishop G4? ब्लैक के सपने चकनाचूर लेकिन वीडी का टाइम भी कम और ब्लैक ने एक ही सेकंड में खेल दिया है बिशप G4. वो कहते हैं भाई तुम नहीं करोगे ड्रॉ तो हम डालेंगे प्रेशर. वीडी 1.0 नहीं हुए रिटर्न. बहुत बढ़िया. वेरी हैप्पी विद वीडी भाई. रिगार्डलेस इट्स बेटर टू ट्राई एंड लूज देन टू नॉट ट्राई एंड लूज. सो लेट्स सी क्या होता है चैट. Playing hall full screen, please. Let's have the playing hall full screen एक बार for 10 seconds. Let's go. For Mr. Richard, जिनका नाम रचित होना चाहिए था, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे, तो पेरेंट्स से कहा रचित रखते. भाई ये देखो भाई वीडियो भाई फुल फोकस्ड. वो पानी की बोतल उनके टेबल पे है कि भाई चेयर के नीचे है. समझ नहीं आया. चेयर के नीचे है. ओके भाई. स्कोर शीट बाय द वे हैंडराइटिंग डू यू थिंक मैटर्स? मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत ही बेकार थी यार. मेरी आधी स्कोर शीट्स तो मैं लिटरली फेंक देता था बाद में. समझ ही नहीं आता था कि क्या लिखा है. वो इकलौता पॉन कोने में है बाय द वे. वो हफ्ता है जो अनीश गिरी आके लेके जाएंगे. सो ऑल प्लेयर्स हैव टू डू दैट नाउअडेज. मुझे पहले लगा वीडी को डैंड्रफ हो रहा है बट मेरी स्क्रीन पे कुछ था एक्चुअली. ओके वीडी थिंकिंग वेरी सीरियसली बट ही डजंट हैव द टाइम. 23 moves in 20 minutes with it. Let's go back to the board. Ranjan, go back. Let's go, Ranjan bhai, jaldi se. And we are back. So by the way, chat, let's have a look at the game of Gukesh. Kuch hua hai kya? So we saw D takes E4, bishop takes, queen takes, and rook to C8 now, challenging the rook. The problem is this B6 pawn. क्या व्हाइट प्रेशर डाल पाएंगे? चैट अब गेम्स बहुत फास्ट चलेंगी. टक 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 टक. लेट्स सी क्या होता है. सो फाइनली रूक C8, some exchanges, but it's a good night against bad bishop. देखना पड़ेगा क्या ये bad bishop super good bishop बन सकता है long term and comes on H3 or F3. We'll see what happens. Going to the game of Pragg now. Pragg, by the way, rook AC1 played by Nguyen. Bhai C5 pressure again. यहाँ पे I think maybe he can reroute the pieces, play something like bishop D8, bishop F6, try to exchange this, or even bishop D8, bishop E7. Very very logical to have a support for the knight on F6. ये bishop on A5 is doing absolutely squat. So ये बहुत बेकार bishop है. Let's reroute it and not put it on B6 जहां pawn को देख रहा होगा. And rook F D8 also very logical. So फिलहाल के लिए Pragg thinking opponent थोड़ा 15 मिनट पीछे है, so कहीं ना कहीं ब्लंडर करने के chances. Going to the game of VD back. Let's see what happens. खेला है इन्होंने. He plays the move. Chat, can you guess what VD played? अब ऐसे अच्छा लगा मुझे देख के because this is the move which sometimes top GMs play and only 400 rated players play. और कोई नहीं खेलता. 1500 वाले मूव कभी नहीं खेलते. What do you think, Chad? What is the move? Oh, playing effects to candidates. नहीं भाई, I don't think so. What do you think is the move, chat?
So he played the move. Yeah, bishop c, exactly, that's the plan. So he played queen to c3, threatening mate on g7. So very very logical move. um and black के पास यहाँ एक ही चाल है. There is only one move to save the game, because if queen g6, then there is knight to h4, and the queen has to defend the bishop and the pawn. So if queen g5 f4, so ये तो lost हो गया game. So that's why he plays the only move, that is f6, and that's a good move. But what now? That's the main question. बिल्कुल सही चैट. बहुत लोगों ने क्वीन c3 लिखा है. कुशागर, श्रेयांश, प्रतीक, मानिक, जानवी, मृणाल और मनिक भाई, सबने. Bro asking what's the move? Bro, I can only say the move if you want Bote's Gambit. भाई Bote's Gambit खेलनी है तो Queen S6 मार सकते हो. But that's not what VD would play. By the way, VD plays knight to b3. Apparently, chat, that's not a good move. Now knight to g6 and knight to f4. Niranjan bhai, this feels like black is slowly attacking. With this bishop, this knight, this pin, do you feel that the tides are turning in with its opponent's favor, especially with the clock of 26-minute lead? Certainly, I sense confidence in moves that Vidit is playing. Probably that. Yeah, man. This is like he was being very decisive with not repeating. So maybe that is the reason he's like obliged, like he's like obliged to play on now, because he himself is rejecting the repetition. तो शायद उसी का इफेक्ट है ये. एंड ऊपर से अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो भाई जो भी ड्रॉ ने रिजेक्ट किया उसके पास बहुत ऑफर और थे, तो शी हैज मूव्ड ऑन नाउ. You will not get any more chances to get the draw. You said no to the girl and now she will date another guy. Simple है. By the way, can you crop me a bit better? मैं थोड़ा कोने में हूँ. If you can adjust that, better रहेगा. What standings of this tournament? भाई standings पे आग लगने वाली है chat अभी, because सारे games बहुत complicated है. मुझे लगा था बड़ा आसान रहेगा VD के लिए and also Pragg के लिए, but that's not the case. Both Bartel and Nguyen putting pressure on our Indian players, and वहां से Gukesh भी अभी जीत नहीं रहा है. He is also slightly worse. By the way, Rook C8 played and White plays Knight to F5. Chat, यहाँ काफी threats हैं. First of all, Knight D6 is in the air. Second, Queen B6 is in the air. अभी नहीं, but Queen is defending. And there are always ideas. Queen B2, Queen takes G7 mate. So मेरा कहना यह है कि जल्दी से Queen F6 खेलते हैं. Attack the knight, defend the pawn, put pressure on the rook, and put pressure on f3, and overall एक wholesome सी move है Queen f6. Let's play Queen f6 and time waste नहीं करते उस पे. So Gukesh fighting for his life here, slightly worse. Let's go to the game of Pragg now. And he finds the move bishop d8. Pragg finds the best move, reroutes the bad bishop, will bring it to e7. And yeah, Pragg seems to be doing kind of okay. Opponent under time pressure. Going to the game of Vidit Gujrathi, जहां पे knight b3 के बाद opponent अब deep सोच में है. And I think knight g6 के बाद it's not going to be easy. What do you play here? For example, let's say white plays a logical move. Rook a d1, जो बहुत logical लग रहा है. Suddenly after knight cf5 or knight f4, black is close to winning. Black is close to winning. The threat is knight takes c2. That's a huge threat. How do you save this? So for example, let's say even knight f4. What do you do to save the bishop? If rook e1 by chance, then knight to e5 is winning by force. It's over. So यहाँ पे हमें queen d2 खेलना पड़ेगा to defend the bishop, but knight e2, queen e2, and कहीं ना कहीं पे ये still is under a pin. Black can play f5, open the f file. This is looking incredibly dangerous. So I think यहाँ विदित को कुछ move निकालनी पड़ेगी. And you know what? Now I am wondering शायद draw ले लेना चाहिए था. यार ऐसा क्यों होता है यार? जब भी हम ड्रॉ रिजेक्ट करते हैं तो हमारी पोजीशन वर्स आती है. ऐसा क्यों होता है चैट? क्यों होता है? Who is leading the tournament right now? Nodirbek भाई. I sent the stream to my friends and they came and started spamming C gang and chat got influenced. अच्छा, तो तुम थे मास्टरमाइंड उस evil plan के. समझ गया मिस्टर रमैया. बाप रे बाप यार, बड़ा सीरियस लग रहा है चैट. I don't know if
आज रिजल्ट्स हमारे फेवर में जाने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि सारी गेम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हुए गोइंग टू द गेम ऑफ प्रगनंदा। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। ओपोनेंट सोचते हुए गोइंग टू नोदिरबेक का गुकेश। Gukesh finds the best move, queen f6, excellent. Controls this very important move, by the way. Knight will have to go back. That's the only move for Nodirbek. If he doesn't, then Gukesh might be back in the game. Chat again, because these are constant threats. Nodirbek का किंग देखो भाई कितना कमजोर किंग है। अगर मैं ये बिशप उठा के यहां रख दूं, ऑलरेडी आई थिंक नोदिरबेक इज लॉस्ट। सो ये काफी काफी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, इवन दो बार सेज व्हाइट इज स्लाइटली बेटर। वीडी शुड वर्क ऑन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, इस गेम में टाइम उनका अच्छा नहीं रहा। वैशाली गेम अपडेट देते हैं। वैशाली b4 के बाद किंग g2, कैसल्स, काफी बढ़िया पोजीशन लग रही है। f4 खेला व्हाइट ने, a4 खेला, f5 and now rook e8. She seems to be doing really well. It's not over yet. व्हाइट के पास अटैक तो है, f6 आने वाला है, e6 आने वाला है, bishop can come to h6, rook can join in. It's not over, but the pawns are definitely close to queening. So I think Vaishali is close to winning this, but it's still very complicated. Going to the game of queen f6. Let's see क्या होता है. What will Nodirbek play now? Hello, Mr. Spy Gaming. How are you? आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस गेम में? Man, it's so complex, hard to say. Still cheering for Gukesh. Vaishali won yesterday. Yes, she won. What's the best move for VD? Let's have a look at VD's game. क्या चल रहा है? So VD के लिए, oh, by the way, look at this. He misses knight g6. Thank God. He misses, plays knight to e5, which is a strong move, but not as strong. Now we can play the pawn to c5 and basically say bishop ko chal nikal. So luckily it's not as bad now. Luckily Bartel ji बढ़िया move नहीं निकाल पाए. VD should be safe now on the position, but on the clock I am still not sure. Chat, come on. जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई. Thank you Mr. Akshay. I want to play one game with you some other time. अभी top tournaments की गेम चल रही है, हम वर्ल्ड चैंपियंस की गेम देख रहे हैं, future world champions. And VD plays c5, doesn't wait around. Can we have video on camera? c5 played, and now Bartel ji thinking. Gukesh अपना सूट सेट करते हैं वहां पे. बढ़िया. What about h3 instead of knight b3? अबे यार तुम h3 यहां मत खेलो यार, तुम मेट कराओगे यार. तुम खतरनाक थ्रेट लग रहा है h3 पे. You're not even thinking to take the bishop. It's pinned. Let's not weaken our king. Yeah, we don't want that. By the way, bishop drops back to a7. So now what? Chat, one move which is crazy is bishop d1. The idea being to defend the bishop with the rooks, and now I'm threatening to move the knight somewhere. So black force हो जाएगा मारने के लिए, and the game will be roughly equal. That's one way to play it. Second is to just play rook a c1 and just develop the pieces, and rook a d1 and so on. Let's see which one Vidit goes for. Add me in your friend list. I will add you, bhai. Bilkul, bhai. Don't worry. How old are you, Spy Gaming? Came to see Prague cost chess. अबे ये क्या है भाई? ये इंडिया की स्पेलिंग तो सही लिखो कम से कम यार. ये इंडिया की स्पेलिंग तो सही लिखो यार. By the way, let's have a roundup of all the games. First of all, chat, Gukesh against Nodirbek. Nodirbek right now thinking, I think he made a slight error with knight f5, queen f6. Great response by Gukesh. I think he is going to counter it back now. Time pe thoda piche, but position of fighting. Roughly balanced position. Pragg against Nguyen now. So we saw a beautiful maneuver, bishop d8 by Pragg, and white plays knight to e5. And I think with this move, he's basically trying to exchange pieces, and he just wants a simple position जहां पे एक weakness है Pragg के पास. He cannot win, and it's a 2-result game. That's what Pragg is hoping for. But Nguyen is hoping for. So, but Pragg के point of view say, does he maintain tension with the move knight to b6? Or does he play the logical move and just exchange pieces? It's an important choice for Pragg, especially because, a bishop is definitely stronger than the bishop on c7. I can play this, but again, the bishop can drop back and this pawn is again hanging. So what do I do now? Maybe not immediately because there's bishop h2, but at some point. Nice Spy Gaming, bhai. Pragg and Nguyen draw. No, not yet, bhai. Not yet. Nothing has been drawn.
Arjun is India's now on view, not now. He lost today. Arjun is no longer India number one. Vishy is back to India number one. First stream of this tournament. Sarthak bhai, kya baat kar rahe ho? I just saw you yesterday, or maybe I'm mistaken. Going to Vidit's game. By the way, c5 ke baad bishop is in rook a e1 played by Vidit. Defends the bishop, but it's still technically hanging. The bishop is still hanging, so it will take more effort from Vidit to defend this. Let's see how Pragg counters here. Nodirbek best head time management. Very rarely does he fall down on time. I absolutely agree. He's not only one of the best youngsters, but he's also more ambitious and also manages clock well. So he's like an all-rounder. And that's why you see, by the way, knight d4 back. So clearly, this plan was wrong. He goes knight f5 and goes knight d4. This is not what he wanted. So Gukesh maybe has a chance to come back here. चक दे इंडिया ऑलवेज नाइस स्पाई गेमिंग भाई. अरे मुझे देखा होगा कल लोल. अरे फिर बढ़िया. स्टॉक मार्केट की तरह रैंक एक बदल रहा है भाई. रैंक एक के गेस भाई, रैंक एक पे बेटिंग होनी चाहिए यार. मैं तो कह रहा हूँ इंडिया नंबर 1 कौन होगा, हर दिन बेटिंग चालू होनी चाहिए. कितना मजा आएगा भाई. हर दिन इतने लोग बेट करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है. एड मी ब्रो भाई, वेट ब्रो. अभी स्ट्रीम के बात कर लूंगा ब्रो. सीबीआई की, अबे यार सीबीआई मतलब समझो यार, भावना को समझो. By the way, looking at the cameras, Nodirbek looking fully focused. Gukesh also a bit nervous. They know the rivalry. This rivalry is epic भाई. ये गेम जीत जाए ना तो एक्स्ट्रा फील आएगी भाई. जब भी Gukesh defeats Nodirbek, we get that feeling of revenge from the Olympiad. That's so important. So Pragg game. Let's have a look at the Pragg game. By the way, 95 played. So Pragg goes for the logical choice. Bishop takes, and now Bishop e7. Best move yet again. Connecting the rooks और pawn को defend कर दिया है. And chat इतना भी मुश्किल नहीं है because white के पास भी weaknesses हैं. We also have one. He also has one. So it's not that difficult for Pragg now. I think he has almost equalized here. Only government will win. Bye. Oh, queen c3. So attacking g7. Only move f6 now. We have to play this. Chat, this game is moving towards a draw, I feel. Unless Pragg can somehow confuse Nguyen, this game is moving towards a draw. Vidit blunder? No way. Bhai, no way. Hey, बिल्कुल ना मुझे कोई blunder नहीं भाई. Vidit never blunders. ये भावना कौन है? अभी क्रश को नहीं समझ पाया भाई. नहीं समझने की जरूरत नहीं है भाई. Gukesh was Nodirbek head-to-head record. So last time Nodirbek won, that was during freestyle 960 event जो था. उससे पहले they have had to and fro. We had Gukesh winning, I think, in that World Chess Challenge something. So it's been to and fro, but Nodirbek usually has done better against Gukesh. So यहाँ पे कहीं ना कहीं we need the comeback. Chances of Gukesh, man, I would say decent, because the thing is, even though Bar says white is tiny better, but now Gukesh plays g6. This bishop की लोकेशन जो है ना, ये स्नाइपर है हमारा, ठीक है. इसको हमने बंदूक दे दी है. अगर ये एनिमी पे टारगेट कर पाता है, मान लो यहां पहुंच जाए, जहां पे इट कैन टारगेट द किंग, देन वी आर बेटर. अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते तो ये स्नाइपर मतलब हवा में मार रहा है भाई, किसी काम का नहीं है. एंड व्हाइट हैज एन एक्सीलेंट नाइट एंड ही विल बी बेटर. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस बिशप नाउ. क्या हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं? Pretty much that. Chances of VD winning, देखना पड़ेगा. टाइम बहुत कम है. If let's say बाटल जी यहां बहुत टाइम इस्तेमाल कर ले, मान लो बहुत सोच लिया उन्होंने, दुनिया भर की मूव सोच ली, फिर वो जाके मूव चलते हैं और टाइम बराबर हो जाए, then VD can win. But फिलहाल के लिए बाटल जी clearly should be favorite because of the clock. 7 draws, 2 wins occasion, 1 win in classical. Yeah, not surprised. Pragg Gukesh, similar position. Not so sure actually. Not so sure about that. I think बहुत difference है. Pragg में it is same color bishop against same color bishop, and Nodirbek में it is good knight against bad bishop for now. So it's quite different actually. Eval bar means nothing. Anything could happen like we saw yesterday. Exactly my point.
वी डोंट नो. जैसी एक घड़ी कम होती रहेगी तो ब्लंडर बढ़ते जाएंगे. H5 H4 in Gukesh's game. So that might be the plan, and that's why G6. Yeah, so that might be the plan ki H5 H4. But Jesse, you will play H5. White, I think, might play H4 to stop that. So he will not allow you H4 and then King G7 and then Rook G8 H8 whatever. He will not allow that. H5 पे H4 immediately आएगा. Exchange C rooks. Okay, first of all, white to player, but let's say कुछ नॉर्मल बताए. Get better square for the bishop. Yeah, but how? What I want to do is let's say white plays, I don't know, rook a b1. Okay, let's assume. Okay, we trade rooks and we play bishop c8. We're trying to get to h3. Okay, the problem is rook c6. So हमें time नहीं मिला करने का. The rook queen is already attacked. Queen e5. Let's say rook takes b6. हम आ भी गए h3 पे. ठीक है, आ गए. अब क्या? Next what? It's not easy. We needed rook c8, rook c1. Something like this to attack, but time ही नहीं है. Rook b5 now. Let's say rook c8. Now queen to e1 going back, and suddenly ये हमें मौका ही नहीं मिल रहा कुछ करने का. And white has a passed pawn and will start pushing. And the knight is basically untouchable. वो चक्कर है भाई. यो 11th पास हो गया भाई. अरे बढ़िया भाई. 11th पास इज अ 12th फेल. बढ़िया जर्नी रहेगी अक्षत भाई. Why today's players don't sack queens like Tal used to? Because they have engines. They are on average better players than Tal. Overall, they might not be as creative, but they are better. And opponent usually figure out कर लेंगे tactics कि भाई क्या गलती है इसमें. Moves left for increment in all games. Let's have a look. So let's start with Gukesh. Gukesh game mein, we have 14 more moves to go. 15 more moves to go for Gukesh. Oh, he played bishop d3. So 14 moves to play in 20 minutes. Not the most difficult, but not easy either. Then you have Pragg against Nguyen. Jahan pe f6 was played to stop this. The bishop goes to d6 and rook f d8. Bishop takes or queen takes on the board hoga. So I think yahan pe we have roughly 15 moves in 35 minutes. तो यहाँ टाइम प्रेशर का कोई सिचुएशन नहीं है. टाइम इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. एंड फाइनली आता है विदित का गेम, जहां पे वी सॉ रुक e1. यहाँ टाइम इज अ बिग इशू. बेसिकली हमें एंड रुक ए d8 प्लेड. यहाँ पे वी हैव टू प्ले 19 मूव्स इन 18 मिनट्स. तो यहाँ पे टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा वीडी के लिए. एंड थोड़ा ओपोनेंट के पास टाइम है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. वीडी इतना खराब करके इक्वल पोजीशन घर पे कुछ भी रिपेयर नहीं करता लगता वीडी. हाँ, वीडी घर पे चिल करता है भाई, नेटफ्लिक्स देखता है भाई. करता होगा रिपेयर यार, करता होगा भाई. बट वो ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं बैठ पाई आज. हर दिन थोड़ी बैठेगी. बाकी सब क्या चल रहा है? बस भाई बढ़िया चल रहा है भाई. अब तो विंटर भी खत्म, फॉग भी नहीं चल रहा. 11th पास और 12th फेल साहिल टिक्कू. भाई अक्षत भाई के लिए स्पेशल है ना वो. विद का ओपोनेंट इस राउंड में वीकर है क्या? बिल्कुल वीकर है. लगभग 80 पॉइंट्स वीकर है, 90 पॉइंट्स वीकर है. सो वी वांट हिम टू विन दिस. 11th पास कौन सेलिब्रेट करता है भाई? 11th पास तो है भाई. 11th में तो बेयरली पास होते हैं लोग. या 94 फील्स लॉजिकल. द आइडिया इज टू कंट्रोल दी स्क्वायर्स. काफी अच्छी चाल लग रही है. मेक्स लॉट ऑफ सेंस. दिस नाइट इज नॉट डूइंग मच. उसके अलावा आई एम थिंकिंग कि मे बी कैन वी गो नाइट fd4 इंस्टेड, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस. ये जो बैटरी है ना, इसने दिमाग खा लिया यार. मतलब मंगाई AAA थी, मगर AA बैटरी जो है लगी हुई है हमारी यहाँ पे. एक्चुअली AA बैटरी अच्छा है ना, दो लोगों की AA बैटरी लगी हुई है. नाइस टर्म. AA बैटरी ने दिमाग खाया हुआ है हमारा यार. चार्ज तो हो नहीं रही और बस प्रेशर डाल रही है हमारे ऊपर. चैट स्ट्रीम लाइक करो भाई. लेट्स डू अ चैलेंज. अभी कर दे चैलेंज. क्या बोलते हो चैट? एक चैलेंज दिमाग में मेरे. लेट्स डू इट. क्या बोलते हो चैट? Even with a VD draw would get -2.2 rating. I know, but ठीक है. That's why he has to win this. वही तो है. Time control is top right corner. Yup. साहिल भाई ने खुद हराया बाटल भाई को. Exactly भाई. It should be easy. 1600 फिट. अरे congrats भाई. Only 600 point behind me and only 1200 point behind Vidit. लगता है समय ने विदित को आज के लिए ट्रेनिंग दी है यार. समय ने ट्रेनिंग दी तो समय तो एक चीज अच्छी होनी चाहिए ना यार. समय को हैंडल करने का तरीका तो आना चाहिए. रिमाइंड्स मी ऑफ प्रग गेम यार. वो सदमा जाएगा. व्हेन प्रग विंस टुडे इट विल बी ओके. ठीक है भाई, इनको बता दो मेरे बड़ा सा फैन कोई नहीं है.
थोड़ा बहुत मजा लेने के लिए ऐसे रिलेवेंट टूर्नामेंट में ये जीत के वीडी क्या कमाएगा ऐसे भी? भैया क्या लिख रहे हो तुम? What happened to Gukesh game? Gukesh game is going on right now, roughly balanced. नहीं, let someone win. ठीक है भाई, तो let's wait for someone to win. By the way, chat, rook c3 played by Nodirbek. I think he's trying to double up rooks. तो मार देते हैं भाई, मार देते हैं ना भाई, जल्दी से मार देते हैं भाई, क्या ही चक्कर है भाई, जल्दी से मार देते हैं, फिर we can think about other moves. Let's go for challenge भाई, वेट करते हैं, बात सही है. कल्चर ऑफ हिमाचल कह रहे हैं अर्लियर सागा शॉप फैन, टिक्कूज रेगुलर व्यूअर. थैंक यू भाई, मतलब सागा भाई के फैन है, हमारे रेगुलर व्यूअर है, तो आप किसी को भी लॉयल नहीं है. कल्चर ऑफ हिमाचल की जो फ्यूचर पार्टनर है, प्लीज ये पढ़े, ही इज नॉट लॉयल किसी को भी. बार्टल को मैंने परसों मोना ओपनिंग से हराया था भाई. मोना ओपनिंग कौन सी है भाई? भाई द वे मारो यार गुकेश भाई, क्या सोचना है इसमें? कमॉन 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 कमॉन, 17 मिनट है सिर्फ. यार मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है एक्चुअली. व्हाई इज ही लाइक मेकिंग मी नर्वस? डोंट मेक मी नर्वस. Come on, come on, come on, come on. 70 likes left for samosa. Let's go, chat. Let's go. By the way, let's go to VD's game. चला क्या? By the way, VD plays knight fd4. The exact move I was considering makes sense. ये बैटरी बहुत irritating है, इसको exchange करते हैं. Bishop e2 now. You can take with either piece. I would probably even take with the knight to go knight g3 at some point and just धक्का लगाओ इस रानी को. जान खाली इस रानी ने यार, लिटरली जान खाली इस रानी ने. फरीदाबाद में हो रहा है अप्रैल टूर्नामेंट, खेलोगे क्या? पता नहीं यार, डिपेंड्स. अप्रैल में कैंडिडेट से तो कम चांस है उसके आने के वहां पे उस टाइम पे. कैंडिडेट्स में तो मैं भाई दिन को सोऊंगा और रात को जागूंगा, तो कैंडिडेट्स में तो कोई टूर्नामेंट खेलना इम्पॉसिबल है भाई. इंडिया में एनएम का टाइटल चलता है क्या भाई? बाहर चलता है बाहर. इतनी रात को समोसा नहीं मिलेगा भाई, समोसा कभी भी डिलीवर होता है भाई. साइबर न्यू ओपनिंग विद इंडियन नेम लाइक द मद्रास गैम्बिट. भाई मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली क्या बनाऊंगा ना, उसका नाम रखूंगा दिल्ली से है गैम्बिट भाई. I did not attend Sagar and Amrita's wedding. I did not know them then. उस टाइम मैं जानता नहीं था उनको. By the way, Gukesh played, or still not played actually. Going to Pragg's game, has something happened. So Rook D1 first. Okay. Rook D1, Queen E7, and now H3. So back rank issues को उन्होंने हटा दिया है. And यहाँ पे chat, because Pragg has 1, 2, 3 pawn islands, White के पास सिर्फ 2 हैं. I think Pragg is slightly worse, but you never know. You never know. Rook B8 खेला है, putting pressure on the B3 pawn. This might peter out into a draw though. ऐसा मुझे feeling आ रहा है कि this might turn out to be a draw. Not exactly what Pragg wanted. He would have loved to win this, but hats off to Thai Dai Van for kind of coming up with some good. That knight E4 moves was excellent. एनएम मींस नेशनल मास्टर भाई, देश का चैंपियन को नेशनल मास्टर बोलते हैं भाई. भाई साहिल टू बी लॉयल. भाई मेरा ही कट गया. बढ़िया भाई. गुकेश की गेम, गोइंग टू द गुकेश गेम. लेट्स हैव अ लुक. Oh, rook takes c3 on the board, queen takes c3, and now rook 8. So he puts pressure on the a4 pawn. कहता है ये तेरा नहीं, ये तेरा और ये मेरा भाई. So exchange करने के लिए तैयार है. White तो clearly नहीं मानेगा. If you exchange these two pawns, I do think it should be a draw. It should be a comfortable draw. So ये exchange नहीं करना चाहेगा White. He would love to grab this pawn for free at some point and then try to push this pawn. So that should be the ideal White's case. So Gukesh को ध्यान रखना पड़ेगा. Going to Vidit's game, has something happened? Not yet. Black सोचते हुए, deep search में. Oh, Narendra Modi भी actually. Oh my God. So NM title is the most popular title in the world then. फिर तो पॉपुलर ही हुआ ना भाई टाइटल. 40 मूव्स के लिए विदित की गेम में बाकी है अभी 18 मूव. गुकेश की गेम में बाकी है 12 मूव. आई थिंक गुकेश को 12 मूव 16 मिनट, इट्स अ बिट टफ. प्रग की गेम में बाकी है 12-13 मूव इन 20-30 मिनट्स. सो दैट इज गुड. आई थिंक प्रग को टाइम का चक्कर नहीं है, बाकी दोनों को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, प्रेशर फील हो रहा होगा. कितने मूव्स बाकी हो गया? प्रग ओवर नहीं यार, अभी शुरुआत हुई है. डोंट वरी. व्यूअर्स ड्रॉपिंग कह रहे हैं रचित भाई. भाई ड्रॉप तो होंगे, इतना स्मार्ट आदमी बैठा है भाई, फेंट हो रही होंगी लड़कियां भाई चैट में. अग्री.
हेलो करण, अबे यार करण जौहर नहीं हूं मैं। डू चैलेंज इन द नेम ऑफ लैब असिस्टेंट। भाई लैब असिस्टेंट की तब तक 2 शादियां भी हो गई होंगी यार। डू यू फील बोर्ड कमेंटेटिंग क्लासरूम गेम्स? नहीं यार, एक्चुअली ऐसा नहीं है। टुडे आई डू फील अ बिट डिजी फॉर सम रीजन। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसे मैंने कुछ गलत चीज पी ली हो, ऐसे लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अक्षत भाई, वही तो नहीं हो रही, ये क्या है भाई? टू एवरीवन शाइनिंग द ग्रेट मून, आप सही पकड़े हैं भाई, ये क्या है भाई? समझ नहीं आ रहा मुझे। गुदित डोम, अभी सही नाम से पुकारा जाए भाई, उनको भगवान, उनको पेरेंट्स ने नाम दिया है तो प्लीज। व्यूअर्स इंक्रीजिंग, ओ माय गॉड, व्यूअर्स की हाइट बढ़ रही है, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बाय द वे, कम ऑन कम ऑन, 29 में से बाटल भाई थोड़ा और सोचे, 15-20 मिनट सोचे, ताकि आप बिल्कुल 15-10 मिनट रह जाए और आप हार जाओ। क्यों एंथनी भाई? सो गोइंग टू द गेम ऑफ गुकेश। आज सारी गेम स्लो चल रही है, कोई भी किसी भी गेम में क्लियर विनर नहीं मिल रहा है हमें, वो नहीं मिल पा रहा है आज। व्हाट इज निंजा भाई रेटिंग? आई थिंक इट्स लाइक टू, कितनी रेटिंग है निंजा भाई आपकी? बताइए दो यार, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट। अभी अराउंड 2150 है भाई, अराउंड 2150 है भाई। नाइस नाइस नाइस। जीएम मींस ग्रेट मैग्नस। कल मेरे साइंस भाई, कल तुम्हारे ही नहीं बहुत लोगों के साइंस के बोर्ड होंगे ना विवान भाई, तो सबकी सबकी साथ में वाट लगेगी, डोंट वरी। 388 ही ड्रॉप हो गई भाई, राइज भी हो जाएगी भाई। डार्क वॉचिंग राइजेस अभी आएगी, तुम वेट करो। बाय द वे, H4 प्लेड। हम ब्लैक से H5 कह रहे थे, व्हाइट ने H4 खेल दिया भाई। तो जल्दी से H5 खेलते हैं भाई, ब्लॉक करते हैं। लेट्स नॉट अलाउ व्हाइट टू प्ले H4 एंड देन व्हाइट स्टार्ट सेइंग कि भाई मेरी बारी। बिशप C4 फॉर विदित। What's oh, by the way, look at this. So Vidit game made DC5 happened. He attacks the knight with the rook. Now B takes C5, still blocking the bishop. So he's keeping it blocked for now. Bishop takes C2. By the way, यहाँ पे इकलौती move है, because यहाँ पे बहुत सारे threats है. There's some bishop E2, knight E6 threats. For example, let's say black plays king H8. Now F3 also traps the bishop. And even if you take, queen takes, it's too many weak squares for black to control. F4 kicks the knight. It's looking very, very, knight को वापस जाना पड़ेगा, कहां जाएगा? G6. Then you can play H3, attack the queen. Queen को जाना पड़ेगा C8. So it's looking really bad for black. That's why bishop E2 was the only move. He plays it, and now rook takes E2, and now comes knight 7 to C6, trying to exchange these knights. And यहाँ वेद को देखना पड़ेगा. There is no more attack, at least not for now. Knight G4, there is H3, and it's all safe. But अब ब्लैक के पास D5 पे रुक है, एंड व्हाइट के पॉन्स आर काइंड ऑफ ब्रोकन अपार्ट, ऐसे कोने में फैले हुए हैं. तो देखना पड़ेगा यार, हु इज एक्चुअली बेटर. आई एम नॉट सो श्योर. क्या हाल है? बढ़िया हूं लोल जी, कैसे हैं आप? वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ ओटीबी, आई थिंक कोई 2650 था कोई. Thank you, Mr. QC Code. Going to the game of Nodirbek now. He played H5, good move, and now comes rook to C1. So, Chad, the first question ये है, what happens on rook to A4? This is something we should look at. I think यहाँ पे एक ही मूव है, queen C8 check, and king G7 के बाद यहाँ आएगा rook to C6, and the queen is attacked. कहां चलोगे क्वीन? मान लो कहते हो यार क्वीन के पास स्क्वायर तो है ही नहीं, कितने ही स्क्वायर है, मान लो E5 चलता हूं मैं, E5 भागता हूं. यहां पे चैट, कैन यू फाइंड द विनिंग मूव फॉर नोदिरबेक? कौन निकालेगा? कम ऑन, कौन निकालेगा विनिंग मूव फॉर व्हाइट? दैट्स व्हाई द A4 पॉन इज नॉट एडेबल भाई, पूरा डिहाइड्रेशन हो जाएगी. व्हाट्स योर रेटिंग भाई? माय रेटिंग इज आई थिंक 2186 है शायद एग्जैक्ट. ऐसा क्यों क्लासिकल में टाइम प्रेशर होता है और प्लेयर जनरली ब्लिट्ज में ही मूव जल्दी फाइंड करते हैं? ब्लिट्ज में क्वालिटी ऑफ मूव्स इज लोअर, द रिस्क इज लोअर. 96 check exactly. King is stuck, pawn takes E6, rook C7 check, and the king is getting mated. King H6 पे queen H8 is, or not queen H8, queen F8 is mate. And अगर गलती से तुम अगर ये मारना पड़ेगा तो you are of course going to lose this. B6 pawn भी मरेगा. Maybe you can hold this on a good day, कोई fortress shortress, but not a position you want to play. So यहाँ पे you can't take the A4 pawn. Maybe bishop A6 back, maybe rook D8. Let's see क्या होता है. 96 check exactly, not E3 0 0 E6 check.
Absolutely true. So गुकेश पे प्रेशर 14 मिनट है, 10 मूव खेलने हैं. It's not impossible but not easy. Going to Vidit's game, क्या चल रहा है? He plays the pawn to f3. बार को मूव बिल्कुल पसंद नहीं आई. कहा कि भाई it's slightly worse for Vidit now. Knight takes d4, knight takes d4, and black will double up rooks with rook d7. But white भी कर सकता है at some point. And यहाँ पे हमें सवाल ये कि ये pawn weak है कि कमजोर है. Sorry, I mean weak है कि strong है. Because if it's strong, then at some point I can play c6, break this pawn chain, and black के पास दो weak pawn रहेंगे. अगर ये pawn weak है, then ये हमेशा में queen से defend करना पड़ेगा. That's very bad. So यहाँ पे important choice क्या है इस pawn का status? Single है, strong है या weak, हमें देखना पड़ेगा. खुद का रेटिंग नहीं जानते भाई. 2200 बोलते बोलते मैं डॉट नंबर भूल जाता हूं कई बार. Chat, by the way, we are only 60 likes away from a challenge, the first samosa challenge. Like karo bhai, let's do it. Pragg ki game dekhte bhai. Pragg ki game also extremely important right now. We saw it in the end game, and now comes rook d3. Isko defend karte hue, rook to b7, keeping all options open, 7th rank control karte hue, and now queen c4. Is diagonal pe nazar, still defended, and rook c3 is a potential move next to put pressure on this pawn. So यहां पर आपको सोचना पड़ेगा क्या करें आखिर. फिलहाल के लिए स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज कल को अगर वो मारते भी हैं, क्वीन टेक्स, rook takes b3 पे, the game will again be equal. But प्रग के जीतने के chances are close to zero. chat, ये ड्रॉ होने के chances are maximum. सब कुछ प्रैक्टिस है भाई. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. किसी ने कोट कहा था, बिल्कुल सही है. Where is निरंजन भाई? वो निरंजन भाई हमारे दिलों में है और अपने घर में है. वेद ये ब्लंडर हो गया, क्या बात कर रहे हो? कोई ब्लंडर नहीं होगा यार. क्वीन f7 बाय ब्लैक. सो क्वीन को वापस लाते हुए, क्वीन का कोई पर्पस नहीं था यहां पे. काफी लॉजिकल चाल. व्हाट डू वी डू नाउ? I would love to play a move like rook d1 to double up rooks, but doesn't feel like it works because black के पास at some point queen c4 आ रहा है, and that kind of disturbs the coordination. 13 minutes for Vidit. 15 मूव खेलने चैट, 15 मूव खेलने भाई. बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है चैट, बहुत डिफिकल्ट. 13 मिनट 15 मूव. Nguyen wins. Yeah, I really doubt it. I don't think he will win. He will not win. It's an easy position for Pragg to draw. वीडी अगर हार गया तो 2740 के नीचे आएगा कैसे भाई? He did not lose a single game here, so how can he go below 2740? He will go. अच्छा, you mean that way? Okay, got it. But he will not lose, man. He will not lose. I'm pretty sure he will not lose. What we want is Gukesh to win, become India number 1, and also defeat Nodirbek. That will be amazing. Okay, let's go. So let's go to the game of Vidit. Oh, Vidit, sorry, I mean Gukesh, not Vidit. By the way, bishop a6. Gukesh finds the best move, controlling the c8 square, and maybe now threatening a move like rook to c8, exchanging more pieces. Let's see what white plays. Maybe he will move the queen away to b3 now, or b4. Let's see. Pragg loses कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? No way. He is not losing this. Pragg is chill, man. He might be like, he's one guy who might convert this somehow. I will not be shocked if he even actually wins this, but of course most likely draw होगा. Because queen से majority है. b7 प्रेशर कर सकते हो, बट कैसे? क्योंकि आपका बिशप है b2 पे, तो रुक को लाने के लिए ही कितने टंटे करने हैं. एंड ब्लैक इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग क्वीन टू c4, एंड अगर मारते हो तो नाइट टेक c4, अटैकिंग द बिशप एंड द पॉन with the knight attacking the knight. So black will gain control of the d file, and yahan pe black is not playing for a draw, he's playing for a win. भाई फिर पनौती लगा रहा है. ए दीपिका, कम ऑन. आई नो दीपिका भी नहीं है, दीपिका पादुकोण तो बिजी होगी. कोई उनका बेटा या कोई उनका छोटा भाई देख रहा होगा.
प्लीज भाई ऐसे मत करो यार, कम ऑन। इतने वीक ओपोनेंट्स के साथ भी इतना डिफिकल्ट मैच क्यों हो रहा है? By the way, VD finds the best move in the position, f4, but it's also an extremely committal one. Now the e4 pawn is also weak, and this is not going to be easy. Can we have okay, let's keep it this way, just have Vidit on the camera, and जब भी फुल स्क्रीन करेंगे निजो भाई, डू एट द बोर्ड देयर, जब भी फुल स्क्रीन हम करेंगे अब से, फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो. एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, वेयर डज नाइट गो? आई थिंक कोई इजी स्क्वायर नहीं है. इफ नाइट टू g6, then you can see how we can just take on c6, pawn takes, and this is really bad for black. So यहाँ पे एक ही मूव है उसके पास, knight takes d4, you take the knight back, and then he moves the knight to d7, and उसके बाद भी you always have this idea now c6 at some point, and also knight b3 back with c6 next. So I think कहीं ना कहीं VD के chances थोड़े से better लगते हुए after this move f4. ब्लैक थोड़े प्रेशर में, उनके पास टाइम ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली. लेट्स सी क्या होता है. Who's more strong opponent, Vidit or Gukesh? I think Gukesh का opponent ज्यादा strong है. Vidit's opponent is definitely weaker than him, but it's not an easy match जैसा मुझे लग रहा था. Where can I find results? You will find the live streams on this channel itself. मैंने खुद stream किया था along with B-Stats. You can find those streams on the live tab of this channel. Okay, chat, we're all set. Chat, 40 more likes. Let's go towards the first challenge. Who will be between you and Ranjan bhai? Bhai close रहेगा, बहुत close रहेगा यार. Vidit fully focused. This is the moment जहां पे ब्लंडर स्टार्ट होंगे. चैट, हमने कैसे देखा प्रग ने पूरी गेम दे दी 2 गेम में in one move. This is the moment जहां पे ऐसी चालें होती हैं. Now slowly Nodirbek falling under time pressure, but he has only 10 moves to make, so should not be an issue. Going to the game of Pragg, कुछ चल रहा है क्या? F5 played by Pragg. Wow. So he is yeah, he is not worried. Let's put it that way. He is not worried. Yeah. F5 played, takes on e4, queen takes e4. I think we might even see queen e4, rook d7. And chat, this is looking more and more like a draw for Pragg. I hope you कोई blunder लग जाए, rook d1 और queen यहाँ c7 में पड़ी हो, but most likely this is going to be a draw. So let's stick to VD's game. I think this is going to be epic. Let's see where the black knight goes. B-Star से क्या हाल चाल भाई? B-Star से बढ़िया है भाई. वो भी अब चेसकॉम स्ट्रीमर बन चुके हैं, अगर आपको ना पता हो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया चेसकॉम स्ट्रीमर प्रोग्राम, तो वो भी करेंगे स्ट्रीम होपफुली सून. ईवी फिर से आ गई फेक अकाउंट बना के. बिल्कुल. ओहो, व्हाट जी कुछ कोशिश कर रहे हैं भाई डिफेंड करके इसी को. विडी जब भी बेस्ट मूव खेलता है अलग ही फील आती है, जैसे हमने खेला है यार. ऐसा क्यों है? इवन आई एग्री. आई डोंट नो व्हाई इज दैट द केस लक्ष्य भाई. आई डोंट नो व्हाई इज दैट द केस. ऐसा लगता है हमने ही खेला है, सही ना? आई डोंट नो व्हाई दैट्स द केस. आई रियली डोंट नो. I think it's because we have seen VD the most on camera, so हमारा वो personal connection VD से ज्यादा है. Maybe that's why. By the way, 23 minutes now. This is a legit account. What are you talking about? EV Adarna is saying. Where are you from, EV? समोसा तो भाई चैलेंज होगा 369 लाइक्स पे. जितनी वॉचिंग है उतने लाइक्स होने चाहिए. वीवी को हिंदी कब से आती है? या विद एनी इंडियन प्लेयर. या दैट्स ट्रू, बट वीडी थोड़ा ज्यादा होता है वीडी से, नहीं थोड़ा सा ज्यादा. वी हैव क्रिएटेड सच अ बॉन्ड विद वीडी वाया स्ट्रीमिंग. डीक्यू कहां है? अपने घर पे होगी यार. Knight d4. Yeah, knight d4 is forced, by the way, because if you go with the knight to d7, I will take on c6, damage your structure, and then you are basically busted. So knight d4 has to be played, and I'm forced to take back because rook hanging hai. Pragg versus Gukesh, your favorite. Pragg Gukesh mein, I think, man, that's a difficult. I can't choose. Very difficult. Very difficult. What or EV same person and different devices, sad life. वीडी भाई से ऐसी बड़ी अपनेपन की फीलिंग आती है, ये तो है यार.
उज्बेकिस्तान वाले आ गए भाई, उज्बेकिस्तान वाले नहीं आए भाई, इंडिया वाले आए भाई, इंडिया वाले। आई एम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। सो अदरना जी मुझे ये बताएं कि आप कितने साल के हैं? वॉट अबाउट क्वीन सी फोर नाउ? भाई घोड़ा नहीं बचाना क्या? भाई घोड़े से क्या नफरत? द क्वीन इज डिफेंडेड, सो यू कैन एक्चुअली जस्ट टेक द नाइट नाउ, सो नॉट क्वीन सी फोर। 400 की वॉचिंग हो गई, बोलते ही 360 की वापस। भाई दिस इज भाई, आप शांति रखो वॉचिंग के बारे में भाई, वॉचिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। अदना जी कितने साल के आप? उज्बेकी कीबोर्ड, अबे यार। बाय द वे लेट्स गो टू द गेम ऑफ गुकेश, कुछ हुआ क्या? नथिंग हैज बीन प्लेड। यार निरंजन भाई ऐसा क्यों, आज स्लो क्यों चल रही है सब गेम्स? आई डोंट गेट इट। कहीं पे भी कोई भी हल्की सी एडवांटेज नहीं है किसी के पास, है ना? लग नहीं रहा आपको कि इट्स लाइक वेरी वेरी स्लो बिकॉज कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहा है? मुझे लग रहा है तीनों ब्लंडर ना मार दे भाई, लाइक कोई भी तीनों गेम्स में ब्लंडर मार दे एक ही मूव में अभी। डिसाइसिव गेम्स हो चुके थे भाई, इसका इफेक्ट तो रहता ही है। जैसा अभी पेंडेमिक आया, तुरंत तो गया नहीं, थोड़ा इफेक्ट था। वैसा ही डिसाइसिव गेम्स का थोड़ा इफेक्टिव रहता है, इफेक्ट खत्म होने के बाद फिर से सब चालू जाते हैं। हम्म। चैट बाय द वे, आई थिंक व्हाइट ऑलरेडी हैज अ ड्रॉ इन हैंड। अगर प्रग के ओपोनेंट को ड्रॉ चाहिए, ही हैज अ ड्रॉ इन हैंड आफ्टर किंग g8, queen a8 check, king h7, and queen e4 check. So he has a draw in hand immediately. So, and based on my understanding, I think he will take it. He has low time on the clock and he's not like much better. So I really doubt he will push here against Prague. I think he will take it. Tikku, because of your stream that we 18 for the first time, congrats. Thank you, bhai. Before I started watching, I was 2000. भाई नया अकाउंट बनाया होगा इसलिए 2000 होगी, वरना कोई मुझे कम चांस लगे तो मैं 2000 होने के। लेट्स गो नोदिरबेक, क्वीन बी3। कहां है अपना नोदिरबेक? भाई खेल ही नहीं रहा है वो, नोदिरबेक इज नॉट इवन प्लेइंग। रैपिड सबसे अच्छा इवेंट होता है भाई, रैपिड देखने में मजा तो है, बट सबसे मजा आता है ब्लिट्स में भाई, नो डाउट। बाटल इन एक्यूरेसी, बाटल ने क्या खेला भाई? बाटल बाटल ने खेला है नाइट डी4, नाइट डी4 एंड ही प्लेस नाइट सी4। apparently that's a mistake. How much big mistake we don't know, but now f5 for VD and apparently 96 is incoming and उनको exchange sack देना पड़ेगा। rook f8, 96, rook e6, pawn e6, queen e6। इसमें VD better है क्या? Nanjan bhai, do you think VD is better here or does black have enough compensation? Queen g3 threatening rook bishop f6। टी-शर्ट के बारे में पूछ रहे हो या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली 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 थोड़ा डिफिकल्ट है भाई वाइट से खेलना, क्योंकि वाइट के पास अभी फिलहाल किंग h8 के बाद टारगेट नहीं लग रहा है, मुझे कोई टारगेट दिख नहीं रहा। Interesting, interesting. So if it's not easy, then will VD go for it? But f5 is tempting. 96 such a normal move. On a CS note, मेरी स्ट्रीम देखकर रेटिंग 500 से 1050 हो गई, इसलिए स्ट्रीम लाइक करो चैट जल्दी से। विदित प्लेज f5। वाओ। सो चैट 12 मूव रिमेनिंग, 13 मिनट में खेलनी है। f5 played, 96 incoming. Let's see what happens. Black has to play rook f8. I mean, he has to play rook f8. He has to win this f5 pawn. Otherwise, he is not going to win this because bishop c5 एक और मूव है, but यहाँ पे 90 इसमें you don't get the f pawn, and this is okay for white. Then he's winning. You need the f pawn here by rook e6. Nodirbek will be champion of what? Pragg जीत गया, Pragg का ड्रॉ चल रहा है। How many moves does he make? By 12 more moves. He did it indeed. किंग टू i1। भुवन भाई लगता है पता नहीं कौन सा चेस का वेरिएंट देख के आ रहे हैं। विदित इज अ ड्रॉ कह रही है ईडी अडरना जी। ईडी जी आप कहां से ज्वाइन कर रहे हैं, हमें हिंदी में बताएं। आपकी स्ट्रीम में कभी 1.5 के व्यूइंग हुआ है क्या? हाँ भाई, आई थिंक द पीक वॉचिंग आई हैव हैड इज 3.2k, 31843। अप्रूव बाय कॉन्ट्रीब्यूशन इज फार फाइनर गैम्बिट। ओ माय गॉड, इतनी इंग्लिश में कभी पढ़ता नहीं हूं। सो पूरा 20 मिनट है उनके पास। रूक f8 प्लेड, ही फाइंड्स द मूव। नाउ द क्वेश्चंस ऑन VD। अगर f5 खेला है तो 96 खेलना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू जस्ट गिव अप द e5 स्क्वायर। फॉर व्हाट? ही हैज टू प्ले 96 नाउ। In for a penny, in for a rupee. Let's go.
लग रहा है एंड में मोए मोए लाइक यस्टरडे। नहीं भाई, ये मोए मोए शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है भाई। I am now liking VD's chances. Let's see. Yeah, 96 is a tempting move. But उसके बाद भी, as Nisha bhai said, this endgame is not easy because let's say queen g3, I move the king to h7. We don't have any clear targets. This pawn will also fall. And हमारा back rank के issues भी हैं. And luckily for black, he has the right bishop because bishop c5, bishop d6, यहाँ बहुत threats हो सकते हैं. And the bishop is also attacked, by the way. How much training can we get without learning theory? Probably you can reach 2000 without any theory. That's possible. Basic अगर opening पता होगी काफी है. Within time pressure, let's see भाई कितना time pressure है, कितना handle कर पाते हैं, वो ज्यादा important है. When Pragg shakes hand with Thai, which way the color transfers? What? मतलब? Come on, VD खेल दे भाई. अब क्या ही सोचना है इसमें क्या ही सोचना है अब. इतना खेल दिया तो 96 तो खेलना ही पड़ेगा. We have no choice whatsoever here. If Vidit wins, please shout laka 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 laka. ये क्या है भाई? 11 minutes now. 12 moves in 11 minutes. By less than a minute a move is where you start freaking out. Vidit has 10 minutes o'clock but still goes to get juice. क्या बात कर रहे हो? Can we have? नहीं भाई, बैठा हुआ है यार. बैठा हुआ है वीडी भाई, ऐसे मत बोलो यार. Don't do this. बैठा हुआ है वीडी, डोंट वरी. अभी जूस बाद में पी लेगा भाई. होटल पे बहुत पी लेगा वो. So after rook takes c6, what if you play queen takes c4? But then you have a lot of weaknesses. ये pawn weak है, ये pawn weak है. I can simply play rook to c6. This pawn is basically gone because queen trade हो रही है. So queen f7, king f7, and I think black will win this easily. There's no way VD holds this game. Oh, he played it. He played knight to e6 and rook takes e6 played immediately by black. F takes e6 on the board, queen takes e6, and chat, now they have to play 10 moves in 12 minutes, 11 minutes. यहाँ पे कई choices है. Queen takes queen g3 is one choice. Queen b4 is probably even better because you defend the pawn for now and attack the b7 pawn. If we can win the b7 pawn, then VD should be winning. So black के लिए choices थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी. If queen to c6, for example, the knight is lost. So क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे maybe b5 he can play, but then we don't lose the pawn for free. We take it, he take it, and then we are basically, we have black is only one extra pawn for the exchange. So white is definitely better. So queen b4 seems like the best move. Also queen g3, a good move, good alternative for VD. He did actually go into the games. उनको रियलाइज नहीं हुआ होगा शायद, ओपोनेंट ने मूव चल दी होगी, उनको लगा होगा कि उनको वीक फील कर रहे होंगे, थका हुआ फील कर रहे होंगे, एंड दैट्स व्हाई ही हैड द जूस चाहिए उनको, जूस. It's drawish. It's not drawish, EV. I can guarantee you this is not a drawn position. VD's exchange up has a rook for a pawn and a knight, and this might get even sharper if we get the b7 pawn. So it's not a draw anymore. Black has an excellent knight on e5 square, but the bishop controls it. And as of now, the king is safe. There's no attacks on the king. So the king is safe. That gives VD some, liberty to start attacking also these pawns. Come on, VD, 10 minutes hai, 10 move ke liye. According to interns with Pragg को कल अदानी ने डांट लगाई, बोला स्पॉन्सरशिप. अबे नहीं भाई, ऐसे मत करो यार तुम, प्लीज डोंट डू दिस. भाई फुल फोकस, कुर्सी में ऐसे आगे चढ़ के बैठे हैं पूरा, मतलब लगता है एक टांग भी उठा के रख देंगे अभी, फुल फोकस के साथ. कम ऑन VD, क्वीन b4, लेट्स गो. दैट्स द प्रेफर्ड मूव आई लाइक. क्वीन g3 आल्सो पॉसिबल, बट इसमें कहीं ना कहीं आपको you're kind of giving the pawn and hoping for an attack. I would rather just get the pawn by. VD ब्लंडर ना करे चैट, इट इज पॉसिबल. इस पोजीशन में ब्लंडर पूरे पॉसिबल है. आई वुडंट बी put it aside कि ब्लंडर पॉसिबल नहीं है. Can you win his drunk Magnus? No chance. By the way, let's have an update on all three games. Gukesh against Nodirbek. After bishop to a6, queen b3, rook c8, Gukesh finding all the only moves, holding on by a thread, but right now the game is equal. Gukesh should be able to hold this. He should be able to hold this. Rook takes c8, bishop takes c8, and then the bishop can either come back
or it can even come to g4 with a check on f3. So it should be okay for Gukesh. He should be able to hold this. This game should end in a draw. Going to game of Praggnanandhaa, जहां पे king g8 के बाद we saw queen a. Oh, they have repeated moves. So check, check. और को क्या था? Check, check. And rook e3. So white rejecting the draw offer. White could have taken the draw, but he says, no, Pragg, you have to win this game. But I think Pragg can draw this comfortably. There is no stress whatsoever. So there are multiple ways. You can just play rook d6. You can play rook d4, attacking the queen. If queen takes, rook takes, check, king here, and probably just rook a1, rook a6, rook b1, takes, and you push the c pawn. He pushes the a pawn. You will trade these two pawns, and 3 against 2 is a dead draw. So this should be a draw, easy draw for Pragg. Going to the game of VD back. Let's have a look. And queen e6 के बाद VD is still thinking 8 minutes only, chat. Only 8 minutes for 10 moves. Now less than 8, 7 minutes now. Come on. थाई दैन गेटिंग ग्रीडी. भाई थाई दैन को हमने रोस्ट किया था कि वो बहुत धीरे खेलते हैं. आज वो ज्यादा ही अच्छा खेलने लगे. 10 moves to play, bhai. 10 moves to play. Oh, VD picked up his hand, but then stopped. You can see the nervousness, chat. He picked up the hand and stopped. Oh, that's not a good sign. That's not a good sign. Plays rook to c2. Now, that's a very practical choice. Practical in the sense it forces the knight to move. It might not be the best move in the position, but it simplifies the game. I honestly love this move from VD because now, abhi batao bhai, maar rahe ho ki ja rahe ho? Abhi batao bhai, abhi ki abhi. Time nahi hai hamare paas, hame aur bhi kaam hai. तुम इकलौते ऑप्शन नहीं हो हमारे पास. अभी बताओ कि मार रहे हो या जा रहे हो भाई. I like this practicality here. This is really 2.0 by absolutely. Think Pragg will win the candidates. We don't know who will. And नहीं मनीष भाई, I like this move. बार पे मत जाओ. ध्यान रखो, दोनों player human है. Both players could make a mistake. And practically जो position easy करे हमारे लिए, even though it might be the second, third preference of the engine, is better than a variation जहां पे गलती होने के chances ज्यादा हैं. So I like this move. तो 24 में तीसरी बार नेपो सरकार. भगवान के लिए माफ करो, मैं नेपो और नहीं देख सकता यार. मुझे कोई इंडियन प्लेयर चाहिए यार प्लीज. डेविड नवारा गेम. भाई नवारा क्या करना है, एक बार नजर मार लेते हैं भाई. अबे क्या करना है इसको देख के यार. एंड गेम छोड़ो ना नवारा भाई को. नवारा भाई चिल है, मगर अपन को इंडियन प्लेयर देखने का. Why did the Indian chess player bring an extra pawn to the tournament just in case he needs? अबे ये क्या है भाई. अनीश गिरी के खौफ के मारे लाया हुआ एक्स्ट्रा पॉन भाई. अनीश गिरी कहीं टूर्नामेंट में तो नहीं है. What if Ding then withdraws from the World Championship? Then the top 2 from the candidates play the World Championship. But based on how much Ding is playing, there is no chance of him withdrawing. I see that happening as probably 0.1% chances. So Ding will play. By the way, Black still thinking, slowly coming down on the clock. जो मैं चाहता हूं कि यार, पता है मुझे क्या लग रहा है, ये लोग ना ज्यादा ही लाइटली ले रहे हैं इसको यार. स्टार्टिंग में they're thinking too much. Which has the best chance to win candidates according to you? Man, on paper, Caruana. It has to be. Like, he has the best chances. But as 3 Indians are playing, I'm still hoping. Dinner done. Dinner was done at 6 p.m., 5 p.m., whatever. Other games make Gukesh against Nodirbek. It seems like we are moving towards a draw, and that would be a great result for Gukesh with the black pieces. I like it. Queen d5, white still pushing, but I think simply bishop f5 here. And that should take care of any threats, because if knight takes f5, I think both moves are okay. I would probably... किससे मारे यार chat? Not so sure. So queen f5, I'm thinking queen d8, king here, queen takes b6, but there is queen f3, king g1, queen d1, king h2, and then a4 mar raha hai. So this either works. If a4 is hanging, then either works. So I think even bishop f5, knight f5, queen f5 should be a draw.
and or pawn takes also works. Both are dropped. I think queen f5 keeps it more solid. अगर दो इंडियंस होंगे तो मजा आएगा भाई. So Gukesh game most likely a draw, and going to the Pragg game for a second. So rook d1 check by Pragg, king h2, queen d6 check, g3, and now queen d5, and that's a simple way for Pragg to basically get a draw. अगर यहां पे क्वीन d5 मारते हैं तो ed5 and this should be a simple draw. अगर बाई चांस वो चेक देते हैं यहां पे तो क्वीन टेक्स e6, रुक टेक्स e6, एंड नाउ रुक a1, वही जो हमने वेरिएशन सेम देखी, rook a6, rook b1, rook here, this pawn push will be trade off and should be a draw. Nodirbek, if he wins, will be world top 4. I know, nahi jeetne dena bhai isko. Hikaru has the best chances. He's unbeatable from a long time. I know, but he also doesn't play that much. So it's very difficult for him to come back after a while and just strike on demand. He plays good chess. He's not under pressure. But first आना है, second will not do. देंगे starting with, अबे ये क्या है भाई? Going to the Vidit game. Let's have a look. So by the way, rook c2 का opponent अभी भी सोच रहे हैं. 9 moves for VD to play in 7 minutes 54 seconds, and opponent को 10 move खेलने हैं in 16 minutes. Chat, by the way, we are 22 likes away from the first samosa challenge. Let's go, chat. जल्दी से like करो. Let's get the first challenge. चलो भाई, time for the challenge, chat. Let's go. क्योंकि ये चैलेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आई वांट टू सी तुम लोग कर पाओगे कि नहीं. मुझे लग रहा है तुम लोग नहीं कर सकते चैलेंज. इट्स इम्पॉसिबल. Nodirbek Abdusattorov, power chess player. Do you mean power pef girls की तरह? Wesleyan candidates or not? No, Wesley's not playing the candidates. By he's not playing the candidates. टेक्स e4 पॉन जा रहा है भाई. e4 पॉन का क्या भाई? अभी कहां? अच्छा यहां कह रहे हो क्या? क्वीन टेक्स पे क्वीन टेक्स e4, ये पॉन तो जा रहा है भाई. ये बात तुम्हारी सही है. सो कैन वी टेक विद द रुक इंस्टेड? कुछ डिफरेंस है क्या? रुक टेक्स क्वीन टेक्स, नाउ व्हाट? You're actually right, man. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है. So what do we do now? And there are back rank issues. What I would love to play is this, but I'm worried about rook d3, then rook e3, rook e1. It's not that easy. Yeah, you're kind of right. Knight b2 also close to equality. Close to equality, actually. And no way, man. Really losing. Definitely wishing him the best for next year. He's not losing, buddy. He's equal at least. No, the big power. भाई समोसा कोरियर करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो भाई? अभी करेंगे भाई, पूरा यूपीआई करेंगे भाई. ओ नाइट टेक्स b2 प्लेड बाय हिज ओपोनेंट. मार दिया है. लेट्स सी किससे मारते हैं वीडी. 368 likes, chat. Only one like to go for the first challenge. After queen e4, white can play queen b7. Are you sure about that? Are you sure about this move, bhai? The problem with this move, एक ही प्रॉब्लम नहीं है. एक तो पहले तुम्हारा क्वीन डायरेक्टली हैंगिंग है, और दूसरा रुक भी हैंगिंग है. सब कुछ त्याग दिया भाई. मॉन्क बनना होगा तो यही मूव चलेंगे. मॉन्क बनने से एक चाल पहले यही चलेंगे. आई डोंट थिंक जिस फॉर्म में वो चल रहा है वो वर्ल्ड चैंपियन. आई एग्री मैन. इस फॉर्म में तो कोई चांस ही नहीं है. बाय द वे, क्वीन टेक्स e4 played. So seems close to equality right now. Black's king is safe. These pawns do matter, man. And ये बिशप खुल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. 378 likes. अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया. फाइनली चैट ने कर दिया भाई, इतने घंटों के बाद. 3 घंटे लगे तुम्हें चैट. बहुत स्लो यार, तुम्हारा सावन स्लो है. चैट जब चैलेंज के रेडी हो गए तब बताना मुझे, ठीक है? उज़्बेक लोग आने लग गए हैं. 2-4 आ गए ऑलरेडी. अरे कोई बात नहीं यार, हम गेम ड्रॉ करेंगे. कम से कम ड्रॉ करेंगे भाई. बाय द वे, क्वीन d5 के बाद गुकेश ने खेला है बेस्ट मूव, क्वीन टू e7, सेज विद द क्वीन. आप समोसा अपने ही बंदे को देते हो मैच फिक्सिंग. अबे यार, काश. Go to Gukesh game, man. Why keep watching this game? Come on. अरे भाई, तीनों गेम इंपॉर्टेंट है. Gukesh गेम तो ड्रॉ ही होनी है, आई थिंक. If you look at the game, I think यहाँ पे एक पॉन ही है, ये एक्सचेंज रहेंगे. Bishop d7 in the next move,
एंड व्हाइट को या तो एक्सचेंज करना पड़ेगा या फिर पैसिव जाना पड़ेगा. एंड इफ ही गोज पैसिव, then I'm like, let me try my own stuff then, stuff which I wanted to try always but couldn't try, but then I can try. चलो भाई चैट, लेट्स डू द फर्स्ट समोसा चैलेंज ऑफ द डे. रेडी हो चैट? बताना भाई, सब रेडी लिखो चैट में जब तुम रेडी हो, बिकॉज दिस वन विल रिक्वायर योर कोऑर्डिनेशन. अब तक क्या होता था, जो चैलेंज होते थे ना, उसमें तुम एक बंदे को एक जवाब देना होता था, एंड द वन हु आंसर्स करेक्टली विंस, राइट? अब तुम्हारी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी इस चैलेंज में. रेडी हो तुम चैट? यू विल नीड टीम वर्क फॉर दिस चैलेंज. दिस पोजिशन एट लास्ट ओलंपियाड. अरे यार वो मत याद लो यार, तुम रुला दोगे मुझे अभी. रेडी? चैट इज रेडी. चलो भाई, द चैलेंज इज, ठीक है, लेट्स गो टू विदित गेम. अगर हमें चैलेंज कर ही रहे तो. सो बाय द वे, क्वीन भी थी चेक प्लेड, सो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू थिंक ही टेक ऑन b7. द चैलेंज इज, चैट को, ठीक है, एक एक लेटर लिखना है बस चैट में, एंड वो 5 लेटर है VIDIT, ठीक है? पहली बार जब वो विदित लाइन से बनेगा, समझ रहे हो, 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन से इट हैज टू बी विदित, VIDIT. जब वो परफेक्ट ऑर्डर में आएगा तो जो बंदे का टी होगा उस बंदे को समोसे मिलेंगे. तो किसी बंदे को VIDI लिखना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू गेट द समोसास. विदित जब पहली बार आएगा ऐसे, तब बनेगा भाई. भाई VID हो गया था, VIDID, VI. नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. VIDI हो गया था एक बार, बट टी नहीं आया, उसका डी आ गया. टी क्या कर रहे हो भाई? पूरा विदित एक बार में आना चाहिए, लगातार 5 होने चाहिए VIDIT. जब भी होगा चैट तुम लोग देखना, तुम भी देखो साथ में. आई डोंट थिंक सो मुझे कोई दिख रहा है अब तक. नॉट इवन वन. सारे टी लिख रहे एग्जैक्टली. कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करने को तैयार. सब लोग IT जाओ लिख रहे हैं भाई. VIDIT. रुको. अरे एक बंदे ने वेट लिख के खराब कर दिया, होने वाला था एक्चुअली. DIT था. ओ स्कैम नहीं है भाई. IDIT था आई थिंक. भाई DIT. भाई चैट तुमसे ना हो पाएगा भाई. भाई I have a plan, everyone stop कह रहे हैं भाई. अगर सब लोग रुक जाए और कोऑर्डिनेशन करके कर ले तो इट कैन बी डन, बट आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा. अब तक लोग कर नहीं पाए. बाय द वे, किंग H8 प्ले चेक एंड क्वीन टेक्स. वीडी ने पॉन मार लिया है. VI क्या था? VI नहीं टी आ गया एक और एक्स्ट्रा बीच में. भाई टी सब लग रहे हैं भाई. भाई दिस इज फन. कोई नहीं कर पा रहा चैलेंज. नाइस, मस्त निकाला है भाई. ये मस्त चैलेंज है भाई, ये मस्त चैलेंज है. VIDIT लाइन से चाहिए, 5 ही अल्फाबेट है भाई. यू नो व्हाट, विदित नहीं कर पा रहे तुम लोग. और कौन सा है? प्रग ट्राई करो. लेट्स ट्राई प्रग. विदित तुमसे ना हो पाएगा भाई. लेट्स ट्राई प्रग. लेट्स गो टू प्रग्स गेम. और प्रग की गेम ड्रॉ चुकी है. लेट्स ट्राई प्रग. PRAGG. लेट्स सी कॉल. इसमें 2 G सेम है. विल हेल्प यू. दैट विल बी इजियर, स्लाइटली इजियर. प्रग हैज ड्रॉन बाय द वे चैट. भाई कम ऑन, लेट्स गो. PRAGG. भाई जी मुझे दिख रहे हैं भाई. भाई फालतू चैलेंज क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन है भाई, देख लो तुम. PR. भाई सब लोग जी लिख रहे हैं, कोई PRA लिखने को तैयार ही नहीं है भाई. भाई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है चैट. व्हाट इज दिस चैट? नो कोऑर्डिनेशन. PAGGG हो गया था आई थिंक. PRA. अबे भाई PAR नहीं. स्कैमर टिक्कू क्या है भाई? भाई साहब, निरंजन भाई हो नहीं होने वाला, मुझे लग नहीं रहा होगा चैट से. है, डू यू थिंक होगा? PARGG हो गया था भाई. पर्ग हो गया, पर्ग. भाई ये क्या है भाई? क्या लगता है होगा? व्हाट डू यू थिंक निरंजन भाई?
मुझे लगता है हो सकता है। हो सकता है। चलो विल गिव यू 1 more minute चैट। ओ ओ ओ पी 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 हुआ क्या, एक सेकंड। पी पी ए जी जी जी, अरे यार पी, तुक्का तुक्का लगना चाहिए भाई किसी का। जी वाले को लास्ट वाले को मिलेगा भाई। पी ए आर जी जी, ओ सो क्लोज, पी ए आर जी जी जी, सो क्लोज मैन। भाई ओ अगेन अगेन अगेन, पी आर आर जी जी, अरे यार कोई ए नहीं लिख रहा, जी 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 लिखे जा रहे सब बस। भाई यार क्या चैट। 11-5 मैं टाइप करूंगा भाई, स्ट्रैटेजी चल रही है। भाई ओ ओ ओ ओ पी ए जी पी आर ए जी वी, अबे वी किसने लिखा, रुको शायद हो गया क्या, रुको रुको, somebody wrote something, एक सेकंड, कहां गया कहां गया, एक बंद वी लिख दिया, एक बंदे ने वी लिख दिया बीच में, हो गया था भाई, एक बंदे ने वी डाल दिया बीच में, भाई कौन है बंदा, भाई इसको पकड़ो भाई। एक बंदे ने वी लिख दिया बीच में भाई, शर्म नहीं आती भाई। पी ए जी जी, नहीं भाई। भाई नहीं हो पाएगा भाई, चरण दो भाई। ओ पी आर, ओ सो क्लोज। ओ भाई, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यू कैन टाइप मल्टीपल मैसेजेस साथ में। ओ पी आर ए, ओ नो निरंजन भाई वो सो क्लोज। पी आर ए, पी आर ए आर नहीं। ठीक है, पी आर ए जी, ओ पी आर ए जी ए, ओ सो क्लोज। भाई कोई चैट पे कहेगा भाई चल क्या रहा है भाई। पी आर, नहीं नॉट। ओ निरंजन भाई ने अकेले ही कर लिया था ऑलमोस्ट, बाप रे ऑलमोस्ट कर दिया था। ओ एक से रह गए। भाई ये क्या है भाई। ओ अगेन मिस्ड। भाई नहीं हो पाएगा चैट, मुझे लगता है। चैट अगर तुम स्लो हो जाओगे ना, निरंजन भाई अकेले ही कर पाएंगे मुझे लग रहा है। लेकिन निरंजन भाई विल विन द मेंबरशिप देन। उनके पास ऑलरेडी है। पी आर ए, ओ शुभन वाज सो क्लोज। उधर गेम ड्रॉ हो गया विदित का, रुको भाई। नहीं नहीं भाई गेम चल रही है, गेम चल रही है अभी। यही लाइव पोजीशन यही है चैट, वी आर वेटिंग एट दिस। डन बाय शुभम, रियली कहां पे। भाई यूट्यूब का लोगो कहां से आ गया। ओ यार पी आर, नहीं भाई अगर तुम चैट स्लो हो जाओगे ना, निरंजन भाई विल विन। आई थिंक ही विल विन, ही इज सो क्लोज। क्वीन डी3 बाय द वे, रुकी वन, रुक इज हैंगिंग हियर। बाप रे भाई कितना टाइम लगता है यार। दिस इज जस्ट प्योर प्रोबेबिलिटी बाय द वे, दिस शोज यू कितना डिफिकल्ट है 5 अल्फाबेट का एक साथ में आना। कितना डिफिकल्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रियल। मैंने कर दिया भाई, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे फिर कर दिया तो, दैट इज द ओनली वे आई कैन गारंटी। बाप रे भाई छोड़ो भाई, ठीक है भाई। आई थिंक शिवम भाई कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया है, सो हम वी विल ट्रस्ट शिवम भाई, प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट एंड आई विल गिव यू द मेंबरशिप भाई, डू सेंड मी द स्क्रीनशॉट भाई। एंड निरंजन भाई ने कर दिया है फ्रॉड, निरंजन भाई ने भी कर दिया है। सो शिवम भाई डू सेंड मी द स्क्रीनशॉट, इफ योर्स इज करेक्ट देन यू विन द मेंबरशिप, अदरवाइज निरंजन भाई को मैं समोसे खिलाऊंगा भाई। फेयर चैलेंज, फेयर चैलेंज भाई। निरंजन भाई जीत के क्या करेंगे भाई, समोसे तो खा सकते हैं भाई। चैट वेल ट्राइड मैन, वेल ट्राइड, गुड फाइट, गुड फाइट। भाई गर्मी हो रही है ना मेरे को। ओ स्लो मोड में इजी होता है ना एक्चुअली, हाँ दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेट मी ट्राई। अब सिर्फ फन के लिए भाई, बट इट्स वर्थ ट्राइंग कि स्लो मोड में लोग कर पाते हैं क्या। आई एम जस्ट क्यूरियस इफ स्लो मोड में लोग कर सकते हैं। स्लो मोड कैसे ऐड होता है यार, स्लो मोड 5 seconds, लेट्स सी चैट अप होता है क्या। लेट्स सी, आई एम जस्ट क्यूरियस। रूक एफ टू प्लेड, बट ये पॉन हैंगिंग है यार, दिस पॉन इज नाउ हैंगिंग, this pawn is now hanging, so I'm not so sure if this was the best move. What happens, rook f3 on bishop c5? भाई अभी भी फास्ट चल रहा है यार। पी आर, भाई अभी भी फास्ट चल रही है। भाई तो दोबारा देख लेना भाई। जमाई को दे दो, इस भाई कौन ढूंढेगा।
डन लॉन्ग बैक, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट टू। भाई तो ट्विटर पे डीएम कर दो भाई, ये तो अभी भी बहुत फास्ट है भाई, कुछ नहीं होगा भाई, छोड़ दो भाई। ठीक है, आई थिंक यू नो व्हाट, दिस वाज रियली फन, बट किस्मत हमारी थोड़ी वो है भाई, थोड़ी खराब है, कई बार मिस होना भी सिंपल है। बाय द वे रूक F3 प्लेड, ठीक है भाई। रुको भाई साहब, चैट रुकने को तैयार नहीं है भाई, रुक जाओ मेरे दोस्तों, रुक जाओ भाई, भाई रुकने को तैयार ही नहीं है। निरंजन भाई क्या करे, चैट रुक ही नहीं रही भाई। मस्त गेम है भाई, भाई मस्त गेम है। हाँ मस्त गेम है ये। नहीं, गेम तो मस्त है, बट अब रुक क्यों नहीं रही भाई, खेलना बंद करो भाई, पढ़ाई का टाइम आ चुका है भाई। हाँ, so let's focus on the game. By the way, now black has 2 pawns for the exchange. So I think this game is moving towards a draw, but it's not a draw yet. I think time pressure आने वाला है, 4 move खेलने बाकी है. It's fun. It is fun, but I think पता है how we'll do this if we'll do it in the future is we'll do it with 3 or 4 alphabets, not 5. 5 is too much. I think 4 is the sweet spot जहां पे टाइम लगेगा, but we'll find out. सब निरंजन भाई की गलती है, अरे फाइनली किसी और पे ब्लेम गया, थैंक गॉड भाई। भाई ऐसे कमेंट्री करोगे तुम, हाँ ऐसे करोगे भाई, फन कर रहे थे भाई, इंस्टा पे डीएम कर दिया, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। तो शायद फिलहाल 96.5 एक्यूरेसी है वीडी की, 96.6 है बार्टिस मेटल की। बाय द चैट, प्रग हैज ड्रॉन हिज गेम, so that makes sense. Queen d5, queen e6, queen e6, rook e6, rook a1, c4. Okay, a4, c4, takes, and they agreed to a draw. So it's pretty awesome. I will check Couldn't check Twitter also. Send me to Twitter, bhai. You can DM me on Twitter. That's not an issue. So वो कोई चक्कर नहीं है भाई. So that is going to be a draw. They have agreed to a draw. So Pragg has drawn. Now going to the Gukesh game chat, जहां पे queen e7 तक हमने देखा था. Let's see how the game has progressed. So knight c6 attacking the queen. The queen goes to d7. So now if, for example, you take on e4, that would be dangerous because of bishop b7 and you are losing the game. So that's why he plays queen c4 here. But now comes queen e6 offering the trade. This is something I wouldn't have traded, for example, but okay. Now comes check. Queen takes c8, king g7, and chat, we have a queen endgame with equal number of pawns, and even queen f6 should be a draw. So I think this should be a draw, chat. So Instagram पे DM कर दो भाई, Instagram पे DM कर दो भाई। निरंजन, इंस्पिरेशन ऑफ हर्षल मेहता कौन है भाई? एक बंदे को समोसे मिल जाएंगे भाई, जो बंदा मुझे DM करेगा, तो ये एक चीज है, बट मजा आया भाई, I think that was nice. Okay, so queen f6 now, 3 minutes for Gukesh. He only has to play 3 more moves. So should be easy to handle. But Niranjan bhai, are we moving towards 3 draws today? Which was totally unexpected, yeah? हाँ भाई, सूत्रों के अनुसार 3 ड्रॉज ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। अरे सूत्रों के अनुसार क्या भाई, ये तो आपने सारा स्पॉइलर अलर्ट करने का, चेसिस दर्द खोल के देख लिया आपने। सूत्रों भाई, सूत्र तो बड़े बड़े पब्लिक है रे, अरे जैसे नहीं सारे चेसिस दर्द नहीं है, अभी तक अपलोड ही नहीं अच्छा किया अच्छा उन्होंने। अच्छा, जैसे साहिल चैट को उल्लू बनाता है, वैसे ही हमारे पॉलिटिक्स पार्टी पब्लिक को बनाते हैं भाई। यार तुम मेरे अगर गूगल पे का तुम वो हिस्ट्री देखोगे ना, इतने लोगों को मैंने 100 रुपए भेजे हैं, मोदी जी कहेंगे भाई ये कोई स्कैम रन कर रहा है। मैंने कर दिया डीएम, ठीक है भाई, देख लूंगा मैं। इसमें क्या सोच रहा है गुकेश भाई, कुछ तो सोच रहा होगा भाई, एडिट करके डीएम कर सकते हैं भाई, वो भी स्कैम है यार, लोग एडिट करके डीएम कर लेंगे तो क्या फल संजय, अगर मैंने किया भी तो अब कहां, अब ढूंढने बैठूंगा भाई। दैट्स द फन, दैट्स द फन भाई, जिसको समोसे की वो पड़ी हुई है वो ढूंढेगा भाई। मुकेश ड्रॉ नहीं जा रहा, बाय द वे 40 मिनट्स के लिए 3 मूव और है। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एटलीस्ट enough time, and now I think Vidit is not under time pressure, so कोई ऐसा situation नहीं है, he can just play normal moves, bring the queen back, play I don't know some, I think ठीक है actually, I don't even want to weaken my king with any of these moves, ऐसे ही रखो फिलहाल, and yeah just play queen e4, rook e1 and see क्या होता है आगे।
Draw should be easy, man. I think black के पास अगर ये connected pass pawns थे, that would be a bit more dangerous. This should be relatively easy to draw for either side. Like दोनों sides के लिए मुश्किल है. White के लिए मुश्किल इसलिए है because it's very difficult to exchange rooks or queens. If I could exchange that, bring the king all the way, then I can think about winning. For example, मान लो, imagine taking queens off, taking rooks off, the king walks all the way to b7 and just wins the game, or even just rook somewhere like the, c1, c6 and takes. But with the queens on board, it's very difficult and it should be a draw. कब सोचा आपने इतना इनोवेशन आज भाई, अभी स्ट्रीम से पहले? फन था ना, लेकिन मजा आया एक्चुअली. सर, Pragg गेम अपडेट. Pragg has already drawn भाई. Pragg has already drawn. Going to the Gukesh game now, जहां पे किंग g8 खेला है गुकेश ने. किंग f1 के बाद क्वीन टू e6. I really don't know. I think the plan for white is to bring the king, I don't know, घुमा फिरा के कर करके यहां आने का प्लान हो सकता है. But yeah, shouldn't work. I mean, I will always have some queen f5, queen f, some check, and then pick up f2. And if I win f2, then I am the one winning. So it's not going to work. Spoiler, draw in all 3 Indian games. आज का थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक लग रहा है मुझे. नहीं, मैं ऐसा लग रहा है कि यार आज तो 3 विन चाहिए थे. एटलीस्ट 2 विन तो चाहिए थे आज. हाँ भाई, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है ना डिसाइसिव गेम के बाद. पहले लोग स्टेबलाइज होते हैं भाई. स्टेबलाइज करने के बाद फिर रोड रेस गेम में कैसा नाइट्रो बूस्ट डालते हैं ना, वैसे नाइट्रो बूस्ट डालेंगे फिर. नाइट्रो बूस्ट डालना है क्या भाई? नाइट्रो बूस्ट डालने के लिए लेकिन फिर वो किसके अगेंस्ट डालेंगे नाइट्रो बूस्ट? ये भी तो है ना, आज तो उनके वीकर ओपोनेंट्स थे. सो दिस शुड हैव बीन अ गुड ट्राई टू पुट अप दैट नाइट्रो बूस्ट जो हम कह रहे हैं. यहाँ पे अच्छा मौका रहता, लेकिन उन्होंने किया नहीं कुछ. सो आई एम होपिंग कि टुमारो दे विल स्ट्राइक बैक. नहीं, मुझे लगता है रेस्ट डे के बाद सब गाड़ी चालू करेंगे, फास्ट करेंगे. गाड़ी चालू करेंगे. नाइस. चलो भाई, होपिंग सबकी गाड़ी चालू है भाई. ये क्या कर रहे हैं भाई दिपेश भाई? दिपेश भाई लगता है पीछे देख रहे हैं क्या स्ट्रीम? ये 2-3 लोग पीछे देख रहे हैं क्या स्ट्रीम, मुझे लग रहा है. Throw agreed. And Gukesh and Nodirbek have agreed to a draw. I think that's a good result for Gukesh because he had the black pieces and he was worse at one point slightly. So comeback was epic, finding all the good moves. I think on knight f5 move, hurt Nodirbek. It kind of wasted a couple moves, gave Gukesh a chance to come back. So good game by Gukesh, draws the game. On the other hand, we also have Pragg drawing his game against Nguyen. And the only game remaining is now Vidit Gujrathi against Mateusz Bartel, जहां पे ब्लैक ने बड़े प्यार से अपना बिशप d4 रखा है एंड फिर c5 खेल दिया है. एंड इस चाल के बाद आई थिंक ड्रॉ इज प्रिटी ऑब्वियस. Yeah, I mean, there are some threats here, but I can simply play rook g8, no stress whatsoever. Even rook d7 actually. Black को सिर्फ queen trade नहीं करना है and black should be easily be able to hold this game. भाई लिटरली अभी भी तुम प्रग नहीं कर पा रहे चिराग भाई, सोचो कितना मुश्किल है. चैलेंज तो करा, मैं करा नहीं पर लोग करे. आई हैव द स्क्रीनशॉट, बट उसके लिए टू एक्सेप्ट द मैसेज फर्स्ट. भाई एक्सेप्ट करेंगे भाई, स्ट्रीम की बात करेंगे. एक्सेप्ट, लाइफ में बहुत चीजें विद टाइम होती है. कल प्रग वर्सेस वीडी है क्या? क्या बात कर रहे हो? रुको 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 रुको. Oh, tomorrow we have Pragg against VD. Chat. What do you think? Who will win tomorrow between VD and Pragg? तो गुकेश का तो ड्रॉ हो चुका है. Chat, who do you think wins that? Pragg, by the way, will have the white pieces, so that's a positive for Pragg already. So what do you think, chat? What's your prediction for tomorrow? Let's hear it. By the way, 39 moves हो चुके हैं, so एक मूव खेलनी है वीडी को, 2 खेलनी है बाटल को. And who does Gukesh play tomorrow? वो भी देखते हैं. Gukesh plays Navara, so that should be hopefully a point Gukesh can strike. Draw. भाई अभी भी लोग प्रग वाला चैलेंज कर रहे हैं भाई. ड्रॉ. अब क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत भाई. Why not queen takes king वाला pawn? अभी black to play है भाई. I would love to take this pawn and checkmate, but black to play है. So he will save this with rook g8, I think.
भाई दीपेश भाई ने कर भी दिया था, मगर उन्होंने अपनी स्पेलिंग ही गलत कर दी। वीडी एंड प्रग स्ट्राइक बैक करेंगे एज यू सेड। भाई कल करेंगे ना स्ट्राइक बैक, कल आपस में मैच है, सो कोई ना कोई तो स्ट्राइक करेगा कल। अरे अश्मित ने खराब कर दिया दीपेश भाई का। अभी भी नहीं कर पा रहे भाई। व्हेन कैन स्टार्टिंग? आई थिंक इट विल स्टार्ट ऑन 4th अप्रैल यार। ये वाला जीतना मुश्किल है आई थिंक। बाय द वे 3 less than 4 minutes now, yeah, not that much time remaining. वीडी भाई बस बैठे तो हैं, मगर आग की मिसिंग लग रही है। आग नहीं, आग अभी पेंडिंग है। 2 मूव फॉर ब्लैक, 1 फॉर व्हाइट। आई स्टिल होप वीडी कन्वर्ट्स। भाई किसी ने स्पॉइलर दे दिया है कि गेम ड्रॉ हुई है चेस रिजल्ट्स पे। सो एंड आई डोंट थिंक वी कैन चेंज द फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली। अभी भी नहीं कर पा रहे लोग, निरंजन भाई, अभी भी नहीं लोग कर पा रहे PRAGG। कितना मुश्किल है भाई। PRGAG लिख। फाइनली ध्रुव भाई ने कर दिया PRAGG कैप्स में, थैंक गॉड। चलो। Man, Rook D7 played. So will we see a repetition, Ranjan? Queen 8, Rook D8. I think we might see a repetition, yeah? It is very likely right now. किसी का नहीं होने दूंगा। निखिल भाई तो मतलब अलग ही लेवल पे सडिस्टिक है भाई। नहीं भाई, मैं नहीं तो कोई नहीं। ये वो मूवी में एक्टर होता है ना भाई, तुम अगर तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। वही है निखिल भाई यहाँ पे। WAD पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। या चैट दे आर रिपीटिंग मूव्स, क्वीन B7, रुक D7। This is going to be a draw in just a minute or so. So Vishy Anand maintains his number 1 spot in the world, and they have drawn the game. So all 3 draws, surprisingly, I really expected Vidit or Pragg to win today, but it was not to be. And tomorrow we will have Pragg against Vidit. So Pragg will have the white pieces. It will be a crazy match. Ranjan bhai, whom do you expect to win tomorrow, Pragg or Vidit? आई डोंट नो भाई, मुझे तो लगता है ड्रॉ ही होगा कल भी, क्योंकि रेस्ट डे है ना। तो रेस्ट डे परसों पे रेस्ट डे, फिर इसलिए कल ड्रॉ होगा कह रहे हो आप? हाँ, इसलिए मार्च 3 को रेस्ट डे है, तो इसलिए थोड़ा ड्रॉ करके बाद में देखेंगे, ऐसा होगा इनका स्ट्रेटजी। सो आई थिंक कि कल वीडी पे बहुत प्रेशर आने वाला है प्रग से, व्हाइट पीसेस से, बिकॉज प्रग इज डेफिनेटली हैज हैड दोस गेम्स। in every game he's managed to put pressure on his opponent. So now we will see what happens. Matlab, I think he will face pressure, and if he counters and Pragg blunders again, then he will have his own chances. Let's see what happens. कल Tiku तो bro, मजा are you आएगा। kid or what? Be little professional, stop all this silly game. By the game is not being run by me right now, it's being run by the chat itself. क्या कह रहे हो भाई? यस, कल इंटरेस्टिंग होगा। फिर मिलेंगे चैट। थैंक यू फॉर स्टेइंग फॉर दिस अमेजिंग गेम्स, एंड कल मिलेंगे फिर से। हाँ चैट, मिलते हैं कल। कल वी हैव अ क्रेजी मैच बिटवीन गुकेश, सॉरी, बिटवीन प्रग एंड विदित। दैट विल बी एन इनसेन मैच। यही मैच फिर से कैंडिडेट्स में होना है, सो देखने में बहुत मजा आएगा भाई। कौन होगा इंडियन प्लेयर जो स्ट्राइक करेगा? सो बाय चैट, सी यू टुमारो। डू लाइक द स्ट्रीम बिफोर यू लीव। लाइक्स तुम्हें पता है चैलेंज होते हैं। एंड आई विल सी यू टुमारो चैट। थैंक यू रंजन भाई, बाय चैट, सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। आप हमें शुक्रिया कर सकते हैं बाय लाइकिंग द स्ट्रीम इफ यू लव्ड द अमेजिंग एनर्जी ऑफ टिकू भाई। एवर कांस्टेंट एनर्जी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। एंड डेफिनेटली आई थिंक ही डिजर्व्स अ लाइक, एंड ही डिजर्व्स मोर लव। सो सी अस अगेन टुमारो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।